الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نظير مبين. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم
قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون صدق الله العلي العظيم وصدق الله النبي الكريم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار محمد صلى الله عليه وسلم পাক কালাম কোরআন মাজিদের তেলাওয়াতের মাধ্যমে এই নুরানি মাহফিলের আগাজ অর্থাৎ শুরু দিয়েছেন হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন আলী জনাব মাওলানা সাহেব কাবা ও কিবলা। এবারে মুনতাজিরানে ইমাম মেহেদী আলাইহিস সালামের যুব কমিটির যুবক নওজওয়ান ভাইদের পুরস্কার দেবেন। প্রথম পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন এই কমিটির সেক্রেটারি জনাব ফিরোজ সাহেব, তুলে দেবেন আলী জনাব মাওলানা আসাদ সাহেব কাবা ও কিবলাকে। একবার বাওয়াজে বলান নারে সালাওয়াত, নারে তাকবীর, নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, নারে রিসালাত, নারে হায়দারি। अंजुमने मुंताजिराने इमाम मेहदी अज्जलाल्लाहु ताआला फरजुल शरीफ তাদের তরফ থেকে এটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন, তার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। এবং তার সাথে সাথে এখনো পর্যন্ত যারা এদিকে ওদিকে আছেন, আপনাদের কাছে অনুরোধ যে আপনারা ফারশে মুসরাতে এসে উপস্থিত হন। শুকরিয়া। जिंदाबाद, मौला सलामत रखे, आबाद रखे। এবারে পুরস্কারটি তুলে দেবেন এই কমিটির
कैशियर जनाब हुसैन साहेब पुरस्कार देवें आली जनाब मौलाना असद साहेब कावा केबला के नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हैदरी। माशाअल्लाह मौला सलामत रखे आबाद रखे शाद रखे इन नौजवानों को। আমি প্রথমে বলবো যে যে সমস্ত গ্রামবাসী বৃন্দ এবং দূর থেকে আগত মেহমানগণকে বলবো যদি আমার আওয়াজ কর্ণকহ এই শব্দ যন্ত্রের মধ্যে কর্ণকহরের মধ্য দিয়ে হৃদয়ের কন্দরে মনের মণিকুঠায় পৌঁছে যায় তো আসুন সেই যুগের ইমামের জন্মদিন উপলক্ষে যে ফরশে মুসাররাত বিছানো হয়েছে সে ফরশে মুসাররাতে এসে বসে যান। আসুন ইতিপূর্বে পাক কালাম কোরআনে মাজিদ ফুরকানে হামিদের তেলাওয়াত আপনাদের কর্ণকহরের মধ্যে পৌঁছে গিয়েছে। যে কিতাব এমনই মূল্যবান কিতাব আছে যে কিতাবের সাথে বেদ বাইবেল কিপিটক জিন্দাবেস্টার গৌত সাহিত্য রামায়ণ মহাভারতকেও তুলনা করা যায় না। আর আসুন আমি সর্বপ্রথম ধন্যবাদ এই কমিটির তরফ থেকে শুকরিয়া करता हूं कि गिराफ एजेंसी को के अबूजर किंतरी साहब के वो इतनी दूर से इस सरजमीन बंगाल में पहली बार ये चैनल यहाँ पे आया। मैं बहुत तहे दिल से इस मुंतजर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की तरफ से शुक्रिया तहे दिल से शुक्रिया। और मेरे भाई भी यहाँ पे बैठे बहुत दूर से तशरीफ लाए। मौला इनको सलामत रखे आबाद रखे शाद रखे। आइए मैं ये सिर्फ चांद के हम लोग रोज ये दुआ करते हैं कि परवरदिगार इमाम जमाना की ज़हूर जल्द से जल्द हो जाए क्योंकि जमाना बहुत खराब है। जमाना को अदल और इंसाफ चाहिए। तो मैं दुआ की तरफ से मैं एक शायर का शेर पढ़ के फिर मैं एक शायर को आवाज दूंगा कि रोज हम लोग नमाज के बाद पढ़ते हैं कि अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कल हुज्जत इब्न हसन सलवातुक अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि सात व फी कुल्li सा वलिया व हाफिज़ा व कायदा व नासिरा व दलीला व आइना हत्ता तुस्किनहु वरज़क़ता व तमत्तहु फीहा तवीला। আমরা রোজ নামাজের মাধ্যমে দোয়া করি পরওয়ারদিগার के যুগের ইমামে মেহদি আলাইহিস সালাম के ज़हूर করেন। शायर बोलছেন कि या रब इमामे असर की सरकार चाहिए फिर दीने मुस्तफा को मददगार चाहिए। या रब যদি বুঝতে পারেন তাও সুবহানাল্লাহ বলবেন না বুঝতে পারলেও সুবহানাল্লাহ বলবেন। ইমামে জামানার কাছে দোয়া शायर নিজের কবিতার মাধ্যমে शेर में कहता है कि या रब इमामे असर की सरकार चाहिए फिर दीने मुस्तफा को मददगार चाहिए। वो हाथ जिसपे मोहरे यदुल्ला सब्त हो और उसमें तेगे हैदरे कर्रार चाहिए। दिल मुर्तजा का सीने में पहलू में जुल्फकार दिल मुर्तजा का सीने में पहलू में जुल्फकार शानों में जोरे सैयदे अबरार चाहिए। फिर जुल्म की हवाएं समा बांधने लगी फिर जुल्म की हवाएं समा बांधने लगी फिर सब्र में ढला हुआ कौसार चाहिए। उगने लगी है जमीन पर जुल्म की फसल ऐ मालिक जमीन एक जमींदार चाहिए ऐ मालिक जमीन एक जमींदार चाहिए। नस्ल जवान हो गई इब्ने ज़ियाद की मजलूमियत को फिर कोई मुख्तार चाहिए। फिर वक्त के हुसैन से कहती है करबो बला लश्करे यजीद पे यलगार चाहिए। बेचैन है फुरात जियारात के वास्ते बेचैन है फुरात जियारात के वास्ते मश्को अलम के साथ वफादार चाहिए। तो ऐ वारिसे हुसैन खुदारा ज़हूर कर अब्बास के अलम को अलमदार चाहिए।
ऐ वारिसे हुसैन खुदारा ज़हूर कर, अब्बास के आलम को आलमदार चाहिए। मैं इसी के साथ मैं आवाज दूंगा, बेहतरीन आवाज लिए हुए एक बच्चा सैयद अली अब्बास काज़मी साहब की बारगाह में गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपने कलाम से मोमिनीन के कल्ब को मुनव्वर फरमाए। ये बच्चा को देख के शायर कहता है कि क्या बताऊं कितना बड़ा दिल हो गया, क्या बताऊं कितना बड़ा दिल हो गया, मेरा बेटा या अली कहने का काबिल हो गया। হাদিয়ানা महफिल সালামুন আলাইকুম। আপনাদের সকলকে এই জশ্নে মোবারকবাদ জানাই। সর্বপ্রথম আমি একটা বাংলা কসিদা পড়ব। যারা বলে আলী আলী মন্দ, তাদের গায়ে তারা শয়তানের ধোকায় পড়ে আছে, তওবা তওবা করে নে সময় এখনো আছে। তারা হলো হযরত আলীর শত্রু, কিয়ামতের দিন তাদের চোখে হবে অশ্রু। তারা পৌঁছাতে পারবে না যে কাউসারের তীরে, পুড়ে তারা মরে যাবে জাহান্নামের আগুনে। এবার আমরা তৌলুদ কাসিদা বলবো ইমাম জামানার। लेके जुल्फ़िकार आ रहा है वो, लेके जुल्फ़िकार। वक्त के यज़ीद देख होशियार, वक्त के यज़ीद देख होशियार। अब इमाम को आने दीजिए, अब इमाम को आने दीजिए। अब लड़ाइयाँ होगी आर पार, अब लड़ाइयाँ होगी आर पार। बस आखिरी शेर करूँगा। रुस्तम का बदन तेरे कफन कांप रहा है, रुस्तम का बदन तेरे कफन कांप रहा है। तो जो दीजिएगा जरा, रुस्तम का बदन तेरे कफन कांप रहा है, किस शेर की आमद है कि रंग कांप रहा है। रुस्तम का बदन तेरे कफन कांप रहा है, किस शेर की आमद है कि रंग कांप रहा है। रन एक तरफ शर्क को हम कांप रहा है, रन एक तरफ शर्क को हम कांप रहा है। हर कसर सलातीन ज़मन कांप रहा है, हर कसर सलातीन ज़मन कांप रहा है। रुस्तम का बदन तेरे कफन कांप रहा है। तलवार बंद देख के हैदर के पिसर को, शमशीर बकस देख के हैदर के पिसर को, शमशीर बकस देख के हैदर के पिसर को। जिब्रील लरज़ते हैं समेटे हुए पर को, जिब्रील लरज़ते
समेटे हुए पर को। नारे सलवात। माशाअल्लाह, मौला सलामत रखे, आबाद रखे। ये थे सैयद अली अब्बास काज़मी, प्रोफेसर हैदर हसन काज़मी साहब के नवासे हैं। आइए मैं एक और बच्चा, क्योंकि मैं मेरा एजेंसी को इतला दे देता हूँ कि ये बंगाल के सरजमीन है और जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं सब बांग्ला जबान बोलने वाले हैं, लेकिन माशाल्लाह के उर्दू भी बहुत अच्छी तरह से समझ लेते हैं और मिधाते अहले बैत का मोहब्बत है इस तरह कि उर्दू भी बांग्ला की तरह समझते हैं। मौला आपको भी सलामत रखे कि ये बंगाल के एकदम बांग्लादेश के करीब एक गाँव है जिसपे भी अहले बैत का मोहब्बत रखने वाला बैठ रहते हैं यहाँ पे। और माशाल्लाह मैं ज्यादा जहमत नहीं देकर मैं फिर ये मिसरा कहता हूँ कि रहबर दुनिया में किसी का ऐसा नहीं पाया, 1400 बरस उम्र का जिंदा नहीं पाया। अल्लाह अकबर, ताकि गिराफ एजेंसी को पता चल जाए कि हाँ ये बंगाल की जमीन बांग्ला जबान रखने वाले भी उर्दू समझते हैं। और बेहतरीन आवाज लिए हुए सरजमीन फैजाबाद से चंदन सान्याल फैजाबादी साहब भी तशरीफ लाए हैं और कुछ ही देर में ये डाइस पे तशरीफ लाएंगे। और बेहतरीन तरन्नुम के मालिक जनाब सोहेल बस्तावी भी तशरीफ ला चुके हैं, कुछ देर में डाइस में तशरीफ लाएंगे। और इस महफिल के निजामत के फराइज अंजाम देने के लिए जनाब एजाज हुसैन एजाज, इंस्पेक्टर ऑफ द तंजीमुल मुकातिब गोलागंज लखनऊ से तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह वो कुछ ही देर में इस डाइस पे तशरीफ लाएंगे। मैं ये 4 मिसरे के साथ फिर एक बच्चे को आवाज दूंगा कि रहबर दुनिया में किसी का ऐसा नहीं पाया, 1400 बरस उम्र का जिंदा नहीं पाया। रहबर दुनिया में किसी का ऐसा नहीं पाया, 1400 बरस उम्र का जिंदा नहीं पाया। है उसके मुकद्दर में फकीरी के अंधेरे, जिसने शाहे गैबत का उजाला नहीं पाया। नहीं जिसने भी शाहे गैबत का उजाला नहीं पाया। आज আমরা 12তম মুহাম্মাদের জন্মদিন উপলক্ষে শেষ ইমাম যে ইমাম সম্পর্কে কোরআনে মাজিদের সূরা বানী ইসরাইলের 71 নম্বরের মধ্যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা বলছেন যে ইয়াউমা কুল্লু নাদুনাসিম বিইমামিহিম, আমি প্রত্যেক মানুষকে তার যুগের ইমামের সাথে কাল হাসরের ময়দানে আমি ডাকবো, তার যুগের ইমামের সাথে ডাকবো। আজ মুসলমানেরা যুগের ইমাম খুঁজে পেল না, ইমাম মেহেদী আলাইহিস সালামকে তো খুঁজে পেল, কিন্তু এখনো এই আকীদা বিশ্বাস আছে যে এখনো আসেনি, উনি আসবেন। তো ভাই যদি তোমার এখন মৃত্যু হয় তো তোমার কার সাথে, তোমার ইমাম কার সাথে ডাকবে? আসুন আমার এই জন্য তো আমার দয়ার নবী, ফেরেশতা নবী, জিন্দা নবী, হায়াতুন নবী, উদার নবী, শান্তির দূত, দিনের প্রদীপ, মানব কুলের মুক্তিদাতা, সুশীত নির্যাতিত মানবতার নবী, মক্কার মতি, মুকুলের সাথী, নূরের জ্যোতি, বিশ্ব সবার সভাপতি নবী বলেছেন। ক্লিয়ার হাদিস আছে, প্রত্যেক মুসলমান জানে। তিনি বলছেন কে আউয়ালুনা মুহাম্মদ, আওসাতুনা মুহাম্মদ, আখিরুনা মুহাম্মদ, ওয়া কুল্লুনা মুহাম্মদ। আমার পরে যে 12 জন খলিফা হবে মনে রাখো সবাই মোহাম্মদ, চাই সে আউয়াল হোক, চাই সে আখির হোক, চাই সে কুল, চাই সে জাহির হোক, কুল কে কুল সবাই মোহাম্মদ হবে, সবাই মোহাম্মদ হবে। বোঝাতে পারলাম না, নবীজি বোঝাতে চাইছেন কে আমার উম্মতেরা, আমি নবী মোহাম্মদের যেমন আজমত, আমার নবী, আমি নবী মোহাম্মদের যেমন
আজমাত। আমার পরে যে মোহাম্মদ আসবে, যে মোহাম্মদ আসবে তারপরে তারও সেই তেমনই আজমাত হবে, তেমনই সম্মান হবে। বোঝাতে পারলাম না। এক ব্যক্তি এসে ইমামে জাফর সাদিক আলাইহিস সালামের কাছে জিজ্ঞেস করলেন যে মাওলা, হে আমার নবী, হে আমার মাওলা, আপনার নানা তো বলেছেন যে আপনারা সবাই মোহাম্মদ, সবাই মোহাম্মদ, কিন্তু আপনাদের তো দেখতে মোহাম্মদের মতো না, আপনাদের তো সবার নামও মোহাম্মদের মতো না, কিন্তু আপনারা, আপনার নানা বলেছেন সবাই মোহাম্মদ, সিরাত সুরাতে সবাই মোহাম্মদ। একবার ইমাম বললেন, এখনই যে কোন পাক কালামের তেলাওয়াত করলেন না, এ কোরআন রাখা ছিল। ইমাম বললেন কোরআন রাখা আছে। সেই ব্যক্তিকে যখন কোরআন নিয়ে আসতে বললো, সেই ব্যক্তি কোরআন নিয়ে আসলো। একবার কোরআন নিয়ে আসার পরে ইমাম বললেন এবার কোরআনকে খোলো। সেই ব্যক্তি যখন কালামে মজিদকে খুললো, একবার ইমাম বললেন কি আছে? সে বলল মাওলা বিসমিল্লাহ আছে। তারপরে মাওলা বললেন কি আছে? সে বলল মাওলা সূরা আল-হামদ আছে। সে একবার বলতে যাচ্ছে যে মাওলা সূরা বাকারা, মাওলা সূরা ইয়াসিন, মাওলা সূরা মুজাম্মিল, মাওলা সূরা মুদাসসির, মাওলা সূরা তাহা, মাওলা সূরা ইয়াসিন। একবার আমারও আপনার সাথে ইমাম একবার আলহামদার আলিফ থেকে নিয়ে ওয়ান নাসর সিন পর্যন্ত একটি আয়াত পড়িয়ে দিলেন। পড়ানোর পরে এবার ইমাম ওই ব্যক্তিকে বললেন যে এবার করো কালামে মজিদকে বন্ধ করো। সে ব্যক্তি যখন সাদাকাল্লাহু আলিউল আযীম বলে কোরআন কিতাবকে বন্ধ করলো, সঙ্গে সঙ্গে মাওলা ওই ব্যক্তিকে প্রশ্ন করলেন এবার কি আছে? সে ব্যক্তি বলল মাওলা কোরআন আছে। আল্লাহু আকবার। মুহিব্বানে আহলে বায়াত বসে আছেন, মুহিব্বানে আহলে বায়াত বসে আছেন, আর আপনাদের তাসবির আপনার দেখাচ্ছে, এই মাহফিলকে দেখানো হচ্ছে। শুনবেন, ইমাম যখন বললেন কোরআন বন্ধ হলো, ইমাম জিজ্ঞেস করলো কে এই ব্যক্তি কি আছে? সে ব্যক্তি বলছিস, কখনো ইয়াসিন বলছিস, কখনো রহমান বলছিস, কখনো মুদাসসির বলছিস, কখনো তাহা বলছিস, আবার কোরআন বলছিস। সে ব্যক্তি বলল মাওলা বিষয় ওটা না। যখন আমি আলাদা আলাদা করে দেখলাম তো কাউকে কোরআন দেখলাম, কাউকে ইয়াসিন দেখলাম, কাউকে মুজাম্মিল দেখলাম, কাউকে মুদাসসির দেখলাম, কিন্তু যখন একত্রিত করলাম তো কোরআন দেখলাম। আমার ইমাম বললেন আমাদের আলে মোহাম্মদকে যখন তুমি আলাদা আলাদা করে দেখবে তো কাউকে মোহাম্মদ দেখবে, কাউকে ফাতেমা দেখবে, কাউকে আলী দেখবে, কাউকে হাসান দেখবে, কাউকে হোসেন দেখবে, কাউকে জৈনুল আবেদিন দেখবে, কাউকে ইমামে জাফর সাদিক দেখবে, কাউকে কাজিম দেখবে, কাউকে আলী রিজা দেখবে, কাউকে মোহাম্মদ তাকি দেখবে, কাউকে আলী নাকি দেখবে, কাউকে হাসান আসকারি দেখবে, কাউকে মেহদি দেখবে। কিন্তু এই আলে মোহাম্মদ যখন চাদরের মধ্যে একত্রিত হবে তো যে জিব্রাইল ঝুলা ঝুলানোর জন্য আসতো, যে জিব্রাইল জাঁতা চালানোর জন্য আসতো, সেই জিব্রাইল আওয়াজ দিচ্ছে ইয়া রব আনতা তাহতাল কেসা। এই চাদরের মধ্যে কে আছে আমি বুঝতে পারছি না। একবার আমার আল্লাহকে পরিচয় করাতে হচ্ছে যে হুম ফাতেমা তো ওয়া আবুহা ওয়া বালুহা ওয়া বানুহা। এই চাদরের মধ্যে ফাতেমা আছে, ফাতেমার বাবা, ফাতেমার স্বামী, ফাতেমার সন্তান আছে। অর্থাৎ যে জিব্রাইল সব সময় এই আলে মোহাম্মদকে দেখছে, যখন একত্রিত চাদরের মধ্যে জিব্রাইল দেখতে পারছে না, জিব্রাইলের চোখে সবাই মোহাম্মদ দেখা যাচ্ছে। আল্লাহু আকবার। এই জন্য সরজমিনে পাকিস্তান থেকে এক कवि मोहसिन नकवी साहब शहीद তিনি आवाज দিচ্ছেন कि अल्लाह ने कुछ इस तरह से सवारे हैं मोहम्मद, हर दौर में हर शख्स के प्यारे हैं मोहम्मद। আল্লাহ একবার 12তম ইমামের মোহাম্মদের मोहब्बत নিয়ে ভালোবাসা নিয়ে বসে আছেন कि अल्लाह ने कुछ इस तरह से सवारे हैं मोहम्मद, हर दौर में हर शख्स के प्यारे हैं मोहम्मद। अक्सर दर ज़हरा पे ये जिब्रील ने सोचा पैगाम किसे। या अली जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आइए हजरात इसी के साथ महज सल्लमा की आवाज दिच्छी इस्तिकबालेर जन्य बा आवाजे बोलान नारे सालावात।
अस्सलाम वालेकुम। कसीदा पेश करते हैं। हर गम सुनाएंगे जब इमाम आएंगे, हर गम सुनाएंगे जब इमाम आएंगे। अल जो कहते हैं आ गए तो क्या होगा, अल जो कहते हैं आ गए तो क्या होगा, क्या है अपनी तैयारी पेश हम करेंगे क्या, सिद्ध जाफर अपना तो बस यही है सरमाया, हमद ना तो साज़ा सना और मनकबत नागा, हम यही सुनाएंगे, हम यही सुनाएंगे जब इमाम आएंगे। झुकते हैं जहाँ शाबे तेरा वास्ता, अब्बास तेरे दर सा दुनिया पे दर कहा, अब्बास तेरे दर सा दुनिया पे दर कहा। तू कमर बनी हाशिम ज़हरा की तू दुआ है, तू कमर बनी हाशिम ज़हरा की तू दुआ है, साया तेरे अलम का रोज जग पे बाखुदा है, साया तेरे अलम का रोज जग पे बाखुदा है, तेरे अलम को चूमने झुकता है आसमां, अब्बास तेरे दर सा दुनिया में दर कहा। शेरे खुदा है बाबा और शेर करबला तू, शेरे खुदा है बाबा और शेर करबला तू, तेरे दर पे जो भी आए मुश्किल करे कुशा तू, तेरे दर पे जो भी आए मुश्किल करे कुशा तू, तेरे जलाता है इसलिए जहाँ, अब्बास तेरे दर सा दुनिया पे दर कहा, अब्बास तेरे दर सा दुनिया पे दर कहा। तू शहंशाह वफा का दो जग पे तेरी शाही, तू शहंशाह वफा का दो जग पे तेरी शाही, पंजतन है तुझ पे नाज़ा ऐसी वफा निभाई, पंजतन है तुझ पे नाज़ा ऐसी वफा निभाई, शाहिद तेरे अलम पे पंजतन का अब्बास तेरे दर सा
दुनिया पे दर कहा। हुसैन बादशाह, हुसैन शहनशाह, हुसैन दीन है, हुसैन दीवाना। हुसैन बादशाह, हुसैन शहनशाह, हुसैन दीन है, हुसैन दीवाना। जान मांगो मैं दिल नहीं दूंगा, जान मांगो मैं दिल नहीं दूंगा। दिल धड़काना मेरे हुसैन का है हर ज़माना, मेरे हुसैन का है जिसकी खातिर ये कायनात बनी, जिसकी खातिर ये कायनात बनी। ऐसा नाना मेरे हुसैन का है हर ज़माना, हर ज़माना मेरे हुसैन का है। जोगे जो काबा जो तुम न समझा, मेरे हुसैन का है हर ज़माना, मेरे हुसैन का है। रात से दिन जो निकलता है, रात से दिन जो निकलता है। मुस्कुराना मेरे हुसैन का है हर ज़माना, मेरे हुसैन का है। तुम हो तुम जिसे आसमां समझते हो, तुम बताना मेरे हुसैन का है हर ज़माना, मेरे हुसैन का है हर ज़माना, मेरे हुसैन का है। मुसल्ले पे मैंने अली का कसीदा जो भी गुनगुनाया सवेरे सवेरे। मुसल्ले पे मैंने अली का कसीदा जो भी गुनगुनाया सवेरे सवेरे, सवेरे सवेरे। खुदा की कसम पे इबादत के मुझको बड़ा लुत्फ आया सवेरे सवेरे, बड़ा लुत्फ आया सवेरे सवेरे। निबाज़ जिजना लेके रिज़वान जन्ना इधर खटखटाया सवेरे सवेरे, सवेरे सवेरे। मुसल्ले पे मैंने अली का कसीदा जो भी गुनगुनाया सवेरे सवेरे। नारे सलवात सलाम अलैकुम। माशाअल्लाह, मौला सलामत रखे, आबाद रखे, शाद रखे। খুব 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 মেহেজ হোসেন আপনাদের সম্মুখে কবিতা শোনাচ্ছিলেন। আসুন এর সাথে সাথে আমি সরজমিনে মাটিয়া পুরুষ থেকে এসেছেন
রিজওয়ান সাল্লাল্লাহুকে আওয়াজ দেব, ইস্তেকবালের জন্য আমি নারা লাগাবো, নারে তাকবীর, नारे तकबीर, नारे तकबीर। दरूद जिंदा है, अपना सलाम जिंदा है, दरूद जिंदा है, अपना सलाम जिंदा है, खुदा के बाद मोहम्मद का नाम जिंदा है। तुम्हारे पास तो कोई मुर्दा भी बाकी नहीं, हमें है फख्र के हमारा इमाम जिंदा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह अलीउन ओली अल्लाह ओसिए रसूल अल्लाह ओ खलीफतहु बिला फसिल পরশতা সর্বক্ষণ দুনিয়ায় থাকিবে যতক্ষণ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূল আল্লাহ আলিউন ওলি আল্লাহ ওসিয়ে রাসূল अल्लाह ओ खलीफतहु बिना फसिल পরশতা সর্বক্ষণ দুনিয়ায় থাকিবে যতক্ষণ। তারপর বলছি আল্লাহ নবীকে নবীকে বানিয়েছে সারা বিশ্বের নবী, আর আল্লাহ আলীকে বানিয়েছে সারা বিশ্বের আলী। নবীর ওসি হলো দেখো মওলা আলী, নবীর ওসি হলো দেখো মওলা আলী। আলীকে খিলাফত দিল দেখো গদিরতে নবী। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদ রাসূল আল্লাহ আলিউন ওলি আল্লাহ ওসিয়ে রাসূল আল্লাহ ও খলিফাতহু বিলা ফসল পরশতা সর্বক্ষণ দুনিয়ায় থাকিবে যতক্ষণ। তারপর যে আঙুলের ইশারায় ও গো যে আঙুলের ইশারায় নবী জাদু ভাগ করে, যে আঙুলের ইশারায় নবী জাদু ভাগ করে, আর নবীর সেই আঙুল আবু তালিবের আঙুল ধরে চলে। আরবের অলি গলিতে নবী আবু তালিবের আঙুল ধরে চলে। নবীর নাসির আবু তালিব, নবীর আশ্রয় আবু তালিব। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদ রাসূল আল্লাহ আলিউন ওলি আল্লাহ ওসিয়ে রাসূল আল্লাহ ও খলিফাতহু বিলা ফসল পরশতা সর্বক্ষণ দুনিয়ায় থাকিবে যতক্ষণ। তারপর মৌলা হোসেন কেবাকে উদ্দেশ্য করে বলছে শুনুন। কারবালার দাম ও গো কারবালার দাম ওই দিন থেকে
থেকে বেড়ে গিয়েছে মোলা হোসেন যেদিন তোমার পা কারবালায় পড়েছে শুনে আবু তালিবের নাম তাদের চেহারা বিগড়ে গিয়েছে শুনে মোলা আলীর নাম তাদের চেহারা বিগড়ে গিয়েছে মনে হয় হোসেন পাক তোমার কাতিল রাজা ধরা পড়েছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ আলী আলী আল্লাহ ওসিয়ে রাসূল আল্লাহ ও খলিফাতু বিলা ফাসিল পরশতা সর্বক্ষণ দুনিয়ায় থাকিবে যত অতি মূল্যবান খোদাই বলছি শুধু নবী পাকের তাজিমে ওগো নবী পাকের তাজিমে কুল কায়নাত দাঁড়িয়ে যায় নবী পাকের তাজিমে কুল কায়নাত দাঁড়িয়ে যায় মা ফাতেমা পাকের তাজিমে স্বয়ং নবী পাক দাঁড়িয়ে যায় নবী পাক বলে ও আল্লাহ যে কষ্ট দেবে আমার ফাতেমাকে তুমি আল্লাহ কষ্ট দিও সেই কাফের মুনাফিককে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ আলী আলী আল্লাহ ওসিয়ে রাসূল আল্লাহ ও খলিফাতু বিলা ফাসিল পরশতা সর্বক্ষণ দুনিয়ায় থাকিবে যতক্ষণ ফরিস্তা যখন আমাকে সওয়াল করিবে বল তোর কি দিন আমাকে ফরিস্তা বলিবে তখন আমি গর্বের সাথে বলিব মোলা হোসেন আমার দিন এই কথা বলে গিয়েছে আমার রাজা মঈনুদ্দিন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ আলী আলী আল্লাহ ওসিয়ে রাসূল আল্লাহ ও খলিফাতু বিলা ফাসিল পরশতা সর্বক্ষণ দুনিয়ায় থাকিবে যতক্ষণ সূরা ইয়াসিনে ওগো সূরা ইয়াসিনের 12 নম্বর আয়াতে বারা ইমামে শান আল্লাহ বয়ান করে ইমাম মুবিন আল্লাহ আলীকে বলে ইমাম আলী থেকে ইমাম মেহদী পর্যন্ত বারা ইমামে শানে রয়েছে কোরআন প্রমাণ জ্বলন্ত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ আলী আলী আল্লাহ ওসিয়ে রাসূল আল্লাহ ও খলিফাতু বিলা ফাসিল পরশতা সর্বক্ষণ
দুনিয়ায় থাকিবে যত বারে বারে আল্লাহ করেছে ওগো আল্লাহ করেছে দেখো বারো ইমাম আল্লাহ করেছে দেখো বারো ইমাম নবী করেছে দেখো বারো ইমাম ঘোষণা করেছে নবী পাক দেখো বারো ইমামের নাম ইমাম আলী ইমাম হাসান ইমাম হোসেন ইমাম জয়নুল আবেদিন ইমাম মোহাম্মদ তাকি ইমাম আলী নাকি ইমাম মোহাম্মদ তাকি ইমাম আলী নাকি ইমাম আলী ইমাম হাসান ইমাম হোসেন জয়নুল আবেদিন ইমাম মোহাম্মদ তাকি ইমাম আলী ইমাম হাসান ইমাম হোসেন ইমাম জয়নুল আবেদিন ইমাম মোহাম্মদ তাকি ইমাম জাফর সাদিক ইমাম মুসা কাজিম ইমাম আলী রেজা ইমাম মোহাম্মদ তাকি ইমাম আলী নাকি ইমাম হাসান আজিকারি ইমাম মোহাম্মদ মেহেদি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রাসূল আল্লাহ আলিউন ওলি আল্লাহ ওসিয়ে রাসূল আল্লাহ ও খলিফাতুহ বিলা ফাসিল পরশতা শরীব দুনিয়ায় থাকিবে যত তারবার কবি নাম কবিরাজ কবি বলছে আবু তালিব পাকে ওগো আবু তালিব পাকের 14 মাসুম পাকের 12 ইমাম পাকের গাজীবি সৈয়দ খাজা পাকের জিয়ারত জানা করতে পারি মরে মরার আগে জিয়ারত জানা করতে পারি মরে মরার আগে নাসির হোসেন চিশতিরা বলেন এই আশা যেন ওনারা পূরণ করে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রাসূল আল্লাহ আলিউন ওলি আল্লাহ ওসিয়ে রাসূল আল্লাহ ও খলিফাতুহ বিলা ফাসিল পরশতা শরীব দুনিয়ায় থাকিবে যত তারবার শত বড় বলছে শুন আমি ইউসুফকে বলি তুমি সুন্দর নও আমি ইউসুফকে বলি তুমি সুন্দর নও আমার নবীর মতো দুনিয়াতে এমন কোন সুন্দর নেই 14 মাসুমের মতো নবী যে আমার সবার সেরা নবী যে আমার সবার সেরা সবে নবীদের সরদার হলো আমি ইউসুফকে বলি তুমি সুন্দর নও আমার নবীর মতো ইউসুফকে দেখে দিবানি জুলেখা ইউসুফকে দেখে দিবানি জুলেখা মোর নবীকে দেখে আল্লাহ দিওয়ানা ইউসুফকে দেখে দিবানি জুলেখা মোর নবীকে দেখে আল্লাহ
দুনিয়াতে যে পাঠালো আমি ইউসুফকে বলি তুমি সুন্দর না আমার নবীর মতো। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মাশাআল্লাহ, খুব সুন্দর মধুর কণ্ঠে কবিতা শোনাচ্ছিলেন রিজওয়ান সাল্লামাহু। এরপরে ফরহাদ সাল্লামাহুকে আওয়াজ দিচ্ছি, এসো এবং নিজের কবিতা শোনাও। ফরহাদ। সালামুন আলাইকুম। রোজ বিহানের একটা পাখি আল্লাহ আল্লাহ ডাকে, সেই পাখিটার গানে গানে হৃদয় দুলতে থাকে। দিকে দিকে সে তোলে সারা, ঘুম ভেঙে যায় সে শুনে জাগে ঘুমের পাড়া। ঘুমের ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়ে যখন শাখে শাখে, রোজ বিহানের একটা পাখি আল্লাহ আল্লাহ ডাকে, সেই পাখিটার গানে গানে হৃদয় দুলতে থাকে। ভোরের বাতাস পাতায় পাতায় নাচে, পাপড়ি ঝরে ঘাস ফুলেদের গাছে। ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়ে যখন শাখে শাখে, রোজ বিহানের একটা পাখি আল্লাহ আল্লাহ ডাকে, সেই পাখিটার গানে গানে হৃদয় দুলতে থাকে। अस्सलामु अलैकुम। मुसल्ले पे मैंने अली का कसीदा जो ही गुनगुनाया सवेरे सवेरे। मुसल्ले पे मैंने अली का कसीदा जो ही गुनगुनाया सवेरे सवेरे। खुदा की कसम फिर, खुदा की कसम फिर इबादत को मुझको बड़ा लुत्फ आया सवेरे सवेरे। मुसल्ले पे मैंने अली का कसीदा जो ही गुनगुनाया सवेरे सवेरे। निकल कर अंधेरों के, निकल कर अंधेरों के नरगिस फूल जब करे शह पे आया सवेरे। निकल कर अंधेरों के नरगिस फूल जब करे शह पे आया सवेरे सवेरे। तो ज़हरा के बेटे ने एक पल में उसका मुकद्दर जगाया सवेरे सवेरे। मुसल्ले पे मैंने अली का कसीदा जो ही गुनगुनाया सवेरे सवेरे। मलाइक ने जिस बात मदहो सना की, मलाइक ने जिस बात मदहो सना की, फिजायों में गूंजी फदाये अली की। परिंदों ने भी अपनी बोली में नारा अली का लगाया सवेरे सवेरे। मुसल्ले पे मैंने अली का कसीदा जो ही गुनगुनाया
अभी सैयदा के लबों पर दुआ थी, है मर्जी हसनैन मर्जी खुदा की, अभी सैयदा की लबों पर दुआ थी, लपाज ज़िना लेके, लपाज ज़िना लेके रिज़वान जन्नत ने दर खटखटाया, सवेरे सवेरे मुसल्ले पे मैंने अली का कसीदा जूही गुनगुनाया, सवेरे सवेरे जूही मैंने घर में हदीसे किसा की, दिए को जलाया, सवेरे सवेरे वो कसरत से वर्जिश का आदि था मुल्ला के, बचपन से पका फसादी था मुल्ला, फसादी था मुल्ला, मगर जब अज़ा में नाम हैदर बड़ा तन मिलाया, सवेरे सवेरे है मर्जी ये हरी खुदा की, अब अभी सैयदा की लबों पर दुआ थी, लबों पर दुआ थी, मुसल्ले पे मैंने अली का कसीदा जूही गुनगुनाया, सवेरे सवेरे। सलाम अलैकुम। जिंदाबाद। या अली, दोनों हाथों को बुलंद करके जो मेहमान शायर दूर से आए हैं वह भी डाइस पे तशरीफ ला रहे हैं, तो दोनों हाथ बुलंद करके इस्तकबाल करना कि नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, इमाम ज़माना, इमाम ज़माना, इमाम ज़माना। या अली, या अली, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। माशाअल्लाह, मौला सलामत रखे, आबाद रखे, शाद रखे। अभी डाइस पे जो मेहमान बहुत दूर से कई किलोमीटर सफर करके आपके रूबरू, आपके दरमियान इस सरजमीन बंगाल में पहली बार वो हजरात तशरीफ ला रहे हैं। बेहतरीन तरन्नुम के मालिक सरजमीन फैजाबाद से तशरीफ ला रहे हैं। मिधात कायनात के बेताज बादशाह जनाब चंदन सानेहल फैजाबादी साहब आए हैं। यूपी के सरजमीन से जवान शायर शाहिर अहले बैत जनाब सोहेल बस्तवी साहब भी यहाँ पे तशरीफ ला चुके हैं और इस महफिल के निजामत के फराइज अंजाम देने के लिए हर दिल अजीज सरजमीन लखनऊ से तशरीफ ला चुके हैं। जनाब एजाज हुसैन एजाज, इंस्पेक्टर अब्दा तंजीमुल मुकातिब गोलागंज लखनऊ और नौजवान शायर सरजमीन बनारस से तशरीफ ला चुके हैं। जनाब सागर बनरसी साहब भी इस डाइस पे तशरीफ ला चुके हैं। आप हजरत से गुजारिश है कि मैं नारा लगाऊंगा, उनका इस्तकबाल ऐसा करना कि ये बंगाल की सरजमीन बांग्ला जबान है लेकिन उर्दू भी बहुत अच्छी तरह से भी समझ लेते हैं। इन शायर को, शायर अहले बैत को इस्तकबाल करना दोनों हाथों को बुलंद करके नारे तकबीर। देखिए ऐसे नहीं, पूरी दुनिया में मुअज्जिन साहब नारा अल्लाहु अकबर का आवाज देते हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो वो अल्लाह का नाम जबान पे, जिस अल्लाह की जबान से हमरा हंसी खाची दाची बड़ाची से अल्लाहर नाम अरे तो आस्ते दोनों जबान कलिजर पूरा ताकत दिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रसालत, नारे रसालत, नारे हैदरी हैबरी, नारे बूजरी बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत।
আসসালামু আলাইকুম। যেসব বাচ্চারা রাস্তার উপরে বোম চাষ করছো, মোটরসাইকেল যাওয়ার খুব অসুবিধা হচ্ছে। যেসব বাচ্চারা যদি আপনারা সাবধান না হন, কিন্তু কমিটির তরফ থেকে আপনাদেরকে সাবধান করা হচ্ছে। কমিটির তরফ থেকে সাবধান করা হচ্ছে যে আপনারা রাস্তার উপরে বোম চাষ করবেন না, মোটরসাইকেলে খুব অসুবিধা হচ্ছে। हेलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अभी डाइस पे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना अलहाज सैयद डॉक्टर मोहसिन रजा अब्दी साहब सरकार हाउस प्रिंसिपल ऑफ द हाउस इल्मिया हुगली इमाम बड़ा वो डाइस पे तशरीफ लाए हैं। उनके इस्तकबाल के लिए नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मौलाना आसाद साहब काबाव के अपनी जेखाने থাকুন ডাইসে চলে আসুন, আপনাকে মুনতাজারানা কমিটির তরফ থেকে ডাকছেন। এবারে মুনতাজিরানা ইমাম মেহেদী আলাইহিস সালামের যুব কমিটির তরফ থেকে এবারে ব্যাস পড়াচ্ছেন। बेहतरीन आवाज लिए हुए सरजमीन बेनारस से तशरीफ लाए हुए हैं जनाब सागर बेनारसी साहब। এবারে ব্যাস পড়াচ্ছেন যুবক কমিটির তরফ থেকে জনাব চন্দন সানেহাল ফৈজাবাदी साहब के। এবারে ব্যাস পড়াচ্ছেন बेहतरीन आवाज के मालिक जनाब सोहेल बस्तवी साहब के। এবার ব্যাস পড়াচ্ছেন মধুর কণ্ঠের কবি जनाब মনিরুল সাহেব के। এবারে ব্যাস পড়াচ্ছেন जनाब सागर बेनारसी साहब के। এবারে ব্যাস পড়াচ্ছেন জনাব রেজা মুর্শিদাবাদী সাহেব के। এবারে ব্যাস পড়াচ্ছেন জনাব এজাজ হুসাইন এজাজ সাহেব के। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। আসাদ সাহেব, মৌলানা আসাদ সাহেব আপনি যেখানেই থাকুন ডাইসের উপর আসুন।
मौलाना आसाद साहब कबला, मौलाना अली जनाब आसाद साहब काबाओ कबला के पेश इमाम जुमा वल जमात ढाली खतुल कुबरा जामे मस्जिद। जी आइए आप डाइस पे चलेंगे। राहुल भाई साहब जी आप डाइस पे चलेंगे। प्रोफेसर सैयद हैदर हसन काजमी साहब से गुजारिश के है कि वो आप आइए डाइस पे चलाइए। प्रोफेसर सैयद हैदर हसन काजमी साहब से गुजारिश है कि आप डाइस पे चलाइए। যে সমস্ত যুবক ভাইরা বারবার মাইকের আওয়াজ দিয়ে বলছি যে আপনারা যে পটাকা ফাটাচ্ছেন, যে বোম বাজি ফাটাচ্ছেন, महफिल চলাকালীনই কিন্তু এই যুবক মুনতাজরানে মেহেদি আলাইহিস সালাম যুব কমিটির তরফ থেকে বারবার অনুরোধ করা হচ্ছে যে আপনারা বাজি রাস্তায় কমসে কম ফাটাবেন না। যদি ফাটানোর ইচ্ছে হয় তো কমসে কম ওই খালের ওই পারে গিয়ে ফাটাবেন, এই আশেপাশে যেন ফাটাবেন না। বারবার অনুরোধ করা হচ্ছে सैयद प्रोफेसर हैदर हसन काजमी साहब के। मौला की मोहब्बत में उर्दू भी सुनेंगे, बांग्ला भी सुनेंगे और खास करके मैं गिरफ एजेंसी से दरखास्त करूंगा कि आपका शुक्रिया तहे दिल से मुंतजराने इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जुब कमेटी की तरफ से शुक्रिया है कि आप आए हैं। ये बंगाल की सरजमीन की आवाज को पूरी दुनिया में आप पहुंचा रहे हैं। मिदत अहले बैत में बोलते हैं आशुन आमी बेशी भूमिका ना निये এই महफिलेर নিজামত করবেন, যে পরিচালনা করবেন সে যিনি অনেক দূর থেকে কই কিলোমিটার সফর করে আমাদের মহব্বতে প্রত্যেক বছর তিনি ঢালি পাড়াতে তিনি আঞ্জুমানে মুনতাজরানে যুবক ভাইদেরকে অনেক ভালোবাসেন। তিনি যে আসেন এখানে আমাদেরকে উৎসাহ করার জন্য, আর খোদার কসম ওনার জন্য আজকে উনি আমাদেরকে পাশে ছিলেন বলে আজকে আমরা এত আর সব থেকে আমরা শুকরিয়া জানাবো যে এই গ্রামবাসীরা অনেক সহযোগিতা করেছে আমাদেরকে, যার জন্য আমরা যুগের ইমামের এই জন্মদিনকে এত সুন্দরভাবে আমরা এখানে পালিত করতে পারছি। আসুন সেই যুগের ইমামের কাছে আমরা মাওলা যে যুগের ইমাম যে যুগের ইমাম আছে ওনার কাছে আমরা দোয়া করব যে পরবর্তীগার যুগে ইমামের বাস্তায় এই গ্রামকে সালামত রাখুক, এই গ্রামে বসনে ওয়ালাদেরকে সালামত রাখুক, এই গ্রামের বাসিন্দাদেরকে সালামত রাখুক। খাস করে নওজওয়ানদের মুনতাজরানে মেহেদি আলাইহিস সালামের যুব কমিটি ছেলেদেরকে সাথ রাখুক, মাওলা সাথ রাখুক, আবাদ রাখুক। দেখুন আমি বেশি ভূমিকা নেব না, আমি 2-4 লাইন বলে আমি এজাজ সাহেবকে আমি আওয়াজ দেব মাইকের সম্মুখে পরিচালনা করার জন্য। আমি বাংলায় 2-4 লাইন পড়ব যে আজ নবীকে চিনতে পারেনি এই জন্য দুনিয়া বলো। আমি বাস শুরু থেকে দুনিয়ার মুসলমানেরা উম্মতে মুসলমানেরা নবীকে এই জন্য চিনতে পারেননি যে নবীকে চিনেছেন তো অন্য ধার থেকে চিনেছেন না। নবী পরিষ্কার ক্লিয়ার, নবীজির হাদিস প্রত্যেক মুসলমান মানে যে আনা মদিনাতুল ইলমে ওয়া আলিউন বাবাহা, আমি জ্ঞানের শহর, আলী দরওয়াজা, আমি জ্ঞানের শহর। যদি আজ মুসলমান আলী থেকে চিনত তো আর দার ভটকাত না, নবীকে প্রকৃত ভাবে নবীর আজমাতকে নবীর সম্মানকে চিনতে পারত। আসুন কেমন নবী, যখন আমরা দারে আলীতে গেলাম তো নবীকে চিনতে পারতাম कि नबी ताहा से नबी यासीन আছে, नबी मुजम्मिल আছে। जब मैंने मेरे मौला के पास गया कि मेरे मौला आप बताइए कि मेरे नबी का अजमत क्या है, मेरे नबी का शान क्या है, तो
मेरा मौला फरमाते हैं कि मेरा नबी वो है जिसका मौलूद मक्का है, जिसका हिदैबा है, जो हदीस कुस्सी का मिस्दाक है, जो इल्लत मुमकिनात है, जो वजह तकमील कायनात है। मेरा नबी वो है जो अलिफ से अहमद है, बे से बशीर है, गन से गनीउल्लाह है, फे से फतह आलम है, कफ से कासिम है, लब से लौलाद का हामिल है। माशाल्लाह, इसलिए इसी शेर के सामने कि अर्श वाले भी उसे खुदा कुशा कहते हैं, दर पे झुक झुक के नबी सल्ले अला कहते हैं। देखुन बुझते पारें चाहे ना पारें, सुभानाल्लाह माशाअल्लाह से जनाब एजाज हुसैन एजाज साहब की बारगाह में गुजारिश करूंगा कि वो आए से मोमिनीन के कल को मुनव्वर फरमाए। उनके इस्तकबाल के लिए आप हजरत से गुजारिश किया कि नारा लगा के इस्तकबाल करना कि नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। ऐसे नहीं जिनकी रगों में माँ की मुकद्दस दूध खून में हल होकर गर्दिश कर रही है, वो बंदा पूरा छाती का जोर लगा के आसमान से का नारा लगाना, नारे हैदरी हाईलाइट करे, जबाনের সাথে ফাইট করে রাইট নারা, নারে হায়দারি হৃদয় নির্ণয় করে ভাব আবেগ উজাড় করে দু হাত তুলে নারে হায়দারি, নারে হায়দারি बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। अस्सलामु अलैकुम हज़रात, सबसे पहले इस मुबारक मौके पर स्टेज पे तशरीफ फरमा उलमाए किराम, शोराए किराम और मोमिनीन और मोमिनात की खिदमत में जश्न इमाम ज़मान की तहनीत व मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि परवरदिगार हमारी इस मुख्तसर सी साई को दामन कबूलियत में शरफ इनायत फरमाएगा। काबिल मुबारकबाद हैं अंजुमन मुंतजरान मेहदी के वो मिंबरान और मोमिनीन ढाली पाड़ा, जिन्होंने अब से इस जश्न नूर को मजीद मुनव्वर बना दिया है। ये अलग बात है कि कुछ तारे अलग झिलमिला रहे हैं, कुछ अलग झिल रहे हैं, कुछ अलग झिलमिला रहे हैं। सबकी रोशनियां इस वक्त बिखरी हुई हैं। मैं ये चाहता हूँ जश्न नूर है, मौला की आमद का जश्न है, तहा जैसी बुलंदियों को कायम किया। पाक है वो परवरदिगार कि जिसने अहले बैत अतहार को पैदा किया। पाक है वो परवरदिगार जिसने मोहम्मद मुस्तफ़ा को पैदा किया। या जुमलों को समेट कर यूँ कहूँ कि लायक हम्दो सना है वो खालिक जो मोहम्मद का पैदा करने वाला है। और एक मोहम्मद नहीं बल्कि इब्तिदा से लेकर इंतहा तक 12 मोहम्मद के सिलसिले को कायम कर दिया है, ताकि दुनिया ये न कह सके कि हमें दौरे मोहम्मद न मिल सका, हमें मोहम्मद का दौर न हासिल हो सका। लिहाजा परवरदिगार नसीब हो रहा है, हमें मोहम्मद की शरीयत पर अमल करने का मौका मिल रहा है, हमें तर्ज ज़िंदगी मोहम्मद मुस्तफ़ा अता हो रही है। अजीज़ान मोहतरम, ज़रा आप गौर तो करें ना, ये जितने भी बिखरे हुए अफराद हैं, मैं ये फिर चाहूँगा कि सिमट कर थोड़ा सा और आगे आ जाए ताकि जश्न का एक माहौल बन जाए। क्योंकि परवरदिगार आलम ने मोहम्मद को जब पैदा किया है तो हूरो ग़िलमान पे भी नाज किया है, बुज़रो सलमान में
भी नाज किया है, फरिश्तों के हुजूम में भी नाज किया है, मलाइका के दरमियान में नाज किया है। और यही कहा है मोहम्मद, अगर तुझे पैदा न करना होता तो न मैं ज़मीन का फर्श बिछाता, न आसमान का शामियाना लगाता, न शम्सो कमर में नूर बख्शता, न सितारों में रोशनी बख्शता, न कहकशा में तनवीर बख्शता, न फरिश्ते पैदा करता, न हूर व गिलमान पैदा करता, न मलाइक पैदा करता। यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा अगर ये कायनात है तो तुझसे है। अगर ये पूरी कायनात का वजूद पाया जाता है तो तुझसे पाया जाता है। अगर तू न होता तो कायनात में कुछ न होता। इसीलिए उसने पहला भी मोहम्मद बनाया, औसत भी मोहम्मद बनाया, आखिर भी मोहम्मद बनाया। कुल के कुल मोहम्मद में देखो तो मोहम्मद नजर आएंगे, सीरत में देखो तो मोहम्मद नजर आएंगे, किरदार में देखो तो मोहम्मद नजर आएंगे, इल्म में देखो तो मोहम्मद नजर आएंगे। और जो बैठो तब इंशाअल्लाह इंतजार का मजा आएगा। और इंतजार इबादत का नाम नहीं है, सिर्फ मैं आपको बताता हूँ और आपकी समातों को यही से बेदार करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि पेश करे, वो भी पढ़े, आप भी सुने और इंशाअल्लाह एक लुत्फ हो और एक ऐसा माहौल बन जाए कैफो सुरूर का कि इसकी विजदानी यहाँ से लेकर सामर्रा के सरदाब तक पहुँचती हुई नजर आए। इसकी इंतजार की अलामत भी है, इसकी इंतजार की भी अलामत है, इश्क की भी अलामत है, इंतजार इसकी भी अलामत है। इंतजार सिर्फ इबादत का नाम नहीं है। अब ये अलग बात है ना, मैं जुमले बदल रहा हूँ। पहले दौर में, इब्तदाई दौर में उन्होंने पहले मोहम्मद का इंतजार किया, आज के दौर में हम आखिर मोहम्मद का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, इंतजार करने वाले बदल रहे हैं लेकिन मोहम्मद नहीं बदल रहा है। इंतजार करने वाले बदल रहे हैं लेकिन मोहम्मद नहीं बदल रहा है। मोहम्मद तो वही है, पहला है तब भी मोहम्मद है, औसत है तब भी मोहम्मद है, आखिर है तब भी मोहम्मद है, कुल के कुल मोहम्मद है ना। इंतजार करने वाले बदल रहे हैं। अच्छा, फर्क क्या पैदा हुआ है? पहले मोहम्मद का सहाबियों ने इंतजार किया था, आखिरी मोहम्मद का उम्मती इंतजार कर रहे। मिलकर भाई आज भी इंतजार हो रहा है इमाम हुज्जत का। और ये जितने भी मुंतजरीन बैठे हुए हैं सबके मुस्कुराते हुए इस बात की गम्माजी कर रहे हैं कि किसी अजीम शख्सियत का इंतजार हो रहा है, किसी अजीम शख्सियत का इंतजार हो रहा है। और इंतजार ऐसे ही बैठकर नहीं करते हैं ढाली पाड़ा वाले, बल्कि इनके जज्बात को सलाम करता हूँ। और ये चारों मिसरे मैं नहीं पढ़ूंगा मेराज साहब, बल्कि आप हजरात की तरफ से इमाम हुज्जत की बारगाह में बतौर तोहफा पेश कर रहा हूँ। अपने बुजुर्गों से दुआ, अपने नौजवानों से हौसला चाहता हूँ, अपने दिल को निसार करते हैं। देखिए, ढाली पाड़ा की सरजमीन पर नए अशार पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। अपने दिल को निसार करते हैं, इस कदर तुझसे प्यार करते हैं। नहीं नहीं नहीं, खुदा के लिए आखिरी फर्द तक तवज्जो है। अपने दिल को निसार करते हैं। जो मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, अगर शेर उनके दिलों से टकराए तो मेरी आवाज से आवाज जरूर मिलाइएगा। अपने दिल को निसार करते हैं चंदन भाई, सोहेल भाई, अपने दिल को निसार करते हैं, इस कदर तुझसे प्यार करते हैं। इंतजार इश्क की अलामत है, इसलिए इंतजार करते हैं। इंतजार इसकी अलामत है, इसलिए इंतजार करते हैं। इंतजार इसकी अलामत है, इसलिए इंतजार करते हैं। इंतजार इसकी अलामत है, इसलिए इंतजार करते हैं। अच्छा, अब जब हमारा 12वां इमाम आएगा तो उसके आने का अंदाज क्या होगा? सर पे अम्माम अली होगा, कमर में जुल्फ़िकार अली होगी। क्या सुन रहे हो? सर पे अम्माम अली होगा, कमर में जुल्फ़िकार अली होगी, कमर में जुल्फ़िकार अली होगी। दोष पर मोहम्मद की रिदा ओढ़े हुए होगा। इस अंदाज से आएगा कि काबे की पुष्ट से ये अल मेहदी अनल मेहदी अनल मेहदी अनल मेहदी। इधर जैसे ही मौला ने ये फकरा कहा है, शायर ने झूम कर कहा, अब्रे रहमत को दूर कर दो ना, अब्रे जुल्मत को दूर कर दो ना, मेरे मौला ज़हूर कर दो ना।
अबरे जुल्मत को दूर कर दो ना, एक मिनट बच्चे नारा बाद में लगाना। अबरे जुल्मत को दूर कर दो ना, अबरे जुल्मत को दूर कर दो ना, मेरे मौला ज़हूर कर दो ना, मेरे मौला ज़हूर कर दो ना। अक्से मजलूमियत है खतरे में, शीशे जुल्म चोर कर दो ना। अक्से मजलूमियत है खतरे में, शीशे जुल्म चूर कर दो ना, मेरे मौला ज़हूर कर दो ना। ये जितने भी मुंतज़रीन बैठे हुए हैं इमाम का इंतज़ार कर रहे हैं और इमाम के इंतज़ार में इस वक्त पलके बिछाए हुए बैठे हुए हैं। आपकी समातें बेदार हो रही है, मैं शायर आपके हवाले करूँगा, लेकिन उससे पहले आपकी समातों को बेदार करना चाहता हूँ। जब तक आप बेदार नहीं होंगे, दूरों दराज से ये शायर आए हैं, बहुत लंबा सफ़र करके आपकी सरजमीन पर आए हैं। आपकी मोहब्बतों को सलाम करते हुए, आपके जज्बात को सलाम करते हुए ये शोरा आपकी बारगाह में आए हुए हैं। लिहाजा ये बेहतरीन कलाम पेश करेंगे। एक सलवात पढ़ दे हज़रत मोहम्मद और वाले मोहम्मद पर। बड़ी दूर दराज से ये शोराए कराम तशरीफ लाए हैं, लिहाजा इनका इस्तकबाल आपकी समातों के जरिए से होगा। आपकी समातें जितनी अच्छी होंगी इंशाअल्लाह उतना ही अच्छा इनका इस्तकबाल होगा। आइए हजरात, आपकी समातें बेदार हो रही है, मैं थोड़ी देर के लिए आपको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। जो बोलेगा उसका मुकद्दर है, मैं पढ़ के तो चला जाऊँगा अपने मुकद्दर को सलाम करता हुआ, लेकिन जो इस शेर पर बोला ना वो अपने मुकद्दर को सलाम करता हुआ नजर आएगा। जिसने शब्बीर को अपने से जुदा रखा है, भाई यही से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं वकील साहब। जिसने शब्बीर को अपने से जुदा रखा है, उसका अंजाम कयामत में बुरा रखा है। जिसने शब्बीर को अपने से जुदा रखा है, जिसने शब्बीर को अपने से जुदा रखा है, उसका अंजाम कयामत में बुरा रखा है। घर में ताकों पे जो कुरान सजा रखा है, सोचते ये है कि इस्लाम बचा रखा है। घर में कुरान जो ताकों पे सजा रखा है, सोचते ये है कि इस्लाम बचा रखा है। मेरे भाई अगर शेर समझ आ रहा है तो मेरी आवाज से आवाज मिलाना। घर में ताकों पे तो कुरान सजा रखा है, सोचते ये है कि इस्लाम बचा रखा है। अब यहाँ से शेर अपने नौजवानों के हवाले कर रहा हूँ। सोचते ये है कि इस्लाम बचा रखा है, तो हुरमुला से पिसरे शाद ने झल्ला के कहा, एक शशमाए ने लश्कर को मिलकर मिलकर नारा लगाए ना। नहीं, अभी तो मैं आपको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ी देर ऐसे जुड़ते रहिएगा, इंशाअल्लाह लुत्फ आता रहेगा। जिसने शब्बीर को अपने से जुदा रखा है, उसका अंजाम कयामत में बुरा रखा है। जिसने शब्बीर को अपने से जुदा रखा है, उसका अंजाम कयामत में बुरा रखा है। गाज़ी मियां, उसका अंजाम कयामत में बुरा रखा है। घर में कुरान जो ताकों पे सजा रखा है, सोचते ये है कि इस्लाम बचा रखा है। हुरमुला से पिसरे शाद ने झल्ला के कहा, एक शशमाहे ने लश्कर को हिला रखा है, एक शशमाहे ने लश्कर को हिला रखा है। तो यूं लेटा देते हैं, शहीद लेटा देते हैं बेशीर को मख्तल में हुसैन, ऐसा लगता है कि कुरान खुला रखा। यूं लेटा देते हैं बेशीर को मख्तल में हुसैन, ऐसा लगता है कि कुरान खुला रखा है, ऐसा लगता है कि कुरान खुला रखता है। देखना ये है कि कभी इश्क मेरा लाता है रंग। अब जाहिर है ना, मौला से मोहब्बत है और जितने भी मोहब्बत करने वाले हैं सब तशरीफ फरमा है। देखना ये है कि कब इश्क मेरा लाता है रंग, पांव दहलीज़ मोहब्बत पे जमा रखा है। देखना ये है कि कब इश्क मेरा लाता है रंग, पांव दहलीज़ मोहब्बत पे जमा रखा है। जिस शेर के लिए मैंने सारे शेर पढ़े हैं, वो शेर बतौर खास मेरे नौजवान मुलाहजा फरमा ले। यूं लेटा देते हैं बेशीर को मख्तल में हुसैन, ऐसा लगता है कि कुरान खुला रखा है। देखना ये है कि कब इश्क मेरा लाता है रंग, पांव दहलीज़ मोहब्बत पे जमा रखा है। तो गुम न हो जाए ज़माना कहीं तारीकी में, आखिरी तक गुम न हो जाए ज़माना कहीं तारीकी में, भेज उसको जिसे पर्दे में छुपा रखा।
गुम न हो जाए जमाना कहीं तारीकी में, भेज उसको जिसे पर्दे में छुपा रखा है, भेज उसको जिसे पर्दे में छुपा रखा है। आइए हजरात, आपकी समातें बेदार हो चुकी हैं। अशार सुनने के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ, आप ही की सरजमीन और आप ही के दरमियान जिंदगी गुजारने वाले जनाब शब्बीर मौलाई ढाली पाड़वी साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ ला रहे हैं। जनाब शब्बीर मौलाई साहब इस्तकबाल करें, सलावत पढ़ें। সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সর্বপ্রথম যে সমস্ত উলামায়ে কেরাম হযরত পেছনে বসে আছেন, আমি বলবো যে এখানে জায়গা করা আছে আপনাদের জন্য, এখানে এসে বসবেন। যে সমস্ত উলামায়ে কেরামগণ দেখছো আপনারা এখানে বসে এসে বসবেন, এখানে আপনাদের জন্য জায়গা করা আছে, আপনারা প্লিজ এখানে এসে বসবেন। খুব সুন্দর নিজামাত করছিলেন জনাব এজাজ হোসেন এজাজ, ইন্সপেক্টর অফ দা তানজিমুল মুকাতিব গোলাঘাট লখনউ। তিনি অনেকক্ষণ ধরে খুব সুন্দরভাবে আপনাদের জাগ্রত করেছেন। ইনশাআল্লাহ আবার উনি আসবেন নিজামাত করার জন্য। আমি বাস বাংলায় দেখুন উর্দু জবান শোনানোর জন্য আছেন। আমি 4 লাইনের বাংলা কবিতা পড়ব ইনশাআল্লাহ, তারপরে এজাজ ভাই সাহেব আপনাদের সম্মুখে আসবেন। কবি বলছেন যে দেখুন, দুনিয়া এখনো পঞ্জাতন পাককে চিনতে পারেনি। 4 লাইনের কবিতা কে যাদের অন্তরে নেই मोहब्बते पंजतन। और ये जो ग्राफ एजेंसी लखनऊ से तशरीफ लाए है, ये बांग्ला में भी शायरी होता है। आप ये जरा उर्दू जबान रखने वालों के भी सुना दीजिएगा। ये मुंतजरन मेहदी अलैहिस्सलाम जो कमेटी तरफ से ये इत्तेजा है कि सुना दीजिए कि बांग्ला में इसका में जिसके अंदर पंजतन का मोहब्बत नहीं है वो दर बदर ठोकरे कहता रहेगी। इसलिए मतलब बांग्ला के যাদের অন্তরে নেই মহব্বতে পঞ্জতন। হুজুর বসেন, বাংলা বোঝেন कि যাদের অন্তরে নেই। और चंदन भाईजान अगर समझ में काफी बोलते रहना, ना समझ में आए बांग्ला समझ में आए तभी बोलते रहना। याली के যাদের অন্তরে নেই मोहब्बते पंजतन, कबरे आछे जाता कलेर निर्यातन। ভাই মাশাআল্লাহ এখান থেকে বুঝতে পারছেন ওখানকার মুমিন ভাইরা বাংলায় পড়ছি কে যাদের অন্তরে নেই মোহব্বতে পঞ্জতন, কবরে আছে জাতা কলের নির্যাতন। আর 5, 12, 72 ছেড়ে আনমোল রতন। আমার দাদা আদম নবীর কথা একটু আগে গিয়ে মাওলানারা বসে আছেন কে ওনারা বলেন যে আদমেরও আজমাত এই পঞ্জতনের শানে। যখন পরওয়ারদিগার পঞ্জতনের নাম নিয়েছিলেন তখন ফেরেশতাদের হুকুম করেছে কে সিজদা করে শুনবেন কে যাদের অন্তরে নেই মহব্বতে পঞ্জতন, কবরে আছে জাঁতা কলের নির্যাতন। 5, 12, 72 ছেড়ে আনমোল রতন। 5, 12, 72 ছেড়ে আনমোল রতন। জীবন করে নিল ইবলিস শয়তানের মতন। জীবন 5, 12 माशाल्लाह। मेरे भाई के चेहरा भी मुस्कुराहट आ गए हैं माशाल्लाह। मौला सलामत रखे के যাদের অন্তরে নেই মহব্বতে পঞ্জতন, কবরে আছে যত কলের নির্যাতন। 5, 12, 72 ছেড়ে আনমোল রতন। জীবন করে নিল ওই ইবলিস শয়তানের। ভাই যদি পৌঁছে যায় বলবেন ইবলিস শয়তানের। এখানে হয়তো অনেক সিভিল পুলিশ ভাইরা বসে আছে, আমি দেখছি অনেকে বসে। আমার দুলা ভাইজান বসে আছেন, কে একজন আসামিকে ধরেছে তা বলছে একে থানায় নিয়ে দেবে অনেক কতল। তো আমি
আমার খুব ভালো লেগেছে, তো আমি নিজের কবিতার মধ্যে ব্যবহার করেছি। শুনবেন কে যাদের অন্তরে নেই মহাব্বতে পঞ্জতন, কবরে আছে জুতা কলের নির্যাতন, 5, 12, 72 ছেড়ে আনমোল রতন, জীবন করে নিল ইবলিস শয়তানের। আর সাব্বির মন দিয়ে শুনবেন কে সাব্বির কবরে যদি না খেতে চাও কতন, লাশ কলি শুনবেন কে সাব্বির কবরে যদি না খেতে চাও কতন, হয়ে যাও সালমান বুজার সাহাবীর মতন। সাব্বির কবরে যদি না খেতে চাও, সাব্বির কবরে যদি না খেতে চাও কতন, তো হয়ে যাও সালমান বুজার সাহাবীর মতন। দেখুন আহলে বাইতের এটিএমও মাশাআল্লাহ ওপেন হয়ে গেছে। আহলে বাইতের এটিএমে সারা বছর খোলা থাকে। তো কবি বলছেন যে মাহফিলে বসে যারা কবিদের দিচ্ছে টাকা, কে মাহফিলে বসে যারা কবিদের দিচ্ছে টাকা, ইয়া আল্লাহ ওনাদের কখনো করোনা পকেট ফাঁকা। মাহফিলে বসে যারা কবিদের দিচ্ছে টাকা, ইয়া আল্লাহ ওনাদের কখনো করোনা পকেট ফাঁকা। আর যদি সুন্দর করতে চাকা, যদি সুন্দর করতে চাও এই জীবনের চাকা, সবাই মিলে বলো নবী আছে আমাদের আকা। সবাই মিলে ওখান থেকে ভাইজানেরা হয়তো বুঝতে পারছেন না, লাশ কলি কে মাহফিলে বসে যারা কবিদের দিচ্ছে টাকা, ইয়া আল্লাহ ওনাদের কখনো করোনা পকেট। যদি সুন্দর করতে চাও এই জীবনের চাকা, সবাই মিলে বলো নবী আছে আমাদের, সবাই মিলে বলো নবী আছে আমাদের। তাই তো বলি ও জাইনাল আইনাল কাকা। শুনবেন আখেরি মিসরা, তারপরে এজাজ সাহেব আপনাদের সম্মুখে কে মাহফিলে বসে দিচ্ছে টাকা, ইয়া আল্লাহ ওনাদের কখনো করোনা পকেট ফাঁকা। যদি সুন্দর করতে চাও এই জীবনের চাকা, সবাই মিলে বলো নবী আছে আমাদের। তাই তো বলি ও জাইনাল আইনাল কাকা, তাই তো বলি ও জাইনাল আইনাল কাকা। আলে মোহাম্মদ বিনা আমলের ঝুড়ি একদম ফাঁকা। आले मोहम्मद के बिना अमल का जो खोला है वो एकदम फाका है। তাই তো বলি ও জাইনাল ও আইনাল কাকা, আলে মোহাম্মদের মোহাব্বত বিনা আমলের ঝুড়ি একদম ফাঁকা। আসুন এর साथे साथे निजामत के फर्ज अंजाम देने के लिए सरजम ने बहुत दूर से, और हम लोग बहुत प्यार करते हैं जैसे एजाज भाई से, इसलिए हमारी मोहब्बत में हर साल में लब्बक कहते हैं। और ये सरजमीन ढली पाड़ा में उनका ज़ियारत हम लोग कर लेते हैं। आइए हजरत बड़े आदाब व एहतराम के साथ निजामत के फर्ज अंजाम देने के लिए अली जनाब मौलाना एजाज हुसैन एजाज, इंस्पेक्टर ऑफ द तंजीमुल मुकद्दिब, गोलागंज, लखनऊ। या अली माशाअल्लाह। देखिए इस नन्हे से बच्चे ने हमें यह हौसला बख्शा है, और जाहिर है यही हौसला हमारे नौजवानों में भी होना चाहिए, हमारे बुजुर्गों में भी होना चाहिए, और हमारी ख़वातीन में भी होना चाहिए। एक खूबसूरत सा माहौल बन गया है, नूरानी समा हो गया है, नूर की बारिश होने लगी है। कुछ किरणें इन मुस्कुराते हुए चेहरों पर भी है, और कुछ किरणें उस तरफ भी हैं जो मोमिनीन और मोमिनात के मुंतज़िर हैं अभी तक। लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह तादाद तो अच्छी हो रही है, और तादाद हो भी चुकी है। अब मैं ये यकीन कर सकता हूँ, अगर मैं किसी शायर को आपके हवाले करूँ तो वो शायर मुझसे शिकवा नहीं करेगा।
आपकी समातों के ऊपर मुकम्मल एतबार हो चुका है, मुकम्मल भरोसा हो चुका है। और जाहिर है हमारे शब्बीर मौलाही साहब बंगाली ज़बान में अशार जब पढ़ते हैं तो वाक़ईन बच्चे तो बोलते ही हैं, बुज़ुर्ग भी बोलते हैं, जवान भी बोलते हैं, और फिर यहाँ के ज़र्रात से भी दादो तहसीन की आवाज़ आती है, क्योंकि यहाँ के ज़र्रात भी अपनी मादरी ज़बान को समझते हैं। हजरत, उर्दू ज़बान ज़रूर है, लश्करी ज़बान है, मीठ। जब मैं इब्तिदा में आया था 7-8 साल पहले, तब भी आपकी समातों को मैंने सलाम किया था और आज भी आपकी समातों को सलाम करता हूँ, इसलिए कि आप बिल्कुल वैसा ही सुनते हैं जैसे हमें लखनऊ में सुना जाता है, जैसे हमें हैदराबाद में सुना जाता है, जैसे हमें मुंबई में सुना जाता है। आपकी समातें बहुत बेदार हैं। मैं 2-3 शेर आपकी खिदमत में अर्ज करके रब से रब्त देने की कोशिश करता हूँ, कड़ी से कड़ी मिलाने की कोशिश करता हूँ, सिलसिले को सिलसिले से जोड़ने की कोशिश करता हूँ। खिज़ा है कब्जे में, फसले बहार हाथ में है। उलमाए किराम भी तशरीफ फरमा है। डॉक्टर पयाम आज़मी नब्बाज़े अदब का बेहतरीन शेर है जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता है। कब्जे में फसले बहार हाथ में, कब्जे में फसले बहार हाथ में है, गुलाम उनका हूँ सब अख्तियार हाथ में है। नहीं, थोड़ी देर के लिए आपको बेदार होना पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए बेदार होना पड़ेगा। खिज़ा है कब्जे में फसले बहार हाथ में है, खिज़ा है कब्जे में फसले बहार हाथ में है, गुलाम उनका हूँ सब अख्तियार हाथ में है। सागर भाई, गुलाम उनका हूँ सब अख्तियार हाथ में है। तो मेरे कदम को जमाना हिला नहीं सकता, ये मेरा हाथ किसी जिम्मेदार हाथ में है। मेरे कदम को जमाना हिला नहीं सकता, मेरे कदम को जमाना हिला नहीं सकता, ये मेरा हाथ किसी जिम्मेदार हाथ में है। नौजवानों, अगर आ गए हो तो अब बैठ जाओ और थोड़ी देर के लिए बेदार होकर सुन लो, इसलिए कि महफिल का माहौल बन चुका है। खिज़ा है कब्जे में फसले बहार हाथ में है, गुलाम उनका हूँ सब अख्तियार हाथ में है, गुलाम उनका हूँ सब अख्तियार हाथ में है। मौलाना तशरीफ लाए आगे, एक सलवात पढ़े अज़मत मोहम्मद और वाले मोहम्मद पर। उलमाए किराम की आमद है, लिहाजा उनका इस्तकबाल तो करें, बावाज़े बुलंद सलवात पढ़कर आप हज़रात। आइए क़िबला आगे तशरीफ लाए, स्टेज पर तशरीफ लाए, स्टेज पे आगे। आइए, हम लोगों को हौसला मिलेगा, पढ़ने वालों को भी ज़रा सा। मौलाना तफज्जुल साहब, अगर जहमत ना हो स्टेज पे आए, मौलाना आप भी तशरीफ लाए स्टेज पर। अच्छा लगेगा, आप लोगों के नूरानी चेहरे की कम अज़ कम ज़ियारत होती रहेगी, इबादत का दोहरा सवानी चेहरे की कम अज़ कम ज़ियारत होती रहेगी, इबादत का दोहरा सवाब मिलता रहेगा। एक और सलवात पढ़े अज़मत मोहम्मद और आले मोहम्मद। हाँ, यही है ढाली पाड़ा की समाज मिलकर। सरकार, खिज़ा है कब्जे में फसले बहार हाथ में है, खिज़ा है कब्जे में फसले बहार हाथ में है, गुलाम उनका हूँ सब अख्तियार हाथ में है, गुलाम उनका हूँ सब अख्तियार हाथ में है। मेरे कदम को ज़माना हिला नहीं सकता, मेरी तरफ मुतवज्जह रहिएगा, मेरे कदम को ज़माना हिला नहीं सकता कि मेरा हाथ किसी जिम्मेदार हाथ में है, कि मेरा हाथ किसी जिम्मेदार हाथ में है। मेरी तरफ मुतवज्जह रहे आप, स्टेज पे आमद और रफ्त जारी रहेगी कि मेरा हाथ किसी जिम्मेदार हाथ में है। ज़माना आया है इजहार दोस्ती के लिए, रसन है जेब में फूलों का हार हाथ।
अरे क्या सुन रहे हो मेरे भाई, जमाना आया है इजहारे दोस्ती के लिए। शब्बीर भाई, जमाना आया है इजहारे दोस्ती के लिए। रसन है जेब में, फूलों का हार हाथ में है। रसन है जेब में, फूलों का हार हाथ में है। जो दामने रहे रहमत त्योहार हाथ में है। जो दामने रहे रहमत दिगार हाथ में है। तो समझो मर्ज़िए परवरदिगार हाथ में है। तो अली ने खाई है, अली ने खाई दस्ते ज़हरा की, जब ही तो क़ुव्वते परवरदिगार। जो दामने शहे दुलदुल सवार हाथ में है, तो समझो रहमत परवरदिगार हाथ में है। अली ने रोटियां खाई है दस्ते ज़हरा की, जब ही तो क़ुव्वते परवरदिगार हाथ में है। आइए हजरात, आपकी समातों को सलाम करते हुए गुजारिश करता हूं, मेहमान शायर दूर दराज से सफर तय करके आपके हुजूर में हाजिर हुआ है, जिसके लिए सिर्फ मैं 2 ही मिसरे पढ़ सकता हूं कि तेरी हर एक अदा, तेरा हर सांस चूम लूं, जी चाहता है मैं तेरी आवाज चूम लूं। बेहतरीन आवाज के मालिक सागर बनारसी साहब, बेहतरीन अशार के खालिक सागर बनारसी साहब तशरीफ ला रहे हैं। सलवात पढ़कर इस्तकबाल कर। सामीन इकराम सलाम अलैकुम। सबसे पहले आप हजरात को जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जी आप नारे सलवात पढ़ते हुए आप अपना इंतजाम देखिए, बुलंद तरीन सलवात पढ़ें। मतलब हाजिर कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाएं, इजाजत है? हो गई बात आपका? जो अली की चौखट से वास्ता नहीं रखते, जो अली की चौखट से, जो अली की चौखट से वास्ता नहीं रखते, उनसे कोई भी रिश्ता मुस्तफा नहीं रखते। जो अली चौखट से वास्ता नहीं रखते। भाईजान जरा सा इसकी को कम करके आवाज। अरे छोड़ भाग आए थे, भाईजान। अरे छोड़ भाग आए थे, कल नबी की मैयत को छोड़ भाग आए थे। अरे छोड़ भाग आए थे, कल नबी की मैयत को आज अपने कांधे पर ताजिया नहीं रख। या रसूल अल्लाह। अरे छोड़ भाग आए थे, जो नबी की मैयत को आज
आज अपने कांधे पर। देखिए अब ये शेर मैं हाजिर कर रहा हूं। इस शेर का आप सब किरदार है, हिस्सा है। मैं पेश करता हूं, मुलाहिजा फरमाएं, शायद किसी लायक हो। अरे छोड़ भाग आए थे जो नबी की मैयत को, आज अपने का आपके लिए ये शेर पेश करता हूं। अरे कौम ये बताती है जाग कर शबे आशूर, कौम ये बताती है जाग कर शबे आशूर, दिल में हुर को रखते हैं, हुरमुला नहीं रखते, रखते हैं। अरे कौन अरे कौन है जाग कर शबे आसूर। जब मैं दूसरा मिसरा पढ़ूं उसके बाद आप सुने और दाद की टाइम थोड़ा बढ़ा दी। हाजिर कर रहा हूं। कौम ये बताती कर आशूर, दिल में हुर को रखते हैं, हुरमुला नहीं रखते। इससे दुआ चाहूंगा। अरे उनको मुस्कुराने का हक नहीं है दुनिया में, जो भी अपनी आंखों में करबला नहीं रखते, आंखों में करबला नहीं रखते। आवाज आ रही है? शिरकत करिए शेर पे। पेश करता हूं, मुलाहिजा फरमाएं। जी अरे जब अलम नहीं पाए इसका साफ मतलब है, अरे जब अलम नहीं पाए इसका साफ मतलब है, तुम जिगर किसी रुख से मर्द का नहीं रखते। जब अलम नहीं पाए इसका साफ मतलब है। दो तीन शेर इस मनकबत का है, पेश करता हूं, मुलाहिजा फरमाएं। आप बिल्कुल मुझसे जुड़े रहे भाईजान। अल्लाह अकबर। भाईजान खुदा के लिए देखिए, मैं एक शेर आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ कि कलकत्ता मेरे साथ रहा, मैं जहाँ रहा, फिर कैसे मेरे लहजे का जादू ना बोलता। हाजिर कर रहा हूँ। अरे जब अलम नहीं पाए इसका साफ, आप जैसे सुनेंगे मैं वैसे सुनाऊंगा, इसका साफ मतलब है तुम जिगर किसी रुख से मर्द का नहीं रखते। राहे शाम कूफा में कह रहे थे ये आबिद, हौसले वो खोते हैं जो खुदा नहीं रखते।
हौसले वो खोते हैं जो खुदा नहीं रखते। हाजिर करूं शेर, इंशाअल्लाह याद रह जाएगा। तमाम मौला अब्बास के अलम उठाने वालों की एक जिम्मेदारी, एक मैसेज, दाइस से भी दुआ चाहूंगा। मैं चुनिंदा मनकबत में चुनिंदा शेर पढ़ूंगा, हाजिर करता हूं। एक आपकी जिम्मेदारी, एक पैगाम है, एक मैसेज है। अरे बस वही छुए आकर आज परचमे अब्बास, बस वही छुए आकर आज परचमे अब्बास, जो भी अपनी बहनों का सर खुला नहीं रखते। बाबा 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 या गाजी या गाजी। बहुत शुक्रिया। बस वही छुए आकर। एक मनकबत और पेश करता हूं जिसकी रदीब है खूबसूरत। पेदर खूबसूरत पे सर खूबसूरत, पेदर खूबसूरत पे सर खूबसूरत, ऐ ज़हरा तेरा घर का घर खूबसूरत, घर का घर खूबसूरत। चार शेर इस मनकबत के, फिर उसके बाद एक मनकबत और एक हुक्म पेश करता हूं। मुलाज़िम फरमाएं, ये फिक्र उससे पूछे जरा जाके कोई, जरा जाके कोई, ये फिक्र उससे पूछे जरा जाके कोई, मिले किसके सदके में पर खूबसूरत, मिले किसके सदके में पर खूबसूरत। ज़ियारत को आते हैं हूरो मलाइक, हूरो मलाइक, ज़ियारत को आते हैं हूरो मलाइक, है इब्ने अली किस कदर खूबसूरत, किस कदर खूबसूरत। एक शेर उसके बाद पेश करता हूं। मुलाज़िम फरमाएं, थाउर कशमकश में किधर जाए आखिर, किधर जाए आखिर, उधर शक्ल बद और इधर खूबसूरत। अब हजरत एक मतला चंद अशार हाजिर करता हूं। मुलाज़िम फरमाएं, आज़ादारी के हवाले से मैं पूरी मेहनत के साथ पढ़ूंगा, आप उसको सुनिएगा। नारा हैदरी, नारा हैदरी। मतलब हाजिर करता हूं। मुलाज़िम फरमाएं, मैं अपने करम फरमा मोहतरम चंदन फैजाबादी साहब का हुक्म भी था और बड़े भाई सुहेल बस्ती साहब की पेशखानी के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। पेश करता हूं। मुलाज़िम फरमाएं, सजा दो चाहे जितना भी, मगर अच्छा नहीं लगता, सजा दो चाहे जितना भी। जब हमसे कोई पूछे कि आप कहाँ गए थे तो हम कहेंगे परंगाना गए थे। कैसे सुना? मैं कहूंगा कि आप वीडियो पे देखिए कैसे सुना वहां के लोगों ने। मतलब पेश करता हूं, सजा दो चाहे जितना भी, मगर अच्छा नहीं लगता न हो शबीर की मजलिस, तो घर अच्छा नहीं लगता न हो शबीर की मजलिस, तो घर
सजा दो। अब एक शेर आप लोगों की नजर पेश करता हूं, मुलाज़ा फरमाएं। अरे फरिश्तों ने फरिश्तों से कहा आओ चला जाए, फरिश्तों ने फरिश्तों से कहा आओ चला जाए, फरिश्तों ने फरिश्तों से कहा आओ चला जाए, उधर है महफिले मेहदी, इधर अच्छा नहीं लगता, उधर है महफिले उधर है महफिले मेहदी, इधर अच्छा नहीं लगता। हाजिर कर रहा हूं, मुलाज़ा फरमाएं। देखिए मैं अकेला आप तक आवाज पहुंचा रहा हूं, आप सब मिलकर अगर आवाज पहुंचाएं तो ये और अच्छा होगा। पेश करता हूं मुलाज़ा फरमाएं। उधर है महफिले मेहदी, इधर अच्छा नहीं लगता। अरे सदा देती है ये मस्जिद मुसल्ला भी ये कहता है, सदा देती है ये मस्जिद मुसल्ला भी ये कहता है, सदा देती है ये मस्जिद मुसल्ला भी ये कहता है, बिना हुब्बे अली सजदे में सर अच्छा नहीं लगता, सजदे में सर अच्छा नहीं लगता, बिना हुब्बे अली सजदे में सर अच्छा नहीं लगता। फकत ये पंजतन के जिक्र ने मेराज पाई है, फकत ये पंजतन के जिक्र ने मेराज पाई है, किसी का जिक्र यूं भी उम्र भर अच्छा नहीं लगता। फकत ये पंजतन के जिक्र ने मेराज पाई है, किसी का जिक्र यूं भी उम्र भर अच्छा नहीं लगता। अब आप जाने और मौला जाने, फराज़े तार से मीसम यही आवाज देते हैं, अली के चाहने वालों में डर अच्छा नहीं लगता। हैदर 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 फराज़े दार से आप सिर्फ मेरे साथ जुड़े रहे, जैसा आप सुनेंगे मैं वैसा पढ़ूंगा। फराज़े दार से मीसम यही पैगाम देते हैं, अली के चाहने वालों में डर अच्छा नहीं लगता। अरे मदीना जाके भी शाहे मदीना मिल न पाएगा। अगर खड़े होकर इस्तेकबाल किया इस शेर का तो कम है। मदीना जाके शाहे मदीना मिल न पाएगा, तुम्हें करबो बला जाना अगर अच्छा नहीं लगता। मदीना जाके भी शाहे मदीना मिल न पाएगा। एक शेर में हाजिर करता हूं, दो शेर। अगर आपकी यही कैफियत रही
अगर आपके दिल की बात मैं कर रहा हूं तो आप मेरा साथ दीजिएगा। अरे वो अपने नन्हे भाईजान प्लीज, लो प्लीज भाई, बहुत मेहनत से मैं आप तक अपनी बात पहुंचा रहा हूं, थोड़ी देर के लिए आप मेरे साथ रहिए। वो अपने नन्हे हाथों में अलम लेता नहीं जब तक, अगर शेर पहुंच गया तो इंशाअल्लाह याद रह जाएगा। वो अपने नन्हे हाथों में अलम लेता नहीं जब तक, फिर मिसरा सुनिए, वो अपने नन्हे हाथों में अलम लेता नहीं जब तक, वो अपने नन्हे हाथों में अलम लेता नहीं जब तक, मुझे उस वक्त तक अपना पेसर अच्छा नहीं लगता। मिलके या अली, मुझे उस वक्त तक अपना पेसर अच्छा नहीं लगता। सदा देती है ये मस्जिद मुसल्ला भी ये कहता है, बिना हुए अली सजदे में नहीं लगता। अब आपकी जिम्मेदारी पेश करता हूं, मुलाज़ा फरमाएं। कहा आपके मिजाज का शेर, कहा सजादे में दरबार में ऐ शाम के हाकिम मेरे दादा का मिंबर है, उतर अच्छा नहीं लगता मेरे दादा। या अली मेरे मेरे दादा का मिंबर है, उतर अच्छा नहीं लगता। सदा अब ये देखिए भाई का हुक्म है, पेश करता हूं, मुलाज़ा फरमाए। शाह हुदा के साथ में अब तक नाम है जिंदा ज़ैनब का, नाम है जिंदा ज़ैनब का। करबो बला में, करबो बला में भाई का कब्जा, शाम में कब्जा ज़ैनब का। हैदर हैदर हैदर, करबला में भाई का कब्जा, शाम में कब्जा ज़ैनब का। मैं अपनी जगह तब लूंगा जब आखिरी मजमे तक मुझे दुआएं मिलेंगी। आप यकीन जानिए 22 फरवरी और आज 9 मार्च, कोई एक दिन ऐसा, कोई ऐसी रात नहीं गई जिस दिन हम लोगों ने कहीं ना कहीं सफर करके पढ़ा ना हो। ये मौला पढ़वाते हैं, वरना कोई 2 दिन जाग जाए तो ज़हनी तनाजुर खराब हो जाता है। पेश करता हूं, मुलाज़ा फरमाएं। शाह हुदा के साथ में अब तक नाम है जिंदा ज़ैनब का, नाम है जिंदा ज़ैनब का। करबला में भाई का कब्जा, शाम में कब्जा ज़ैनब का। अरे होता रहेगा बातिल पर अब करबला से शाम तलक, होता रहेगा बातिल पर अब करबला तलक। पहला हमला आबिद का और पहला हमला आबिद का और दूसरा हमला ज़ैनब का। हैदर 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 हैदर, या हुसैन,
या हुसैन। अरे होता रहेगा बातिल पर अब करबो बला। शहजादी आती है जश्न में, वो देखती हैं कि कौन हमारे लाल के जिक्र पे वाह कर रहा है। आप इस बात को जहन में रखिए। शेर सुन पेश करता हूं। अरे फर्शे जिंदा में बिछाया, मातम भी भाई का किया। जिंदा में बिछाया फर्शे अज़ा, जिंदा में बिछाया फर्शे अज़ा, जिंदा में बिछाए। शेर रहेगा नहीं जाना चाहिए। फर्शे अज़ा जिंदा में बिछाया, मातम भी भाई का किया। अरे कातिल के रुख पर है ये, कातिल के रुख पर है ये भरपूर तमाचा ज़ैनब का। नाम है जिंदा ज़ैनब का। करबो बला में भाई का कब्जा, शाम में कब्जा ज़ैनब का। और शेर पढ़ूं, हाजिर करता हूं मुलाज़िम फरमाए। एक भतीजे ने बरछी को तोड़ दिया है सीने से। एक भतीजे ने, देखिए एहसास भी होना चाहिए कि आप साथ में हैं। एक भतीजे ने बरछी को तोड़ दिया है सीने से। तीर की जद पर आके हंसा है, तीर की जद पर आके हंसा है एक भतीजा ज़ैनब का। के साथ में अब तक नाम है जिंदा ज़ैनब का। करबो बला में भाई का कब्जा, शाम में कब्जा ज़ैनब का। शेर हाजिर करता हूं मुलाज़िम फरमाए। आबिद को इस वास्ते जकड़ा, जंजीरों में जालिम ने। पोता है ये शेर खुदा का और भतीजा ज़ैनब का। पोता है ये शेर खुदा का और भतीजा ज़ैनब का। आग कोई एक शेर, उसके बाद एक मतलब फिर एक शेर, पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ पेश करूंगा। आग कोई पहुंचेगी क्या सजा तेरे दामन के करीब। मौत को भी रुकना ही पड़ेगा देख के पहरा ज़ैनब का। मौत को भी रुकना ही पड़ेगा देख के पहरा ज़ैनब का। आग कोई पहुंचेगी क्या सजा तेरे दामन के करीब। मौत को भी रुकना ही पड़ेगा देख के पहरा ज़ैनब का। मैं जिस मंजिल तक लेके आना चाहता हूं, मुझे एहसास हो जाएगा इस मसले और शेर के बाद। देखने वालों की नजरों ने देखा रुतबा ज़ैनब का। देखने वालों की नजरों ने देखा रुतबा ज़ैनब का। करबो बला की ख्वाब भी उठ के, करबो बला की ख्वाब भी उठ के करती है पर्दा ज़ैनब का। अरे देखने वालों की नजरों ने देखा रुतबा ज़ैनब का। करबो बला की खाक भी उठ के करती है पर्दा ज़ैनब का। हासिले कलाम शेर। अहले हरम की चादर का अब्बास मुहाफिज है जब तक। अहले हरम की चादर का अब्बास मुहाफिज है जब तक। सूरज की औकात कहाँ है, सूरज की औकात कहाँ है देख ले चेहरा ज़ैनब।
माशाअल्लाह बेहतरीन अशार आप समात फरमा रहे थे। जनाब सागर बनारसी साहब बेहतरीन अशार पेश कर रहे थे। उन्होंने आपकी समातों को बिल्कुल जगा दिया है और आप मुकम्मल तौर पर जाग चुके हैं। शहजादी जनाबे ज़ैनब कुबरा का तस्करा कर रहे थे। बड़े प्यारे अशार थे, बड़े अच्छे अशार थे। मैं सिर्फ कड़ी से कड़ी मिलाने की कोशिश करता हूँ, सिलसिले से सिलसिले को जोड़ने की कोशिश करता हूँ कि जो सारी दुनिया के लिए जीनत हो उसे अली कहते हैं, जो अली की जीनत हो उसे ज़ैनब कहते हैं। महसूस करिएगा इस फ़िक्रे को और इंशाअल्लाह दुआ दीजिएगा। जो सारी दुनिया के लिए जीनत हो उसे अली कहते हैं और जो अली की जीनत हो उसे ज़ैनब कहते हैं। शहजादी ज़ैनब का तस्करा आता है तो शायर झूम कर 4 मिसरे कहता है कि रुखे निफाक का गाज़ा उठा के फेंक दिया। अगर आप बेदार हैं तो वाकई में इस बेदारी को कायम रखना चाहता हूँ कि रुखे निफाक का गाज़ा उठा के फेंक दिया, बनावटी गुले ताज़ा उठा के फेंक दिया। रुखे निफाक का गाज़ा उठा के फेंक दिया, बनावटी गुले ताज़ा उठा के फेंक दिया। अली की बेटी ने दरबारे शाम में जाकर यजीदियत का जनाजा उठा के फेंक। अली की बेटी ने दरबारे शाम में जाकर मिलकर अली की बेटी ने दरबारे शाम में जाकर, हाँ ऐसे ही टाइमिंग रहे दाद देने की, इंशाअल्लाह लुत्फ आएगा। और जितने भी हाथ उठ रहे हैं दाद देने के लिए, ये फजूल में नहीं उठ रहे हैं। कोई ऐसी गैबी ताकत है जो आपके हाथों को उठवा रही है। अगर महसूस कर लिया ना तो हर एक हाथ उठाएगा। इस वक्त ग्राफ एजेंसी का ये कैमरा चल रहा है जो पूरे हिंदुस्तान में इस तारीखी महफिल को नश्र कर रहा है। ढाली पाड़ा की ये तारीखी महफिल रकम होती चली जा रही है। आपकी समातें भी ऐसी होनी चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान में इस महफिल को हमेशा याद रखा जाए। जिंदगी के जिंदा दिल जज्बात देते हैं हमें, हर कदम पर इल्म की सौगात देते हैं हमें। खुदा के लिए 1 मिनट। हाँ, मैंने ऐसे ही नहीं कहा है कि ये जो हाथ उठते हैं ये गैबी ताकत है जो आपको हाथ उठाने पर मजबूर करती है। उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, मेरे जुमले के जिंदा दिल जज्बात देते हैं हमें, हर कदम पर इल्म की सौगात देते हैं हमें। अब जिसे भी ताईद मौला हासिल है वो हाथों को जरूर बुलंद करेगा। वीडियो कैमरे की मौजूदगी में ये शेर पढ़ रहा हूँ। जिंदगी के जिंदा दिल जज्बात देते हैं हमें, हुसैन भाई शेर संभालना। जिंदगी के जिंदा दिल जज्बात देते हैं हमें, हर कदम पर इल्म की सौगात देते हैं हमें। दाद देने के लिए महफिल में जो उठते हैं हाथ, ऐसा लगता है अली खैरात आएगा। ऐसा लगता है अली खैरात देते हैं हमें। हाँ, ऐसे ही थोड़ी देर के लिए आपको झूमना है। नूरानी माहौल बन चुका है, एक जश्न का माहौल है। ये माहौल खत्म नहीं होना चाहिए। हुसैन भाई मुतवज्जे रहना, जितनी भी आपकी टीम है वो मुतवज्जे रहे मेरी तरफ। मौला अब्बास का भी तस्करा कर रहे थे सागर बनारसी साहब, ऐसे ही तो आप झूम के सुन रहे थे ना। इसीलिए तो मैं अक्सर व बेशतर कहता हूँ मोहतरम, दुनिया मेरे अश्कों से परेशान बहुत है। पानी का ये कतरा है मगर जान बहुत है। खुदा के लिए बेदार हो जाना मेरे भाई। मेराज भाई जुमला हवाले कर रहा हूँ। दुनिया मेरे अश्कों से परेशान बहुत है, मेरी तरफ मुतवज्जे रहे। दुनिया मेरे अश्कों से परेशान बहुत है, दुनिया मेरे अश्कों से परेशान बहुत है। चंदन भाई, सोहेल भाई, बड़ा खूबसूरत सा पैगाम दे रहा हूँ। दुनिया मेरे अश्कों से परेशान बहुत है, पानी का ये कतरा है मगर जान बहुत है। अब देखता हूँ ढाली पाड़ा की समात कहाँ तक जाती है। आप कैसे ये शेर समात फरमाते हैं। दुनिया मेरे अश्कों से परेशान बहुत है, पानी का ये कतरा है मगर जान बहुत है। कब हंसना है कब रोना है बेशीर से पूछो, बच्चा है मगर वक्त की पहचान।
थोड़ा सा जुड़ जाए मेरे साथ, थोड़ा सा जुड़। अभी तक जो नहीं बोले है ना, खुदा की कसम जो शेर पढ़ के जा रहा हूँ, ढाली पाड़ा की तारीख लिखी जा रही है। हमेशा इस शेर को याद रखिएगा, चाहे कोई शेर आपके जहनों में रहे या न रहे, लेकिन ये शेर जरूर बाकी रह जाएगा। दुनिया मेरे अश्कों से परेशान बहुत है, पानी का ये कतरा है मगर जान बहुत है। कब हंसना है कब रोना है बेशीर से पूछो, बच्चा है मगर वक्त की पहचान बहुत है। सागर भाई, बच्चा है मगर वक्त की पहचान बहुत है। तो जिस दिन से उठा रखा है अब्बास का परचम, कमजोर से बाजू है मगर जा। अब्बास कमजोर से बाजू है मगर जान बहुत है। आइए हजरात, गुजारिश कर रहा हूँ शायर अहले बैत जनाब मुनीरुल गाजी साहब से कि वो तशरीफ लाएं। शायर अहले बैत जनाब मुनीरुल गाजी साहब इस्तकबाल करें सलवात पर। देखिए, मैं बार बार ये बात कहता हूँ, फुरादा नमाज का सवाब कम है, बाजमात नमाज का सवाब ज्यादा है। जो हजरात खड़े हुए हैं उनसे ये गुजारिश है कि फर्श वेला आपका मुंतजिर है, और वाकईन इस वक्त सभी मुंतजिर हैं, किसी मुंतजर के इंतज़ार कर रहे हैं। कोई इमाम का इंतज़ार कर रहा है, फर्श वेला किसी का इंतज़ार कर रहा है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, इंतज़ार ऐसे ही नहीं करते हैं, इंतज़ार करना सुन्नते पैगम्बर है, इंतज़ार करना सुन्नते पैगम्बर है। ये अलग बात है, मैंने इब्तिदा में कहा ना, वहाँ कोई और इंतजार कर रहा था और यहाँ ये मोमिनीन इंतजार कर रहे हैं। फर्श वेला आपका इंतजार कर रहा है, लिहाजा खड़े होकर सुनने से बेहतर है बैठकर सुने। और जब बैठकर सुनेंगे तो जाहिर है दाद के लिए हाथ भी आपके उठेंगे, और फिर एक बार विजदानी कैफियत आपके जहनों पर तारी होगी। तो फिर मीर अली सल्लल्लाहु मकामहू का वो शेर जहनों में गर्दिश करता हुआ नजर आएगा, जो तावीज़े कब्र पर उन्होंने लिखा था कि खुर्शीद फलक अक्से दुरे ताजे अली है, अल्लाह के सिवा जो भी है मोहताजे अली है। হাজিরানে महफिल সালামুন আলাইকুম। समस्त ढालीपाड़ा ग्रामबासीদের আমি এই জশ্নে ইমামে জামানার পবিত্র বহুত বহুত মোবারকবাদ জানাই। তারই সাথে শুকরিয়া জানাই কি আপনারা महफिल সাজিয়েছেন, খুবই পরিশ্রম করেছেন এবং ফারসি মুশারাতে বসে महफिल শুনছেন, যেমন ভাবে তেলাওয়াত করছেন। তো আমি সময় সংক্ষিপ্তর ভিতরে কিছু কাসিদা শোনাবো। তার আগে ছোট্ট একটি উর্দু কাসিদা চলেন শের আছে, শুনবেন ইনশাআল্লাহ। दिलो नजर पे तेरा दिलो नजर पे तेरा एहतराम वाजिब है। दिलो नजर पे तेरा एहतराम वाजिब है। दिलो नजर पे तेरा एहतराम वाजिब है। मैं मुस्तहब नहीं कहता, ये काम वाजिब है। मैं मुस्तहब नहीं कहता, ये काम वाजिब है। और আমরা যারা আরিজা লিখি তো আরিজা কি লিখি শুনবেন। सलाम इसलिए करता हूँ आपको मौला, सलाम इसलिए करता हूँ आपको मौला। मैं जानता हूँ जवाबे
सलाम वाजिब है। मैं जानता हूँ जवाबे सलाम वाजिब है। और मास्टर कि दिलों पे बुग़्ज़ जो रखते हैं, दिलों पे बुग़्ज़ जो रखते हैं आपसे मौला, दिलों पे बुग़्ज़ जो रखती है आपसे मौला। पता है सबको कि उस पर लानत वाजिब है, पता है उसको कि उस पर लानत वाजिब है। और एक बार दिगा नारे सलावत। और एक बांग्ला কাসিদা আপনাদের সামনে পেশ করব, ইনশাআল্লাহ শুনবেন। মন থেকে যখন ডাকিবে, মন থেকে যখন ডাকিবে যুগের ইমাম মেহেদীকে, মন থেকে যখন ডাকিবে যুগের ইমাম মেহেদীকে, আমারে মামা শিবে আমাদের ডাক শুনে এসে কাতল করিবে সকল দুশমনকে। মন থেকে যখন ডাকিবে যুগের ইমাম মেহেদীকে। और শুনবেন যারা মা ফাতেমার, যারা মা ফাতেমার হক কেড়ে খেয়েছে, যারা মা ফাতেমার হক কেড়ে নিয়েছে, আর যারা মা ফাতেমার উপর জুলুম করেছে, মেহেদী যখন আসিবে কাতল তাদের করিবে। মন থেকে যখন ডাকিবে যুগের ইমাম মেহেদীকে। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভাইকে বলবো আপনারা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভাইদেরকে বলবো, যারা বুঝতে পারছেন অবশ্যই তার দেবেন, শুনবেন। মন থেকে যখন ডাকিবে যুগের ইমাম মেহেদীকে। और শুনবেন আলিউল ওয়ালিউল্লাহ শুনে যায় যারা জোরে, আলিউল ওয়ালিউল্লাহ শুনে যায় যারা জোরে। আর আলীর ভালোবাসা নেই যাদের ভাগ্যে, আর আলীর ভালোবাসা নেই যাদের ভাগ্যে, মেহেদী যখন আসিবে তাদের বাঁচাবে কে। মন থেকে যখন ডাকিবে যুগের ইমাম মেহেদীকে। আলিউল ওয়ালিউল্লাহ শুনে যায় যারা জ্বলে, আর আলীর ভালোবাসা নেই যাদের ভাগ্যে, মেহেদী যখন আসিবে তাদের বাঁচাবে কে। মন থেকে যখন ডাকিবে যুগের ইমাম মেহেদীকে। এখনো সময় আছে তোমাদের ও কাছে, বুঝতে পারছেন? এখনো সময় আছে তোমাদের ও কাছে, মিথ্যাকে ছেড়ে দিয়ে এসো সত্যের কাছে, সময় আর পাবে না যে ইমামের আসার পরে। মন থেকে যখন ডাক এখনো সময় আছে তোমাদের ও
এসো সত্যের কাছে সময় আর পাবে না যে ইমামের আসার পরে মন থেকে যখন ডাকিবে যুগের ইমাম মেহেদীকে আর শুনবেন খোদার আদেশ অনুযায়ী যখন ইমাম আসিবে খোদার আদেশ অনুযায়ী যখন ইমাম আসিবে গাজীর আলম আলীর জুলফিকার থাকিবে গাজীর আলম আলীর জুলফিকার থাকিবে কারবালা আর খায়বার দেখব জোহরের পরে মন থেকে যখন ডাকিবে যুগের ইমাম মেহেদীকে আর শুনবেন আর দুনিয়ার জালিমরা মন দিয়ে শুনবেন আর দুনিয়ার জালিমরা পেছন পর্যন্ত শুনবেন আর দুনিয়ার জালিমরা শুনে নাও কান খুলে আর দুনিয়ার জালিমরা শুনে নাও কান খুলে কষ্ট আমরা সয়ে নেব কষ্ট আমরা সয়ে নেব আর ডাকিব খোদাকে সব কষ্ট ভুলে যাব ইমামের আসার পরে মন থেকে যখন ডাকিবে যুগের ইমাম মেহেদীকে আর শুনবেন লাস্ট কলি আর জাহিদ সদা বলে মনিরুল গাজীকে আর জাহিদ সদা বলে মনিরুল গাজীকে মেহফিলে তুমি পড়ো ইমামের কবিতাকে কবিতা শুনে যেন সবাই ডাকে ইমামকে মন থেকে যখন ডাকিবে মন থেকে যখন ডাকিবে যুগের ইমাম মেহেদীকে আমার ইমাম আসিবে আমাদের ডাক শুনে এসে কাতল করিবে সকল দুশমনকে মন থেকে যখন ডাকিবে যুগের ইমাম মেহেদীকে और एक बार दिगाना रे सलवात और एक नतून कसीदा बांग्लादेश सम्मुखे जिनी लिखेছেন যিনি সাহায্য করেছেন লিখতে আমাকে আমার পরিচিত আমার জামাই বাবু সম্পর্কে আনোয়ার সাহেব তো তানার ইস্তেকবালের জন্য একটু বারে দিকে নারে সালাওয়াত ময়দানে ময়দানে বড় বড় বীর দেখো দু টুকরা হয়েছে ময়দানে বড় বড় দেখো দু টুকরা হয়েছে ময়দানে বড় বড় বীর ময়দানে বড় বড় বীর দেখো দু টুকরো হয়েছে মাওলার জুলফিকারের ইবার যার উপর যারে পড়েছে মাওলার জুল ময়দানে বড় বড় বীর দেখো দু টুকরো হয়েছে মাওলার জুলফিকারের আঘাত যখন যার উপর পড়েছে और শুনবেন আলীর নাম শুনে যার চেহারা দেখো খারাপ হয়েছে আলীর নাম শুনে দেখো যার চেহারা খারাপ হয়েছে আলীর নাম শুনে দেখো যার চেহারা খারাপ হয়েছে মনে হয় ফাতেমা জাহরা কাতিল ধরা পড়েছে মনে হয়
ফাতেমা জহরার কাতিল ধরা পড়েছে, মনে হয় ফাতেমা জহরার কাতিল ধরা পড়েছে। তো শুনবেন, সারা জীবন যারা নবীর পাশে কাটিয়েছে, শুনবেন, সারা জীবন ভর যারা নবীর পাশে কাটিয়েছে, শুনবেন, সারা জীবন ভর যারা নবীর পাশে কাটিয়েছে, সে সময় তারা নবীজিকে দেখো পাগল বলেছে, সে সময় তারা আবার নবীজিকে পাগল বলেছে। নবীর কন্যা কিভাবে পাবে ওরা ভেবে নিয়েছে, নবীর কন্যা কিভাবে পাবে ওরা ভেবে নিয়েছে, নবীর কন্যা কিভাবে পাবে ওরা ভেবে নিয়েছে, সারা জীবন ভর যারা পাথরের পুজো করেছে, সারা জীবন ভর যারা পাথরের পুজো করেছে, গদিরে নবীজি যাকে মৌলা বানিয়ে গিয়েছে, গদিরে নবীজি যাকে মৌলা বানিয়ে গিয়েছে, গদিরে নবীজি যাকে মৌলা বানিয়ে গিয়েছে, নবীর মৃত্যুর পরে তারা দেখো ভুলে গিয়েছে, নবীর মৃত্যুর পরে তারা দেখো ভুলে গিয়েছে। सबकी सुर है सब मेटाइते, सबकी सुर है सब मेटाइते, इमाम मेहदी आशीते से, सबकी सुर है सब मेटाइते, इमाम मेहदी आशीते से, सावधान हो ए चोरेर दल माथा काटिते आशीते, सावधान हो ए चोरेर दल माथा काटते आशीते से। और सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। আরেকটি বাংলা কাসিদা আমাদের সম্মুখে রাখবো, ইনশাআল্লাহ শুনবেন। আলিয়া মারমালা শুনে নাও তোমরা, সদা যে থাকিবে আলী রে নারা, আলিয়া মারমালা শুনে নাও তোমরা, সদা যে থাকিবে আলী রে নারা, আলিয়া মারমালা। তো শুনবেন, ভুলে গিয়ে সঙ্গী কাদেরের ঘটনা, আর ছিল একদিন নবীর রটনা, ভুলে গিয়ে সঙ্গী কাদেরের ঘটনা, ছিল একদিন নবীর রটনা, নবীর রটনা। আমি যার মালা, আমি যার মালা, আলী তার মালা, আর ভুলে গিয়েছো কেন নবীর তালা, আলী আমার মালা শুনে নাও তোমরা, সদা যে থাকিবে আলী রে নারা, আলী আমার মালা। সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ ওয়া আলি মুহাম্মদ। তোমাদের আমি শোনাই এক ঘটনা,
নবীকে ঘিরে ছিল জালিমেরা তোমাদের আমি শোনাই এক ঘটনা নবীকে ঘিরে ছিল জালিমেরা নবীকে মদত করেনি নবীকে মদত করেনি তখন সাহাবীরা আর নবীকে মদত তখন করে আলী মাওলা আলী আমার মাওলা শুনেন ছোট করে পড়ব ছিল মাওলার হাতে খাইবারের দরজা আর তখন ছিল মানুষের মুখে এই কথা ছিল মাওলার হাতে খাইবারের দরজা আর তখন ছিল মানুষের মুখে এই কথা মুখে এই কথা এ কেমন বাহাদুর এ কেমন বাহাদুর ভেবেও ভাবা যায় না এমন মনে হয় খোদার নেকি বান্দা আলী আমার মাওলা শুনবেন জাহান্নামের আগুনের নেই কোনো কুল তখন যেন বলো না হয়ে গিয়েছে ভুল জাহান্নামের আগুনের নেই কোনো কুল আর তখন যেন বলো না হয়ে গিয়েছে ভুল হয়ে গিয়েছে ভুল এখনো সময় আছে শুনে নাও তোমরা আর সত্যের পথে এসে যাও দেরি আর করো না আলী আমার মাওলা তো শুনেন যখন আমি পড়ি কোরআনের আয়াত আর কোরআন বয়ান করে আলীর বিনায়াত যখন আমি পড়ি কোরআনের আয়াত আর কোরআন বয়ান করে আলীর বেলায়াত আলীর বেলায়াত যে ব্যক্তি মাওলা আলীকে যে ব্যক্তি মাওলা আলীকে মাওলা মানে না জান্নাতের স্বপ্ন সে দেখিতে পারে না আলী আমার কষ্টের সময় খুশি থাকে আলীওয়ালা আর তারা বলে এটা তো খোদারি পরীক্ষা কষ্টের সময় খুশি থাকে আলীওয়ালা আর তারা বলে এটা তো খোদারি পরীক্ষা খোদারি পরীক্ষা খুশির এই সময় কাঁদে খুশির এই সময় কাঁদে কিছু মানুষেরা কেন না তাদের নেই আলীর মতো মাওলা আলী আমার মাওলা শুনে নাও তোমরা সদা যে থাকিবে আলীর নারা আলী আমার মাওলা নারে সালাওয়াত माशाअल्लाह बेहतरीन अशार बेहतरीन आवाज़ आप समात फरमा रहे थे जितना खूबसूरत ये पढ़ रहे थे खूबसूरत सुन भी रहे थे इन्होंने इमाम मेहदी का तस्करा किया शहजादी फातिमा ज़हरा का जिक्र किया मौलाए कायनात का तस्करा किया
इतनी इतनी फजीलतें आप बैक वक्त समात फरमा रहे थे। जनाब मुनीरुल गाजी साहब, मैं इनके लिए अगर 2 मिसरे पढ़ूं तो वो बेजा नहीं होगा कि ये बज़्मे मैं है जामे जम नहीं है, ये बज़्मे मैं है जामे जम नहीं है, यहाँ कोई किसी से कम नहीं है। ये बज़्मे मैं है जामे जम नहीं है, यहाँ कोई किसी से कम नहीं है। देखिए ऐसा है, आप चाय पिलाइए, ज़रूर पिलाइए, शौक़ से आप पीजिए भी, तबर्रुक समझ के पीजिए। ये इश्क़ अली की शराब है जो छलक रही है। इन चाहने वालों के दरमियान पीना भी चाहिए, पिलाना भी चाहिए, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि जो माहौल है ये माहौल परागंदा नहीं होना चाहिए, यानी उधर उधर नहीं होना चाहिए। इसीलिए चाय पिलाने वालों के लिए मैं 4 मिसरे अर्ज कर दूं, उसके बाद फिर आपकी खिदमत में शेर अर्ज करूंगा कि दोहरे मजे का जाम पिलाए दुनिया को मीनाए गदीर। भाई देखिए चाय का दौर चल रहा है, मैं उसी हवाले से 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ कि दोहरे मजे का जाम पिलाए दुनिया को मीनाए गदीर, कुछ लोगों को शाद करे कुछ लोगों को तड़पाए गदीर। दोहरे मजे का जाम पिलाए दुनिया को मीनाए गदीर, कुछ लोगों को शाद करे कुछ लोगों को तड़पाए गदीर। हर 18 ज़िलहिज्जा को अपनी अपनी कब्रों में जाने कितने कहते होंगे हाय मोहम्मद हाय गदीर, जाने कितने कहते होंगे हाय मोहम्मद हाय गदीर। मुनीरुल इस्लाम साहब ने, मुनीरुल गाजी साहब ने बेहतरीन समा बना दिया है। मौलाए कायनात का तस्करा किया है कि मौला अली हमारे भी मौला है। ये हकीकत है अजीज़ान मोहतरम कि सिर्फ हमारे ही मौला नहीं है, बल्कि ज़मीन कहती है मेरे आका का मेरा आका है, आसमान कहता है मेरा मौला है, जन्नत कहती है मेरा आका है, सलसबील कहती है मेरा मौला है, कलम कहता है मेरा आका है, गुलताश कहता है मेरा मौला है, सिद्दतुल मुंतहा की बुलंदी कहती है मेरा मौला है, काबा कौसैन कहते हैं मेरा मौला है, हूर गिलमान कहते हैं मेरा मौला है, बुजरो सलमान कहते हैं मेरा मौला है, नमाज कहती है मेरा मौला है, रोज़ा कहता है मेरा मौला है, खुमुस कहता है मेरा मौला है, जिहाद कहता है मेरा मौला है, अम्र बिल मारूफ कहता है मेरा मौला है, तवल्ला कहता है मेरा मौला है, अज़ादार कहते हैं मेरा मौला है, गमखार कहते हैं मेरा मौला है, चाहने वाल कहते हैं मेरा मौला है, तरफदार कहते हैं मेरा मौला है, मीसम कहते हैं मेरा मौला है, कंबर कहते हैं मेरा मौला है, मिक़दाद कहते हैं मेरा मौला है, बूजर कहते हैं मेरा मौला है, अवैस करनी कहते हैं मेरा मौला है। यानी सारी दुनिया अली को मौला कह रही है। यह हकीकत है अजीज़ान मोहतरम, किसी के मानने से अली बढ़ता नहीं है, किसी के छोड़ने से अली घट। मिलकर 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 किसी के मानने से अली बढ़ता नहीं है, किसी के छोड़ने से अली घटता नहीं है। ढाली पाड़ा वालों जुमला सुनना, किसी के मानने से अली बढ़ता नहीं है, किसी के छोड़ने से अली घटता नहीं है। कोई अली को माने तब भी अली है, कोई अली को न माने तब भी अली है, कोई अली को माने तब भी अली है, कोई अली को न माने तब भी अली है। किसी के मानने से अली बढ़ता नहीं, किसी के छोड़ने से अली घटता नहीं। अगर सारी दुनिया अली को छोड़ दे, अली का कुछ जाता नहीं। जिसे मेरा अली छोड़ दे, जिसे मेरा अली छोड़ दे उसका कुछ रहता नहीं है, जिसे मेरा अली छोड़ दे उसका कुछ रहता नहीं है, जिसे मेरा अली छोड़ दे उसका कुछ रहता नहीं है। इसीलिए तो शायर ने कहा था ना, लिखा हुआ है जो हद्दे निगाह से आगे। बतौर खास शेर आपके हवाले कर रहा हूँ, माइक ठीक होता रहेगा, मेरी आवाज आप तक पहुंचती रहेगी। लिखा हुआ है जो हद्दे निगाह से आगे, मुझे वो दीदाए दिल से दिखाई देता है। लिखा हुआ है जो हद्दे निगाह से आगे, मुझे वो दीदाए दिल से दिखाई देता है। सिवाय नामे अली कोई नाम याद नहीं, मैं क्या करूं मुझे ऊंचा सुनाई देता है। सिवाय नामे अली, मिलकर नारा लगा।
सिवाय नामे अली कोई नाम याद नहीं, मैं क्या करूं मुझे ऊंचा सुनाई देता है, मैं क्या करूं मुझे ऊंचा। जब तक माइक तैयार होता रहेगा तब तक मैं आपकी खिदमत में हाजिर रहूंगा, इसलिए कि यके बाद दीगरे शोराए किराम आपकी खिदमत में आ रहे हैं। मैं क्या करूं मुझे ऊंचा सुनाई देता है। शहजादी फातिमा ज़हरा का तस्करा किया था, अभी मुनीरुल गाजी साहब ने बड़े खूबसूरत से शेर पढ़े थे। मैं सिर्फ 2 बंद आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा और ये मेरी याददाश्त का सबसे प्यारा शेर है जो मैं आपकी खिदमत में पूरी जिम्मेदारी के साथ पढ़ रहा हूँ कि जिस्म फानी है सजाने की जरूरत क्या है। उलमाए किराम की खुसूसी तवज्जो चाहूंगा इन मिसरों पर। जिस्म फानी है सजाने की जरूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है। जिस्म फानी है सजाने की जरूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है। बतौर खास 2 मिसरे सुना रहा हूँ। जिस्म फानी है सजाने की जरूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है। ऐसे आमाल करो रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत। ऐसे अमाल करो रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है। माइक बनता रहेगा, आप हजरात मेरी तरफ मुतवज्जो रहे वरना अशार का खून हो जाएगा। अभी तक जो मेरे खामोश भाई बैठे हैं, मैं ये चाहता हूँ अगर शेर उनके दिलों तक पहुँचे तो मेरी आवाज से आवाज जरूर मिलाइएगा। जिस्म फानी है सजाने की जरूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है। ऐसे अमाल करो रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है, इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है। तो जज्बे दिल को तकाजे की जरूरत क्या है, साफ किरदार को दावे की जरूरत क्या है। जज्बे दिल को तकाजे की जरूरत क्या है, जज्बे दिल को तकाजे की जरूरत क्या है, साफ किरदार को दावे की जरूरत क्या है। बाप ताजीम करे उम्मे अभी हाँ कहकर, ऐसी बेटी हो तो बेटे की जरूरत क्या। बाप ताजीम करे उम्मे अभी हाँ कहकर, ऐसी बेटी हो तो बेटे की जरूरत क्या है, ऐसी बेटी हो तो बेटे की जरूरत क्या है। आइए हजरात गुजारिश कर रहा हूँ शायर अहले बैत जनाब रजा मुर्शदाबादी साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ लाए। आप सलवात पढ़कर इस्तक़बाल करें। हाज़िर महफिल सलाम अलैकुम। आप हज़रात तब तक सलावात पढ़ें तब तक माइक ठीक हो जाए। मिलजुल कर बुलंद तरीन सलावात पढ़ें। सबसे पहले तो आप तमाम मोमिनीन की बारगाह में इस पुरनूर जश्न की मुबारकबादी पेश करता हूँ। उसके बाद आप हज़रात मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाएं, थोड़ी देर के लिए मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाएं। इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा जितनी देर भी रहूँ आपके साथ रहूँ, आपके साथ पढ़ता रहूँ, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आप मेरे साथ रहेंगे। बराए करम थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएं और मेरे साथ जुड़ जाएं। एक और सलवात पढ़ दे इज़्मत आले मोहम्मद पर। जज़ाकल्लाह। लीजिए माइक भी सही कर दिया भाई ने। या रसूल अल्लाह, या जज़ाकल्लाह, या। चलिए यहीं से शुरू करता हूँ। आप माशाल्लाह आमादा हैं, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, ज्यादा तमीदी गुफ्तगू भी नहीं। किबला यहीं से हाजिर कर रहा हूँ 4 मिसरे ममदू के हवाले से समाअत फरमाएं।
समाप्त फरमाएंगे कि रजा ये कह दो जरा उनसे इंतजार करें। नहीं नहीं, जितने पीछे हैं सब मेरे साथ बोलेंगे, क्योंकि अभी ये करिया ही बोल रहा है, लेकिन पूरा करिया बोलेगा कि रजा ये कह दो जरा उनसे इंतजार करें। रजा ये कह दो जरा उनसे इंतजार करें, फदक के लूटने वालों से जिनका रिश्ता है। अल्लाहू अकबर। मेरे साथ थोड़ा थोड़ा जुड़ जाइए। रजा ये कह दो जरा उनसे इंतजार करें, फदक के लूटने वालों से जिनका रिश्ता है। तो अभी चला लो तुम अपनी, मगर ये याद रखो इमामे वक्त बताएंगे वक्त किसका है। आए हाय, थोड़ा थोड़ा जुड़ जाइए। सलवात पढ़े अज़मत आले मोहम्मद पर। एक और सलवात पढ़े अज़मत आले मोहम्मद पर। या अली। या अली। देखिए, ये कोशिशें शैतान की तरफ से होती है जिक्र रोकने के लिए। जो 1400 साल से अब तक न रोक पाया, तो अब क्या रोकेगा। अल्लाह अकबर। यहीं से बस आगाज कर दिया है। देखिए, अभी आपने 3 शाबान का जश्न भी मनाया होगा, यकीनन मनाया होगा। मौला हुसैन के चाहने वाले कैसे ना मनाते। एक मंजर की अक्कासी कर रहा हूँ। किबला, आप लोगों से दुआ चाहिए, ताईद चाहिए। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है आप लोगों से दुआ लेना। सरकार खत्मी मर्तबत है, उनकी आगोश में हमारे और आपके मौला हुसैन आए हैं। देखिए मंजर कैसा है, आपके सामने अशार पेश कर रहा हूँ कि जहां से कुफ्र की बस्ती मिटाने आया है, जहां से कुफ्र की बस्ती मिटाने आया है, जहां से कुफ्र की बस्ती मिटाने आया है, खुदा के दी का मुकद्दर बनाने आया है। थोड़ा पीछे वाले भी बोल दीजिए कि जहां से कुफ्र की बस्ती मिटाने आया है, खुदा के दी का मुकद्दर बनाने आया है। तो उठा के गोद में शबीर को ये बोले रसूल, मेरा हुसैन शरीयत बचाने आया। हाय हाय, लब्बैक। मिलकर जज़ाकल्लाह, सलामत रहे। देखिए, लब्बैक या हुसैन का जब नारा लगे ना, तो सब पर लाजिम है मिलजुल कर जवाब दे। मेरे साथ मिलकर कहे लब्बैक या हुसैन। जज़ाकल्लाह। ये समा होता है ढाली पाड़ा का। मैं पहली बार आ रहा हूँ मेहदी डे के इस प्रोग्राम में, लेकिन अक्सर मैंने महसूस किया है, देखा है, माशाल्लाह बेहतरीन खिदमत करते हैं, बेहतरीन इंतजाम करते हैं। ज्यादा वक्त न लेते हुए नारा लगाने वाले भी सलामत रखे, जवाब देने वाले भी सलामत रहे। कि लगाओ नारा हैदर अली अली बोलो, लगाओ नारा हैदर अली अली बोलो, बनाओ अपना मुकद्दर अली अली बोलो। अल्लाहू अकबर। लगाओ नारा हैदर अली अली बोलो, बनाओ अपना मुकद्दर अली अली बोलो। सिखाओ बच्चों को घर पर अली अली बोलो, सिखाओ बच्चों को घर पर अली अली बोलो। बनाओ शेरे गजन पर अली अली बोलो। तो अजल से रुकनीय शामिल मेरी हयात में है, बिना अली के कहा कुछ भी कायनात। अल्लाहू अकबर। बिना अली के कहा कुछ भी कायनात में है। सलामत रहे, शाद रहे, आबाद रहे। क्या सुन रहे हैं कि बिछा के फर्श मुसर्रत अली अली कहिए, बिछा के फर्श मुसर्रत अली अली कहिए, मिलेगी और भी इज्जत। जुड़ जाइए थोड़ा सा। बिछा के फर्श मुसर्रत अली अली कहिए, मिलेगी और भी इज्जत अली अली कहिए, मिलेगी और भी इज्जत अली अली कहिए। निखरने लगती है सूरत अली अली कहिए, निखरने लगती है सूरत अली अली कहिए, संवरने लगती है किस्मत अली अली कहिए। तो करम खुदा का रजा उस पे बेहिसाब हुआ, अली का नाम लिया जिसने कामयाब हुआ, अली का नाम लिया, अली का नाम लिया जिसने कामयाब हुआ। जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। अली का नाम लिया जिसने कामयाब हुआ। है यही मुश्किल कुशा और है यही हाजत रवा। बहुत जल्दी क्योंकि बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, मैं दरमियान में ज्यादा देर नहीं रहूंगा। कि है यही मुश्किल कुशा और है यही हाजत रवा, इसके ही दम से है बाकी आज दीने किबरिया,
लब्बा है सलमान के हर वक्त इसका तस्किरा, करते हैं मीसम फराजेदार से इसकी सना, करते हैं मीसम फराजेदार से इसकी सना, तो इसकी खिलकत में है पिन्हा खिलकते दुनिया का राज, बंदा होकर भी खुदा का है अली बंदा नवाज। अल्लाहु अकबर, सलवात पढ़े अज़मत आले मोहम्मद पर। ऐसे नहीं, जितने लोग हैं इतनी आवाज नहीं आ रही है, सब मिलकर जीती जागती सलवात पढ़े अज़मत आले मोहम्मद पर। शोरे किराम की मौजूदगी भी हो चुकी है और यकीनन तायीद करेंगे बरादरान जो है यहीं से बस, क्योंकि देखिए आज पूरी कायनात जो है जनाबे अबू तालिब का सदका खा रही है, भले माने या ना माने, जनाबे अबू तालिब का सदका खा रही है। साबित करने लगा हूं इस बात को। पहले 4 में से समाअत फरमाए कि लिया मैंने वहां बेसाख्ता नामे अबू तालिब, लिया मैंने वहां बेसाख्ता नामे अबू तालिब, जहां पूछा गया बाकी यदि किसके करम से है। लिया मैंने वहां बेसाख्ता नामे अबू तालिब, जहां पूछा गया बाकी यदि किसके करम से है, तो दलील इस बात की है शाहिदी का आखिरी सजदा दिले इस्लाम की धड़कन अबू तालिब के दम से है, दिले इस्लाम की धड़कन अबू तालिब के दम से है। मैंने बात कही है, अब इंशाल्लाह दलील पेश करने लगा हूं, क्योंकि मौला के चाहने वाले बिना दलील की कोई बात करते ही नहीं है। समाअत फरमाइएगा कि आज पूरी कायनात जनाब अबू तालिब का सदका खा रही है। देखिएगा अगर कोई बात रह गई होगी कि क्या बताऊं आपको क्या क्या अबू तालिब का है, क्या बताऊं आपको क्या क्या अबू तालिब का है। अंबिया से भी सिवा रुतबा अबू तालिब का है। थोड़ा थोड़ा जुड़ जाइए मेरे साथ, सिर्फ सामने वाला करिया ही बोल रहा है, पीछे तक भी अगर आवाज जा रही है तो मेरे साथ बोलते रहेंगे ताकि मुझे लगे आप सुन रहे हैं। कि क्या बताऊं आपको क्या क्या अबू तालिब का है। अंबिया से भी सिवा रुतबा अबू तालिब का है। खुतबे ज़ैनब में लहजा है लिसानुल्लाह का। अल्लाहु अकबर, महसूस कीजिएगा, खुतबे ज़ैनब में लहजा है लिसानुल्लाह का, खुतबे सज्जाद में लहजा अबू तालिब का है। खुतबे सज्जाद में पूरी दुनिया जनाब अबू तालिब का सदका खा रही है। दावा किया है, दलील आपके हवाले, चाहे जैसे सुन लीजिए। क्या बताऊं आपको क्या क्या अबू तालिब का है। अंबिया से भी सिवा रुतबा अबू तालिब का है, तो खुतबे ज़ैनब में लहजा है लिसानुल्लाह का, खुतबे सज्जाद में लहजा अबू तालिब का है, तो खून में शामिल है असगर के अबू तालिब का खून। अल्लाहु अकबर, खून में शामिल है असगर के अबू तालिब का खून, आज भी खाता जहां सदका अबू तालिब का है। आज भी खाता जहां सदका अबू तालिब का है, खून में शामिल है असगर के अबू तालिब का खून, आज भी खाता जहां सदका अबू तालिब का है। चिलचिलाती धूप में करबला की खाक पर जेरे खंजर जो हुआ सजदा अबू तालिब का है। जेरे खंजर जो हुआ सजदा अबू तालिब, चाहे आप जैसे सुन लीजिए, क्योंकि मैं काफी देर से कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जो बोलने ये सोच कर आए कि मुझे बोलना ही नहीं है, उनसे कोई बुलवा नहीं सकता। जज़ाकल्लाह, जितने बोल रहे हैं काफी है, क्योंकि देखिए ये जो कम वाली तादाद है ना, इसमें भी दम होता है। कह दिया मैंने जो मुझे कहना था। 9 लाख को आज कोई भी नहीं पहचानता, लेकिन हमारे कौम के बच्चे 72 शोधा के नाम बता सकते हैं। आइए यहीं से हाजिर करता हूं, करबला की मुनासिबत से भी बात हो रही थी। एक मतलब 3-4 अशार आपके हसीन समातों के नज़र, चाहे जैसे सुन लीजिए। यकीनन जबान छोटी है, बात बहुत बड़ी है, लेकिन उनके सदक़े है, चाहे जैसे सुनिए। मेरे पास जो है मतला है, आपके हवाले कर दिया कि क्या खूब तूने पाया मुकद्दर है करबला। अल्लाहु अकबर, क्या खूब तूने पाया मुकद्दर है करबला, करबला की तकदीर। क्यों? क्या खूब तूने पाया मुकद्दर है करबला, मालिक तेरा हुसैन का अकबर है करबला, मालिक तेरा हुसैन का अकबर है करबला। और जंगल था, भाई देखेंगे कि जंगल था, तुझको शाह ने आबाद कर दिया। जंगल था, तुझको शाह ने आबाद कर दिया, सारी जमीनों से तू यूं बेहतर है करबला, सारी
तू यूं बेहतर है करबला। एक अजीब बात कहने लगा हूं, आपने देखा है अरबईन के वक्त लाखों नहीं करोड़ों का इज्तिमा पहुंचता है, कहां? करबला की जमीन में। जब लोगों को बुलाया गया जो माहिरीन है, एक्सपर्ट है, उन्होंने जब मुआयना किया तो यही नतीजा निकला, 20-30 लाख से ज्यादा लोग आ नहीं सकते, लेकिन वो पहुंच गए 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़, लेकिन किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई भूखा नहीं मरा, कोई प्यासा नहीं मरा। अल्लाह अकबर। इतनी छोटी सी जगह और इतने लोग जमा हो गए, कैसे जमा हुए? आज साबित करने लगा हूं, लिख लीजिए अपने लोहे दिल पे मिसरे। क्या खूब तूने पाया मुकद्दर है करबला, मालिक तेरा हुसैन का अकबर है करबला। जंगल से तुझको शाह ने आबाद कर दिया, सारी जमीनों से तू यूं बेहतर है करबला, तो आगोश में समेटे न क्यों जायरीन को, आगोश में समेटे न क्यों जायरीन को, कुल जायरों की बातिनी मादर है करबला। कुल जायरों की बातिनी मादर है करबला, कुल जायरों की बातिनी मादर है करबला, कुल जायरों की बातिनी मादर है करबला। और आकर यहाँ पे शाह ने दी को बचाया है। इस्लाम की हयात का महवर है करबला, इस्लाम की हयात का महवर है करबला। भाइयों, ताईद कीजिएगा, दुनिया में करबला कितनी है? एक है सरजमीन इराक में, लेकिन आज कुछ अलग बात करने लगा हूं। एक नहीं है करबला, अनगिनत करबला है, करोड़ों की तादाद में करबला है, अनगिनत है, कोई गिन नहीं सकता, इतनी करबला है। आप सोचेंगे कैसे? आइए शेर में जवाब सुनिए। मैंने कहा एक करबला नहीं है, एक से ज्यादा है। समाप्त फरमाइए शेर। क्या खूब तूने पाया मुकद्दर है करबला, मालिक तेरा हुसैन का अकबर है करबला। जंगल था तुझको शाह ने आबाद कर दिया, सारी जमीनों से तू यूं बेहतर है करबला, तो आगोश में समेटे न क्यों जायरीन को, कुल जायरों की बातिनी मादर है करबला। तो यूं तो बज़ाहिर एक ही है दहर में, मगर यूं तो बज़ाहिर एक ही है दहर में, मगर हर मातमी के कल्ब के अंदर है करबला। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। जो पहुंच गए उन तक मैं पहुंच गया, जज़ाक अल्लाह। यूं तो बज़ाहिर एक ही है दहर में, मगर हर मातमी के कल्ब के अंदर है करबला, हर मातमी के कल्ब के अंदर है करबला। उसको दुआएं देती है बेटी हुसैन की, उसको दुआएं देती है बेटी हुसैन की, जो भी जहां में तेरा सुखनवर है करबला, जो भी जहां में तेरा सुखनवर है करबला। हो देखना नसीब रजा को तेरी जमीन, हो देखना नसीब रजा को तेरी जमीन। ये भी तेरे हुसैन का नौकर है करबला, ये भी तेरे हुसैन का नौकर है करबला। आइए अपने सफर को बहुत मुख्तसर करते हुए चंद मिसरे आपके गोश गुजार कर दूं। देखिए मैं लाया था डायरी, लेकिन अभी तक खोला भी नहीं है, क्योंकि आप इतना अच्छा सुन रहे हैं। बस मैं चाह रहा हूं कुछ जो कलाम है उनके चंद अशार आपके हवाले कर दूं, जो मेरी नजर में बहुत ज्यादा करीब है। एक सलवात पढ़ ले तो आगे की बात करूं। मेहदी डे का प्रोग्राम हो, जश्न हो और मौला अब्बास की बात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। समात फरमाइएगा, यहीं से आगाज कर रहा हूं कि झुकाना चाहोगे फिर भी झुकाना पाओगे। मेरे साथ थोड़ा थोड़ा जुड़ जाइए, यकीनन खूने जिगर आपके हाथों में, चाहे जैसे सुनिए। झुकाना चाहोगे फिर भी झुकाना पाओगे, झुकाना चाहोगे फिर भी झुकाना पाओगे। मैं ऐसे औज का एहसास लिखने वाला हूं,
इंशाल्लाह हर कोई बोलेगा। चौथे मिसरे पे हर कोई बोलेगा। चौथे मिसरे को खास तौर पे सुने, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं चौथे पे तवज्जो, लेकिन आप समझते ही नहीं है। समाअत फरमाइए कि झुकाना चाहोगे फिर भी झुका ना पाओगे। मैं ऐसे औज का एहसास लिखने वाला हूँ तो मुझे न छेड़, ए तूफान जुल्म गौर से सुन, मैं अपनी कश्ती पे अब्बास लिखने वाला। मैं अपनी कश्ती पे अब्बास लिखने वाला हूं। ओ फौज शाम जरा सोच क्या हुआ होता, ओ फौज शाम जरा सोच क्या हुआ होता, जरी को इज़्न जो शब्बीर ने दिया होता। थोड़ा थोड़ा जुड़ जाइए मेरे साथ, जाने आने का सिलसिला चलता रहेगा। ओ फौज शाम जरा सोच क्या हुआ होता, जरी को इज़्न जो शब्बीर ने दिया होता, तो फसीले शाम से टकराते जाके सारे लई अली के शेर ने एक वार जो किया होता। अली के शेर ने एक वार जो किया होता, अली के शेर ने एक वार जो किया होता। बहैसियत मख्ता 4 और मिसरे सरकार बाबुल हवाइज की बारगाह में, उसके बाद मैं अपनी जगह, आपका शायर आपका नाजिम आपके हवाले। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, 4 मिसरे और सुन ले। तोहफा है मौला अब्बास के अलम उठाने वाले मौजूद हैं। जो लोग मौला अब्बास का अलम उठाते हैं मौजूद हैं। इस बात से निस्बत रखेंगे तो इंशाल्लाह जरूर बोलेंगे। जहां जहां तक जा रही है, बड़ों से दुआएं, मेरे भाइयों से बस दुआओं का तालिब समाअत फरमाइएगा। हक जमाने में हक परस्तों ने, छोटी बहर में बड़ी बात, चाहे जैसे सुनिए। हक जमाने में हक परस्तों ने कभी मिंबर कभी कलम से कहा। आखिरी मिसरे पे इंशाल्लाह हर कोई बोलेगा, चाहे जैसे सुन लीजिए। हक जमाने में हक परस्तों ने कभी मिंबर कभी कलम से कहा, और जो भी मुश्किल थी हो गई रुखसत जब भी अब्बास के आलम से कहा। जो भी मुश्किल थी हो गई रुखसत जब भी अब्बास के अलम से कहा। जो भी मुश्किल थी हो। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये थे जनाब रज़ा मुर्शिदाबादी साहब जो बेहतरीन अशार पेश कर रहे थे। वाक़ईन एक एक मिसरे बहुत प्यारे थे, जो दिलों तक में उतर रहे थे। जो बीच में फासला हो गया है, इस फासले को हम ये कह के ख़त्म कर सकते हैं कि हम बिला फसल के मानने वाले हैं, लिहाजा बीच में कोई फासला बर्दाश्त नहीं करते हैं। इसलिए गुजारिश ये है कि ये जो फासले से बैठे हुए हैं वो सलवात पढ़ते हुए थोड़ा सा और आगे आ जाए, इसलिए कि जो अभी आने वाले हैं वो इंशाअल्लाह आते रहेंगे। बेहतरीन अशार आप समाअत फरमा रहे थे मौला अब्बास के हवाले से। मुझे 4 मिसरे याद आ रहे हैं कि शिकस्ते आपका इतिहास लिख दिया जाए, शिकस्ते आपका इतिहास लिख दिया जाए, वरक वरक पे फ़कत प्यास लिख दिया जाए। शिकस्ते आपका इतिहास लिख दिया जाए, वरक वरक पे फ़कत प्यास लिख दिया जाए। सरे गुरूर उठाने लगी है फिर मौजें, चलो फरात पे अब्बास लिख दिया जाए। सरे गुरूर उठाने लगी है फिर मौजें, चलो फरात पे अब्बास लिख दिया जाए। नहीं, इस तरह से आपको नहीं सुनना है, आप ऐसे कभी सुनते ही नहीं हैं जो आज आप इस तरह से सुन रहे हैं। रज़ा मुर्शिदाबादी साहब बहुत अच्छे अशार पढ़ रहे थे, वाकई बड़ी मेहनत से पढ़ रहे थे, आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आगे का जो हल्का है सिर्फ वही दाद दे रहा था। जो पीछे बैठे हुए थे मुझे ऐसा लग रहा था या शेर उन तक पहुँच नहीं पा रहा है या वो खुद को अशार तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। लिहाजा राबिता ऐसा होना चाहिए शेर और सामे के दरमियान कि शेर आपके जहनों तक जैसे ही पहुंचे दादो तहसीन की आवाज़ शायर के कानों में आ जाए। ये कौन कहता है गैरों को टाल देता है। नहीं नहीं, देखिए थोड़ी देर के लिए आपको साथ देना पड़ेगा ताकि जो है वो आप बेदार हो जाएं। और शायर मैं आपके हवाले कर दूं, इस बार मैं बाहर का कोई शायर नहीं भेजूंगा बल्कि आप ही के दरमियान का शायर भेजूंगा जो बांग्ला ज़बान में शेर पढ़ेगा। लेकिन अभी तक इतनी कामयाब महफिल के बाद मैं ये फैसला नहीं कर पा रहा हूँ कि आप बांग्ला अच्छा सुनते हैं या उर्दू अच्छा सुनते हैं।
ये फैसला आपको खुद करना है। ये कौन कहता है, ये कौन कहता है गैरों को टाल देता है। बतौर खास शेर पेश कर रहा हूँ। ये कौन कहता है गैरों को टाल देता है, सभी को बिन्ते असद तेरा लाल देता है। नहीं नहीं नहीं, खुदा के लिए बेदार हो जाइए। ये कौन कहता है, ये कौन कहता है गैरों को टाल देता है। मेरे भाई मुतवज्जे रहना। ये कौन कहता है गैरों को टाल देता है, सभी को बिन्ते असद तेरा लाल देता है। अली के नाम में ना जाने किस कदर है असर, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता। अली के नाम में ना जाने किस कदर है असर, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। आइए हजरात, मैं गुजारिश कर रहा हूँ आप ही के दरमियान जिंदगी गुजारने वाले जो आपकी आदत व अतवार से बखूबी वाकिफ हैं कि उन्हें कब आपसे दाद लेना है और कब उन्हें आपको दाद देना है, ये सारी चीज़ों से बखूबी वाकिफ है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब मेराज हुसैन ढाली पाड़वी साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ लाए। जनाब मेराज हुसैन ढाली पाड़वी साहब सलवात पढ़कर उनका इस्तकबाल। हाजिरान महफिल, अस्सलामु अलैकुम। सर्वप्रथम জানাই আজকের এই পবিত্র महफिल সকলকে আমার আন্তরিক মোবারকবাদ। और প্রতিবারই কমিটির নির্দেশে একটি কথা বলি, এবারও কমিটির নির্দেশে সেই কথাটি বলতে চলেছি। সেটি হলো, যারা এখনো পর্যন্ত আর্থিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেননি, চেষ্টা করবেন দিয়ে দেওয়ার। এবং এই অনুষ্ঠানটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যদি কোনো ভুলভ্রান্তি হয়ে থাকে চেষ্টা করবেন মার্জনা করার। আর যদি মনে হয় যে একই ভুল বারবার হয়ে আসছে বা দীর্ঘদিন ধরে হয়ে আসছে, সেটি কমিটির ছেলের যারা আছে তাদের সাথে পার্সোনালভাবে বলবেন, চেষ্টা করবে সেই ভুলটি সংশোধন করি না। নারে সালাওয়াত। নিভে যাবে, নিভে যাবে দুনিয়ার জালিমদের রোশনি, নিভে যাবে, নিভে যাবে দুনিয়ার জালিমদের রোশনি, নিভে যাবে দুনিয়ার জালিমদের রোশনি। পড়বে যখন দুনিয়াতে, পড়বে হুজ্জাতের রোশনি, পড়বে যখন দুনিয়াতে আল হুজ্জাতের রোশনি, পড়বে যখন দুনিয়াতে আল হুজ্জাতের রোশনি। নারে সালাওয়াত। আসিবে ইমাম, আসিবে যেদিন ইমাম ভবে, আসিবে যেদিন ইমাম ভবে, কত বিচিত্র ধরা পড়বে। আসিবে যেদিন ইমাম ভবে, কত বিচিত্র ধরা পড়বে, কত বিচিত্র ধরা পড়বে। কারো বা খুশিতেই দিল হবে, কারো বা
আসিবে যেদিন ইমাম ভাবে কত বিচিত্র মুখ ধরা পড়বে আসিবে যেদিন ইমাম ভাবে কেহ বলে আমি সঠিক পথে কেহ দাবিদার তার উল্টো দিকে কেহ বলে আমি সঠিক পথে কেহ দাবিদার তার উল্টো দিকে কেহ দাবিদার তার উল্টো দিকে সঠিক বেঠিক গোল গাদার জটকে সঠিক বেঠিক গোল গাদার জটকে মাওলার হাতের জুলফিকার কি করবে আসিবে যেদিন ইমাম হবে কত বিচিত্র মুখ ধরা পড়বে আসিবে কত বিচিত্র ধরা পড়বে দরসলওয়াত पर इमाम हुसैन কেন বলবো না এ মুখে যদি হুসেন বলে কেন বলবো না এ মুখে যদি হুসেন বলে যদি হুসেন বলে যদি হুসেন বলে যদি হুসেন বলে হাসর হবে মহানন্দে যদি হুসেন বলে হাসর হবে মহানন্দে যদি হুসেন বলে দাউদ নবী লোহাকে মোমেন করতো হাতে 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 পাথর মোম হবে গোলে যদি হুসেন বলে যদি হুসেন বলে যদি হুসেন বলে এর প্রত্যেকটা স্ট্যান্ডার্ডের শেষ লাইনের শেষ শব্দ যদি হুসেন বলে এটার অপেক্ষায় থাকবে তাহলে ভালো ভালো কাজ দেখি ये एमन बेटी तोरा के जाके खुदा चेने 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 खुदार मर्जियो जाय बदले যদি হুসেন বলে যদি হুসেন বলে যদি হুসেন বলে যদি হুসেন বলে খোদা রাখে নসিবে নবী ফেরায় 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 বলে রাহিবেরও সন্তান মেলে যদি হুসেন বলে যদি হুসেন বলে যদি হুসেন বলে আবে জমজম সৃষ্টি ইসমাইলের পতাকাতে আবে জমজম সৃষ্টি ইসমাইলের পতাকাতে আবে জমজম সৃষ্টি ইসমাইলের পতাকাতে আবে জমজম সৃষ্টি ইসমাইল
কৌসার উঠবে জমিন থেকে যদি হুসেন বলে কৌসার উঠবে জমিন থেকে যদি হুসেন বলে যদি হুসেন বলে যদি হুসেন বলে ঈদের পোশাক দেখে আদম যেন প্রশ্ন না করে 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 আরশের শব্দে বলে যদি হুসেন বলে আরশের শব্দে বলে যদি হুসেন বলে যদি হুসেন বলে যদি হুসেন হুসেন বলে হুসেন নবীর পিঠে আর নবী সেজদার হালে 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 নামাজের রূপ যায় বদলে যদি হুসেন বলে যদি হুসেন বলে যদি হুসেন বলে যেন সে পায় হাসরে মিরাজ স্বপ্ন দেখে যেন সে পায় হাসরে মিরাজ স্বপ্ন দেখে স্বপ্ন যাবে না বলে যদি হুসেন বলে স্বপ্ন যাবে না বলে যদি হুসেন বলে যদি হুসেন বলে যদি হুসেন বলে পিতৃ সেরো ডানা মেলে যদি হুসেন বলে যদি হুসেন বলে যদি হুসেন বলে নরসলওয়াত এবার একটি পুরনো কাজটার রিকোয়েস্ট আছে যার কারণে পড়ছি নরসলওয়াত আসমানে শবি আসমানে শবি আসমানে শব করতে নিশারা যদি কে আসমানে শব করতে নিশারা যদি দিলে বলে কিয়ামত পর্যন্ত বর্ষিত পানি 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 কচি পায়ের ঠোঁট কচি পায়ের ঠোঁট কচি পায়ের ঠোঁট আসগার ধুলাই দিতে যদি কচি পায়ের ঠোঁট আসগার ধুলাই দিতে যদি কারবালা শামাল দিতে পারে তো না সে পানি 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 মৌলানা আব্বাস বাজুতে ছিল এমন শক্তি মৌলানা আব্বাস বাজুতে ছিল এমন শক্তি হুকুম পে পুরা দে বহিত রকের পানি
हुकुम पे पूरा देबो ही तो रक्तेर पानी हुकुम पे पूरा देबो ही तो रक्तेर पानी नर सलवार नर सलवार পুরনো কাশিদা আবার একটি আমার কাছে টোটাল 3টে পুরনো কাশিদার রিকোয়েস্ট আছে তার মধ্যে আর একটি পড়ব দু এক মিনিট পড়ব তাও পুরোটা পড়ব না নরে সালওয়াত ये तो के कथा वो मुसलमान रा एते नाराज हार बोलो किया छे ये तो के कथा वो मुसलमान रा एते नाराज हार बोलो मोरा हैदर के बोली जे मुश्किल कुशा एते नाराज हार बोलो किया ये तो हके कथा वो मुसलमान रा जे नबी के जे नबी के मानुष बिए पढ़ाय बोलो ना कि करे से काफिर হয় আবু তালিব কাফির বলি না মোরা এতে নারাজ और बोलो किया ये तो हकेर कथा वो मुसलमान रा एते नाराज और बोलो किया যারা ফাতেমা কে দিয়েছে কষ্ট নবীও আল্লাহ তাতে সমান ব্যতীত যারা ফাতেমা কে দিয়েছে কষ্ট নবীও আল্লাহ তাতে সমান ব্যতীত যে আল্লাহ কে কষ্ট দেয় তাকে মানে না এতে নারাজ হওয়ার বলো কি আছে ये तो हकेर कथा वो मुसलमानेरा कष्ट पाया जो आलम उड़ते देखे ये कष्ट तो आज नहीं ओई दिन থেকে कष्ट पाया जो आलम उड़ते देखे ये कष्ट तो आज नहीं बहु दिन থেকে ये कष्ट तो आज नहीं ओई दिन থেকে সারা রাত জেগে আলম পায়নি তারা এতে নারাজ হওয়ার বলো কি আছে ये तो হকের কথা মুসলমানেরা नाराज और बोलो की আছে नर सलवार इमाम ज़माना सुने एक दो लाइन जश्न इमाम के जारा मानाई जश्न इमाम के जारा मानाई और आकीदा मोन इमाम जान मायनी और आकीदा मोन
ইমাম জন্মায়নি জানবে কিভাবে ইমামে জন্মের কথা জানবে কিভাবে ইমামে জন্মের কথা ওর ঘুমন্ত ভাবনা আজ ভাঙেনি ওর ঘুমন্ত ভাবনা আজ ভাঙেনি ওর ঘুমন্ত ভাবনা আজ ভাঙেনি ইমাম কেমন হবে আজ বোঝেনি ইমাম কেমন হবে আজ বোঝেনি যদি দিন হয় খোদার ইমাম করবেন তিনি যদি দিন হয় খোদার ইমাম করবেন তিনি হয়তো ভাবে মসজিদে আছে এক ইমাম হয়তো ভাবে মসজিদে আছে এক ইমাম ও তো দুনিয়াতে আল্লাহ পাঠায়নি ও তো हैदर 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 हाथों को बुलंद करके हैदर 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 माशाअल्लाह माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह सुभान अल्लाह बेहतरीन समातें बेहतरीन अशार आप समात फरमा रहे थे जनाब मेराज हुसैन ढाली पाड़वी साहब को बहुत अच्छी आवाज़ ऐसी आवाज़ें बहुत कम मिलती हैं जो समातों से गुजरकर लौहे दिल पर नक्श हो जाया करती हैं। अब मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप आएँ आप सुने और जो बिखरे हुए हैं अब मुझे उन्हें भी बुलाने की ज़रूरत नहीं है इसलिए कि अब जो शायर आपके दरमियान आ रहा है उसकी आवाज़ में इतनी कशिश है इतनी जाज़बियत है इतनी मकनातीसियत पाई जाती है कि वो आवाज़ आपको खींचकर फर्शे विला पर लेकर आएगी इसलिए कि ये इमाम मेहदी का जश्न है नरजिस के लाल का जश्न है अस्करी के दिलबंद का जश्न है जाने बदरो हुनैन बाकी है जाने बदरो हुनैन बाकी है कल्बे ज़हरा का चैन नहीं देखिए अब तो माहौल बन ही चुका है जाने बदरो हुनैन बाकी है कल्बे ज़हरा का चैन बाकी है कह दो इस दौर के यजीदों से पर्दे में एक हुसैन कह दो इस दौर के यजीदों से पर्दे में एक हुसैन बाकी है पर्दे में एक हुसैन बाकी है मैं सिर्फ माहौल बना रहा हूँ उसके बाद आप होंगे आपकी समातें होंगी आपने साल भर इंतज़ार किया है इस शायर का जो आपके दरमियान आया है ऐसी आवाज़ जो दिल पर नक्श होने के लिए बेकरार है और आप हजरात भी उनके अशार को अपनी समातों के जरिए पुरकैफ बनाने की कोशिश करने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आप ज़हनी तौर पर आमादा हो जाएं। मैं शायर आपके हवाले कर दूंगा लेकिन उससे पहले दो चार मिसरे कि बहुत पत्थर पिघल कर रह गए गम की रवानी में। भाई देखिए इमाम मेहदी जुगर इमाम के हवाले से शेर आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। अब थोड़ी थोड़ी बंगला तो मैं भी बोलने लगा हूँ और समझने भी लगा हूँ। आपके ये मुस्कुराते हुए चेहरे ये बताते हैं कि अशार बहुत अच्छे हो रहे हैं कि बहुत पत्थर पिघल कर रह गए गम की रवानी में। बड़ा ही सोच है जाने वफा तेरी कहानी
खुदा के लिए मेरे साथ बोल देना। बहुत पत्थर पिघल कर रह गए गम की रवानी में, बड़ा ही सोच है जाने वफा तेरी कहानी में। तो अरीजे में अगर फुरकत की सारी दास्तां लिख दूं, सलग उठेगा दरिया, आग लग जाएगी पानी। मिलकर लास्ट सुलग उठेगा दरिया, आग लग जाएगी पानी में। नारा जरूर लगेगा, भरपूर नारा लगेगा। आखिरी फर तक नारे की आवाज पहुंचनी चाहिए, दोनों हाथ उठने चाहिए। अगर आप जुगर इमाम का जश्न मनाने के लिए बैठे हैं, बेताब हल्लौरी के दो मिसरे अर्ज करता हूँ। आता नहीं जो जश्न इमाम जमान में हुसैन भाई मेराज भाई, खुदा के कसम अशार का खून हो जाएगा। बेताब हल्लौरी कहते हैं आता नहीं जो जश्न इमाम जमान में, शैतान रहने लगता है उसके माथा। मिलकर है किया मेहदी, मिलकर हाथों को बुलंदी करके आता नहीं जो जश्न इमाम ज़मान में, शैतान रहने लगता है, शैतान रहने लगता है उसके मकान में। कभी बेताब हल्लौरी को सुनिएगा, बड़ा लुत्फ आता है। वादा कर लीजिए इस महफिल में इंशाअल्लाह अगले साल वो भी आ जाएंगे। आपने वादा किया था चंदन सानेहाल फैजाबादी साहब आए, आपने वादा किया था सोहेल बस्तवी साहब आ चुके हैं आपकी मोहब्बतों पर लब्बैक कहते हुए, लेकिन आपको वैसे ही सुनना है, बेदारी का सबूत देना है। अरीजा भेज के पूछा जो इंतजार की हद, खुदा के लिए मेरे साथ बोलो ना थोड़ी देर के लिए। अरीजा भेज के पूछा जो इंतजार की हद, मिला जवाब अभी और इंतजार करो। यकीन नहीं तुम्हें शायद हमारे आने का, यकीन है तो तकाजा न बार बार। यकीन है यकीन है तो तकाजा ना बार बार करो। नहीं अभी तो सभी झूमेंगे, मैं झुमाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको बुलवाने की कोशिश करता हूँ। और एक फिक्रा और कह दूं अजीज़ाने मोहतरम, देखिए आप खुद से नहीं बोलते हैं, मौला बुलवाते हैं। आप खुद से नहीं बोलते हैं, अली बुलवाते हैं। आप खुद से नहीं बोलते हैं, हसनैन बुलवाते हैं। हमारी माए और बहनें खुद से नहीं बोलती है, शहजादी ज़ैनब बुलवाती है, शहजादी कुलसूम बुलवाती है, शहजादी कश्मीरा बुलवाती है। तभी जाके हम बोलते हैं। हर एक को बोलना नसीब नहीं होता है, इसीलिए तो मौलाए मुत्तकियान ने कहा था बोलो ताकि पहचाने जाओ। क्या सुन रहे हो? मौलाए मुत्तकियान ने कहा था बोलो ताकि पहचाने जाओ, बोलो ताकि पहचाने जाओ। लिहाजा बोलते रहो, हौसला अफजाई करते रहो, ताकि शायर का दिल चौड़ा होता रहे, शायर का दिल चौड़ा होता रहे। इंशाअल्लाह आपको लुत्फ आने लगेगा। कलामे पाक के पारों से भीख मांगते हैं, रसूल पाक के प्यारों से भीख मांगते हैं। कलामे पाक के पारों से भीख मांगते हैं, कलामे पाक के पारों से भीख मांगते हैं, रसूल पाक के प्यारों से भीख मांगते हैं। फरिश्ते ले गए उस दर से रोटियां आकर, फरिश्ते ले गए उस दर से रोटियां आकर, ज़माने जिनके मज़ारों से भीख मांग। हाय हाय ये है ढाली पाड़ा, ये है ढाली पाड़ा। ज़माने उनके मज़ारों से भीख मांगते हैं सोहेल भाई, ज़माने उनके मज़ारों से भीख मांगते हैं, ज़माने उनके मज़ारों से भीख मांगते हैं। अब जितने कुर्सी पे मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं उनसे तवज्जो चाहता हूँ। ज़माने उनके मज़ारों से भीख मांगते हैं तो उन्हीं को मिलता है अल्लाह के खजाने से, जो सैयदा के दुलारों से भीख मांग। हाँ अभी तो आपको जगाने की कोशिश है। जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज से आवाज मिलाओ।
अली अली हाँ सलामत रहो अली 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 उन्हीं को मिलता है अल्लाह के खजाने से। हाँ ऐसे ही रहना, ऐसे ही रहना। अभी तो घुटनों के बल खड़ा होगा मेरा ये मजमा, ये जो नौजवान है। उन्हीं को मिलता है अल्लाह के खजाने से जो सैयदा के दुलारों से भीख मांगते हैं, जो सैयदा के दुलारों से भीख मांगते हैं। क्या सुन रहे हो? जो सैयदा के दुलारों से भीख मांगते हैं तो इलाज कोई नहीं उनकी बदनसीबी का, जो फूल छोड़ के खारों से भीख मांग। इलाज कोई नहीं उनकी बदनसीबी का। हैदर हैदर हैदर, पूरी दुनिया में यह जश्न लाइव हो रहा है। इलाज कोई नहीं का, जब फूल छोड़ के खारों से भीख मांगते हैं। आखिरी शेर पहुंचा रहा हूं अपने खड़े हुए जो चाहता हूँ, अपनी माँ और बहनों से भी तवज्जो चाहता हूँ। उलमाए किराम जो स्टेज पर तशरीफ फरमा है, जो जाकिरीन खुतबा शोरा है, सभी से भरपूर तवज्जो चाहता हूँ। कुरान पाक की आयत से भीख मांगते हैं, रसूल पाक के प्यारों से भीख मांगते हैं। उन्हीं को मिलता है अल्लाह के खजाने से जो सैयदा के दुलारों से भीख मांगते हैं। इलाज कोई नहीं उनकी बदनसीबी का, जब फूल छोड़ के खारों से भीख मांगते हैं। जब फूल छोड़ के खारों से भीख मांगते हैं तो अली को छोड़ने वालों का हाल मत पूछो। गली गली में हजारों से भीख। आइए हजरात, मैं यही चाह रहा था आपके समाते यहाँ तक पहुँच जाए तो फिर एक ऐसा शायर कि जो सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बैरून हिंदुस्तान भी बहुत मोतबर समझा जाता है, जिसकी आवाज़, जिसके अशार भी मोतबर होते हैं। या यूँ कहूँ कि चंद साल कबल एक आवाज़ सरजमीन बस्ती से उभरी थी। वो आवाज़ कम ही अरसे में आसमान समात के ऊपर मोहित हो चुकी है। आज वो आवाज़ हर कानों की जीनत है, हर समातों की जीनत है। मोहताज तारुफ नहीं वो शायर, बस सिर्फ इतना ही कहूँ कि सुना जो बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। उनके इस्तकबाल के लिए सिर्फ इतना ही कहूँगा कि सुना जो बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। मेरी मुराद जनाब सुहेल बस्तवी साहब इस्तकबाल करे बावाज़े बुलंद सलावत। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन महफ़िल सलाम अलैकुम। अव्वलन तो आप सबको आज के इस जश्न बाबरकत और जश्न पुरमसरत की मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ परवरदिगार की बारगाह में कि इस जश्न के सदक़े में जो भी नेक दिली हाजात हैं मालिक पूरी करें। और क्या खूब सुनते हैं आप, मौला आप सबको सलामत रखें। और जब चंदन भाई ने यहाँ का वादा लिया, मुझसे बात की, तो मैंने कहा चंदन भाई 7-8 महाफिल लगातार हैं, तो उसके बाद कहीं और कभी वादा था। तो सिर्फ उन्होंने एक जुमला कहा था कि एक बार चल के देखो बस खाली।
और यकीन जाने मौला सलामत रखे। जब से हम आए हैं ये बच्चे ये लड़के, क्या जज्बा है। और बुजुर्ग तो हैं यहाँ के, लेकिन जिस तरीके से इस्तकबाल और जो जिस तरह की जिम्मेदारियाँ और जो ये इन्होंने महफिल का इंतज़ाम किया, सजाया, बस दुआ है कि मौला सबको सलामत रखे। और बस कोशिश कर सकता हूँ, क्योंकि यकीनन ये कहने की बात भी नहीं, मुसलसल सफ़र है, महफिल है। बहरहाल मैं कुछ कोशिश करता हूँ टूटी फूटी सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए आए दिन ये इमाम की महफिल है, कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने से एक आवाज़ उठी जाती है। बदबख्तों की, मलऊनों की एक आवाज़ उठी थी कि ये एक कौम है जो इंतज़ार कर रही है अपने इमाम का, आए वो तो हम उनसे जंग करने को तैयार। खुदा लानत करे। मतलब आप सब शामिल हैं, सलवात पढ़ने में कोशिश कर रहा हूँ पढ़ने की। देखिए सलवात पढ़ दें। जो मौला के गिरफ्तार मिला है, जो में जो एक बात और, अल्हम्दुलिल्लाह बंगाल में हूँ लेकिन कहना नहीं पड़ रहा है कि इस लफ्ज का मतलब ये होता है, ये होता है। मौला सलामत रखे। नारा है जो में मौला के गिरफ्तार मिला है, जो में मौला के गिरफ्तार मिला है, वो जीते जी मुर्दे से भी बेकार मिला है, जो में मौला की गिरफ्तार मिला है, वो जीते जी मुर्दे से भी बेकार मिला है। इस दर्जा सुनाए गए बहलोल के किस्से, इस दर्जा सुनाए गए बहलोल के किस्से। अरे बच्चा भी मेरा समझदार मिला है, बच्चा भी मेरे घर का समझदार मिला है। यूं हुर की तरफ देख कर हैरान है सुलेमान, यूं हुर की तरफ देख कर हैरान है सुलेमान, ये मुझसे बड़ा कौन जमींदार मिला है, ये मुझसे बड़ा कौन जमींदार मिला है। लगता है कि ज़हरा से इन्हें मिल गई रोटी, लगता है कि ज़हरा से इन्हें मिल गई रोटी, रुख और फरिश्तों का चमकदार मिला है, रुख और फरिश्तों का चमकदार मिला है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। आवाज थोड़ी सुना दो भैया।
सलवात पढ़ दे और मोहम्मद वाले मोहम्मद। यहाँ से एक मतला चंद शाह, यकीन जाने जो खिदमत होनी चाहिए वैसी नहीं हो पा रही है। बहरहाल आप सबकी मोहब्बतें। कुछ रोज कब एक मिसरा हुआ था कि कोई हुसैन की अज़मत घटा नहीं सकता, कोई हुसैन की अज़मत घटा नहीं सकता। कोशिश पढ़ने की आप सब शामिल हैं। एक बार और जीती जागती सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले। जो घर से नूर की महफिल में आ नहीं सकता, जो घर से आज पूरी दुनिया पूरा जहान परेशान है किसी तरीके से जन्नत मिल जाए, जन्नत मिल जाए, जन्नत मिल जाए। जो घर से नूर की महफिल में आ नहीं सकता, जो घर से नूर की महफिल में आ नहीं सकता, बगैर इसके जना में भी जा नहीं सकता, जो घर से नूर की महफिल में आ नहीं सकता, बगैर इसके जना में भी जा नहीं सकता। जो घर से नूर की महफिल में आ नहीं सकता, बगैर इसके जना में भी जा नहीं सकता। ताकत लगा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ शेर पढ़ने की कि आपने अक्सर देखा होगा घरों में छोटे बच्चे हैं, ये बच्चे अगर चलते चलते अगर तो आप उसका हाथ थाम लेते हैं। अगर कोई बच्चा छोटा है, गिर रहा है, चल रहा है, गिर गया, गिरने की कोशिश कर रहा है, लड़खड़ा गया, हाथों को थाम लेते हैं। देखिए शेर देख ले, बस कोई तवज्जो, थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। जो घर से नूर की महफिल, आवाज बिल्कुल साफ नहीं दे रही है, आ नहीं सकता, बगैर इसके जना में भी जा नहीं सकता। वो देख, अरे वो देख हाथों को थामे खुद अली अकबर, वो देख हाथों को थामे खुद अली अकबर। अज़ा का पाँव कभी लड़खड़ा नहीं सकता, अज़ा का पाँव कभी लड़खड़ा नहीं सकता। वो देख हाथों को थामे खुद अली अकबर। अज़ा का पाँव कभी खड़ा नहीं सकता। कहे ना जब तलक, अरे कहे ना जब तलक असग़र से अस्सलामु अलैह, कहे ना जब तलक असग़र से अस्सलामु अलैह, कहे ना जब तलक असग़र से अस्सलामु अलैह। चमन में कोई भी गुल मुस्कुरा नहीं सकता, चमन में कोई भी गुल मुस्कुरा नहीं सकता, चमन में कोई भी गुल
सकता नारा हैदरी चमन में कोई भी गुल नहीं सकता कहे ना अरे कहे ना जब तलकस से अस्सलाम अलैकुम चमन में कोई भी गुल मुस्कुरा नहीं सकता। आज का जमाना एक ऐसा जमाना है कि हर जगह आईडी मांगी जा रही है, बगैर आईडी के कहीं कोई एंट्री नहीं है और आईडी पर किसी आला की मोहर होनी चाहिए तभी वो आईडी मानी जाती है। एक मोहर मेरे मौला हुसैन ने करबला में भी लगाई थी। शेर सुन ले, जो घर से नूर की महफिल में आ नहीं सकता, कोशिश करो पढ़ने की, कहा अरे कहा ये शाह ने रूमाल बांध कर हुर से, कहा ये शाह ने रूमाल बांध कर हुर से, तुझे जिना से कोई अब हटा नहीं सकता, तुझे हटा नहीं। अरे कहे ना जब तलकस से अस्सलाम अलैकुम चमन में कोई भी गुल मुस्कुरा नहीं सकता, कहा ये शाह ने रूमाल बांध कर हुर से, तुझे कोई भी तुझे जिना से कोई अब हटा नहीं सकता, तुझे जिना से हटा नहीं सकता। शेर देखे किसी ने किसी से कोई वादा किया हुआ, शेर देखे रुका है काफिला ज़हरा बरसरे महशर, रुका है आपका शेर आपको सुना रहा हूं, कोशिश करो पढ़ने की। रुका है काफिला ज़हरा का बरसरे महशर, बगैर शीयों के जन्नत में जा नहीं सकता, बगैर जन्नत में जा नहीं सकता। जी अरे रुका है काफिला ज़हरा का बरसरे महशर, बगैर शीयों के जन्नत में जा नहीं सके। ये आप सबकी जानिब से पैगाम है, जहां है वहां चाहता हूं। ये कह दो धूम से नजरे इमाम भी ना करे, ये कह दो धूम से नजरे इमाम भी ना करे। अरे जो एक भूखे को रोटी खिला नहीं सकता, जो एक भूखे रोटी खिला नहीं सकता, ये कह दो धूम से नजरे इमाम भी ना
जो एक भूखे को रोटी खिला नहीं सकता, जो एक भूखे को रोटी खिला नहीं सकता। जवान बैठे सरकार, कोशिश करता हूँ पढ़ने की। जुलेखा, अरे जुलेखा चीख उठी देखते ही हुस्ने हबीब। जुलेखा जुलेखा चीख उठी देखते ही हुस्ने हबीब। जवानी ऐसे कोई पलटवा नहीं सकता, जवानी ऐसे कोई पलटवा नहीं सकता। मिसरा था कोई हुसैन की अजमत घटा नहीं सकता। शेर पेश कर रहा हूँ, एक मंजर मदीने का है। सब सर उठा उठा के देख रहे हैं, उठाते हैं सर, सजदे में चले जाते हैं, फिर उठाते हैं, सजदे में चले जाते हैं। कोई हुसैन की अजमत घटा नहीं सकता। बड़ा अच्छा सुन रहे हैं आप, बस सुन लें, दुआएं चाहिए। उतारे, अरे उतारे पूछते नबी से, ये किसमें हिम्मत है। उतारे पूछते नबी से, ये किसमें हिम्मत है। कोई हुसैन की अज़मत घटा नहीं सकता, कोई हुसैन। अरे उतारे पूछते नबी से, ये किसमें हिम्मत है। कोई हुसैन की अज़मत घटा नहीं सकता। ये इमाम का जश्न है, ये रोशनाई नहीं, खून दिल से लिखा है। ये रोशनाई, अरे ये रोशनाई नहीं, खून दिल से लिखा है। ये रोशनाई नहीं, खून दिल से लिखा है। मेरे अरीज़े को पानी मिटा नहीं सकता, मेरे अरीज़े को पानी मिटा नहीं सकता। आप सबका शेर आपको सुना रहा हूँ, कोशिश करता हूँ पढ़ने की। अरीज़े को पानी मिटा नहीं सकता, मेरे अरीज़े को पानी मिटा नहीं सकता। अलम 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 वो ताज़िया इसमें अगर रखा है सुहेल। अलम वो ताज़िया इसमें अगर रखा है सुहेल। अलम वो ताज़िया इसमें अगर रखा है सुहेल, तो ज़लज़ला भी तेरा घर गिरा नहीं सकता।
वाह। अरे अलम वो ताज़िया इसमें अगर रखा है सुहे तो ज़लज़ला भी तेरा घर गिरा नहीं सकता। देखिए बहुत सारे हुक्म मैं कोशिश करता हूँ पढ़ने की। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए भाई ने हुक्म दिया है एक मिसरा कि अब ये एक मिसरा हुआ था कि अली मौला बनाए जा रहे हैं। ये भाई का हुक्म है। बहरहाल वैसे नहीं हो पा रही है, नौकरी ऐसी होती है, बस मौला ये कबूल कर ले। ये नियत है कि जो भी टूटी फूटी नौकरी कबूल करें, क्योंकि बहुत ही मोहब्बत बहुत ही मोहब्बतों से बुलाया और क्या महफिल सजाई। परवरदिगार से दुआ है कि जश्न में जो भी इस अंजुमन में या जो भी यहाँ के बुजुर्ग हैं, मौला सबको सलामत रखे, शादोबाद रखे। कोशिश करता हूँ पढ़ने की देर के लिए आपको ले चलता हूँ गदीर खून के मैदान में। अली मौला बनाए जा रहे हैं। एक और सवाल पढ़े, जीती जागती। बस इतना कहना है कि जब इंसान कोई बहुत ज्यादा खुश होता है, एक बोलचाल की लैंग्वेज है, बहुत ज्यादा खुश होता है, कहता है अरे मत पूछिए भाई, आज मेरे लिए ईद का दिन, आज मेरा बेटा IAS बन गया, मेरी फला मुराद पूरी। सिर्फ और सिर्फ चंदन भाई के लिए मैं माहौल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अली मौला बनाए जा रहे हैं। कजावे कजावे सबके लाए जा रहे हैं। कजावे अली मौला बनाए जा रहे हैं। कजावे सबके लाए जा रहे हैं। सभी हाजी बुलाए जा रहे हैं। सभी हाजी बुलाए जा रहे। तो खुदा की ईद का दिन आ गया है। खुदा की ईद का दिन आ गया है। अली मौला बनाए जा रहे हैं। अली बनाए जा रहे हैं। या अली मौला बनाए जा रहे। खुदा की ईद का दिन आ गया है। वो देख हाथों को थामे है खुद अली पर, अज़ां का पाँव कभी लटका नहीं सकता। बड़ा शेर था जो दुआ करनी थी नहीं मिल पाए। वो देख हाथों को थामे है खुद अली पर, अज़ां का पाँव कभी लटका नहीं सकता। खुदा की ईद का दिन आ गया है। अली मौला बनाए जा रहे। क्या क्या कसम खुदा की क्या क्या निशान था परवरदिगार का यौम गदीर। कहीं पर आज है खुशियाँ ही खुशियाँ। कहीं पर आज है खुशियाँ ही खुशियाँ। कहीं आंसू बहाए जा रहे हैं। कहीं आंसू बहाए जा रहे। महसूस कीजिए आप गदीर खून में
कहीं आंसू बहाए जा रहे हैं। तपिश तपिश ऐलान की भी धूप में है। अरे तपिश ऐलान की भी धूप में है। मुनाफिक यूं जलाए जा रहे हैं। मुनाफिक यूं जलाए जा रहे। जरूरी अरे जरूरी कितने हैं इस दिन के मंजर जो अंधे को दिखाए जा रहे हैं। तो फलक भी सर उठाकर देखता है। फलक भी सर उठाकर देखता है। अली इतना उठाए जा, अली इतना उठाए। फलक भी सर उठाकर देखता है। अली इतना उठाए जा रहे हैं। उन्हें खलते हैं क्यों इस दिन के खुतबे। कहा वो मुंह छुपाए जा, थोड़ा सा जागिए। कहा वो मुंह छुपाए जा रहे हैं। उन्हें खलते हैं क्यों इस दिन के खुतबे। कहा वो मुंह छुपाए जा रहे हैं। तो गदीरे कैसी चोट खुदा जाने। गदीरे खून के जाकर जख्म देखो। गदीरे खून के जाकर जख्म देखो। सकीफा में दिखाए जा रहे हैं। सकीफा में दिखाए जा रहे हैं। सकीफा में दिखा एक शेर तक लाना है जा रहे हैं। तो वो जिनके दम से ये इस्लाम आया। वो जिनके दम से ये इस्लाम, वो जिनके दम से ये इस्लाम आया। वही काफिर बताए जा रहे हैं। वही काफिर बता। अब ये मौला अब्बास कलम उठाने वाले जवान मौजूद हैं, इसके नहीं बोलेंगे तो थोड़ी तकलीफ होगी। वैसे आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। नारा हैदरी। वो जिनके दम से ये इस्लाम आया। अरे वही अच्छा मियां है। वही काफिर बताए जा। तो वही हम ले गए परचम जरी का। वही हम ले गए
फतवे लगाए जा रहे हैं, जहां फतवे लगाए जा रहे हैं, जहां फतवे। अभी आखिरी शेर पढ़ रहा हूं अपने भाई जनाब सागर बनारसी साहब की दुआओं को ज़ेरे साया, बड़े भाई चंचल भाई, इनका बड़ा एहसान है। परवरदिगार और मासूमीन का शुक्रिया अदा करने के बाद मैं सबसे पहले आपका नहीं इनका शुक्रिया अदा करूंगा। ऐसी जैसी बस्ती में लाके खड़ा किया है, वाकई हर जगह का सफर किया है। कुछ अभी तो कुछ नहीं है सीखने, जुमा चार हुआ, लेकिन जहां भी गए ऐसी मोहब्बत और ऐसी अकीदत जो यहाँ देखने को मिली है। आप सबको मौला सलामत रखे और खास तौर पर चंदन भाई जिंदगी भर रहेगा, जिन्होंने मुझे जब मैं जानता नहीं था, इन्होंने कहा भैया चलना है, तो हमने कहा बस एक बार चल तुम देख लो, बस यही लफ्ज़ था इनका कि एक बार चल के देख लो बस। वो जिनके दम आखिरी शेर आपका है, ये इस्लाम आया रे वही काफिर बताए जा। रोज़े महशर आपका शेर है, हमारी आंखें इंशाअल्लाह वो मंजर देखेंगे, एक मंजर होगा और ये इस बस्ती के लोग होंगे। आवाज देंगे चंदन भाई, सागर भाई, सुहेल भाई, वो देख रहे हो, वो देखिए, अरे देखिए तो, अरे देखिए दरे ज़हरा, अरे दरे ज़हरा, दरे ज़हरा जलाया था जिन्होंने, दरे ज़हरा जलाया था जिन्होंने, जहन्नम में जलाए जा। जिए जिन्होंने जहन्नम में जलाए जा रहे हैं, अली मौला बनाए जा रहे हैं। सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं बहुत जल्दी जो है काम है मैं कोशिश करता हूँ पढ़ने की, जो भाइयों ने हुक्म दिया है। वारिसे अहमद मुख्तार के पीछे देखिए भाई, यहाँ के लिए तो सब नया है। जो भाइयों ने कहा वो एक करके पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरी दुनिया, पूरा जहान बिल्कुल तैयार है, कहीं से हमें हक मिल जाए। हक की तलाश में निकल पड़े हैं। चटाई बगल में है, लोटा हाथ में है। वारिसे अहमद और कहाँ मिलेगा? मुख्तार के थोड़ी सी बस थोड़ा सा साथ दे दें। पीछे वारिसे अहमद मुख्तार के पीछे हक चला हैदर करार के पीछे हक चला हैदर करार। बस जरा सी देर की ज़हमत। करार के पीछे ये मौला अब्बास के आलम उठाने वाले ये जवान ये दिन से खिदमत में लगे हुए हैं। मौला अब्बास के साए में मौला इनको सलामत रखे। हक एक शेर कोशिश कर रहा हूँ, महसूस कर लेना इसको। तो दुआओं में नवाज, दुआओं में सबके कितने मरहूमीन हैं जो चले गए, जो शुहदा हैं, शुहदाए हक, शुहदाए मिलत जाफरिया, उन सब की बुलंदी दर्जात के साथ वालिद मरहूम की मग़फ़िरत की दुआ भी कर देना। हक चला हैदर करार के पीछे भी बुजुर्गों से खास पाँव
हमेशा शह अबरार के पीछे पीछे थे हमेशा। जिंदगी 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 चूम, यूपी से ज्यादा अच्छी उर्दू समझ रहे हैं आप, मौला सलामत रखे। जिंदगी चूम रही थी शहवाला के कदम, जिंदगी चूम रही थी शहवाला के कदम। मौत थी लश्कर कुफार के पीछे पीछे। बड़ी उम्मीद लेके आया था। बात 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 ये तालिबे बैत ने कहा सोची थी। अरे लानते 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 इतनी है इनकार के पीछे पीछे लानते इनकार के पीछे। बस 4 या 5 शेर की सहमत है। एक कतबा मुझे बेहद अजीज है, सुन ले उसको, महसूस कर ले, दुआओं से नवाज दिएगा। आज अरे आज इस खैमे से हम शक्ल नबी निकला है। क्यों क्यों हुसैन आएना रहवार के पीछे पीछे। क्यों हुसैन आएना रहवार के पीछे। तो रन में जिस समत भी हमला था अली अकबर का, मौत चलती रही तलवार के पीछे पीछे। मौत चलती। एक अजब काफिला था और एक अजब काफिला सालार था। पेश कर रहा हूं, 2 शेर जगह ले रहा हूं दुआओं के साए में। करने को दीन नबी अपने हर गम का इलाज चल पड़ा बीमार के पीछे पीछे। चल पड़ा बीमार के पीछे। एक अजब काफिला था जो रमा दमा था कूफा और शाम की तरफ। एक अजब मंजर हमारी आंखों ने देखा। काफिला काफिला नारे 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 तकबीर का हमने देखा। एक एक जंजीर की झनकार के पीछे पीछे। एक जंजीर आपका शेर सुना के और मौला अब्बास के हवाले शेर सुना के जगह ले रहा हूं। एक जंजीर की झनकार के पीछे पीछे। ये असादार बैठे हुए इसे महसूस करेंगे। एक जंजीर की झनकार के पीछे पीछे। तो तुम अरे तुम जुलूसों में अकीदत
नजर से देखो अंबिया भी हैं आज़ादार के पीछे। तुम जुलूसों में अकीदत की नजर से देखो अंबिया भी हैं आज़ादार के पीछे। अब जो शेर मुझे सुनाना था पूरी कुव्वत इकट्ठा करके कोशिश कर रहा हूँ पढ़ने की। जवान अगर साथ दे देंगे तो तबीयत थोड़ी खुश हो जाएगी। अंबिया भी हैं आज़ादार के पीछे पीछे पाँव गाज़ी ने कभी आगे बढ़ाए ही। हाय रे जनाब मुल्क बनी की तरबियत कुर्बान है हम हकीर फकीर। कभी भाई ना कहना, आका कहना, नाम ना लेना, शहजादी कहना। पाँव गाज़ी ने कभी आगे बढ़ाए ही नहीं थे हमेशा शह अबरार के पीछे तो काफ़िले जितने हैं दुनिया में वफादारी के सब है अब्बास से अलमदार के पीछे पीछे। अगर आपने जो कहा है मैं कुछ नए शेर कहीं तो हाजिर कर देता हूँ, जगह ले लेता हूँ उससे ही सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इनका एक इन्होंने हुक्म दिया है कि जब से नसीब हो गया ज़हरा का घर हमें, जब से नसीब हो गया ज़हरा का दर हमें, सुल्ता मिजाज मिलते हैं खुद रोक कर हमें। मैं कलाम के चंद अशार पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी से। चंदन भाई बस आमद है बिल्कुल, बस उन्हीं के लिए एक माहौल बनाना है। एक मिसरा हुआ था कि ये महफिल इमाम अलैहिस्सलाम में चार उन्वान, ये मतलब आप लोग के लिए नहीं है और बहुत जगह जाते हैं महफिल पढ़ने। उन्वान जिसका मिदहते शाहे अनाम है, उन्वान जिसका मिदहते शाहे अनाम है। खामोश ऐसे जश्न में रहना हराम है, उन्वान जिसका मिदहते शाहे अना। बड़ी उम्मीदों से एक शेर पेश कर रहा हूं क्योंकि आप ऐसे शेर बहुत अच्छे सुन रहे हैं। किस मंजिल इसमें किस मंजिलत पे है अली असगर का मर्तबा। अरे किस मंजिलत पे है अली असगर का मर्तबा। किस मंजिलत पे है अली असगर का मर्तबा। पहला सफर ही दीन की नुसरत के नाम है, पहला सफर ही दीन की नुसरत के नाम है। जन्नत को, अरे जन्नत को सब तड़प है जन्नत के लिए। जन्नत को दूर से भी
नहीं देख पाएगा। जन्नत को दूर से भी नहीं देख पाएगा। जिसकी नजर में शाह का मातम हराम है, जिसकी नजर शाह का माँ, दो शेर जगह ले रहा हूं। मातम हराम, ये शेर देखने बेहद अजीज है। ज़ैनब का हर कलाम है शेरे खुदा की बात। दूसरा मिसरा, ज़ैनब का हर कलाम है शेरे खुदा की बात। शेरे खुदा की बात खुदा का कलाम है। शेरे काफी की तकरार है, जगह ले रहा हूं। शेरे खुदा की बात खुदा का कलाम है। आखिरी शेर है, आपको दुआएं चाहिए, मौला आप सबको सलामत रखे। क्या खूब सुना आपने, परवरदिगार आप सबको शादोबाद रखे। चाहे अरे चाहे ज़बान कटे ना अकीदा छुपाइए। आखिरी शेर है, पूरी ताकत लगा के पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। चाहे ज़बान कटे ना अकीदा छुपाइए। चाहे ज़बान कटे ना अकीदा छुपाइए। मीसम के आशिकों पे तक़िया हराम हैदरी। जिंदाबाद पाइंदाबाद। ये थे जनाब सुहेल बस्तवी साहब जो बेहतरीन अशार पेश कर रहे थे और आप महसूस हो रहे थे। हजरत अभी जनाब सुहेल बस्तवी साहब ने जो अशार पढ़े कि आप थे सैयद अबरार के पीछे पीछे, नैयर जलालपुरी ने उसमें थोड़ा सा इजाफा कर दिया है और मैं वो चाहता हूँ कि वो इजाफा आपकी खिदमत में अर्ज कर दूँ कि या अली सूरह रहमान के आगे पीछे। भाई सुहेल भाई ने पढ़ा था पीछे पीछे, लेकिन नैयर जलालपुरी सरजमीन जलालपुर से आवाज देते हैं या अली सूरह रहमान के आगे पीछे, तेरा ही जिक्र है कुरान के आगे। अरे खुदा के लिए थोड़ा सा बेदार हो जाए ना। या अली सूरह रहमान के आगे पीछे, तेरा ही जिक्र है कुरान के आगे पीछे। तो ढूंढने निकली थी हैदर की फजीलत दुनिया, रह गई पूजरो सलमान के आगे। ढूंढने निकली थी हैदर की फजीलत दुनिया, रह गई पूजरो सलमान के आगे पीछे, रह गई पूजरो सलमान के आगे पीछे। अभी सुहेल बस्तवी साहब ने पढ़ा अली मौला बनाए जा रहे हैं। कितना शानदार मंजर था गदीर का, पालाने शुतुर था, ऊँटों के गजाओं का मजमा था, मिंबर बना हुआ था, हाजियों का मजमा था, नौशाह गदीर सुर्ख खैमे में बैठा हुआ था। सहाबी आ रहे थे, बखिन बखिन लगा या अली इब्न अबी तालिब, ऐ अली इब्न अबी तालिब आपको मुबारक हो, आपको मुबारक हो। आप हर मोमिन और मोमिना के मौला हो गए, आप हर मुस्लिम और मुस्लिमा के मौला हो गए। हर एक मुबारकबाद कर रहा है। या यूं कहूँ 70 बार कहा, एक बार अकीदत से मौला नहीं कहा।
भाई 70 बार मौला कहा गया, एक बार अकीदत से मौला नहीं कहा गया। भाई पलाने शिदुल का मिंबर बन गया है। रसूल ने अली को उठा लिया है, इतना उठाया जा रहा है, इतना उठाया जा रहा है। अभी सब आपने शेर में मुलाहिजा फरमा लिया है, लेकिन अब शायर अपने तखय्युलात को समेट के कहता है कि मन कुन तो कह के सबको बताया रसूल ने। भाई मन कुन तो कह के सबको बताया रसूल ने, दीने खुदा का वारिस और हकदार कौन है। मन कुन तो कह के सबको बताया रसूल ने, दीने खुदा का वारिस और हकदार कौन है। तो देखो गदीर खुम से सकीफा की चौक तक तारीख ही बताएगी गद्दार। देखो गदीर खुम से सकीफा की चौक तक तारीख ही बताएगी गद्दार कौन है। अब मैं उस शायर का नाम नहीं लूंगा जिसे मैं हवाले कर रहा हूं। मैं 4 मिसरे पर मैं सिर्फ 4 मिसरे पढ़ूंगा। आपको खुद ब खुद अंदाजा लगा लेना है कौन शायर है जो आपके दरमियान आ रहा है। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इशारा आपसे अच्छा कोई नहीं समझता है, किनाया आपसे अच्छा कोई नहीं समझता है, समात आपसे अच्छी किसी की नहीं है। मैं 4 मिसरे पढ़ूंगा। लहू फिर हमसे मांगा जा रहा है, लहू फिर हमसे मांगा जा रहा है, सरे मख्तल सजाया जा रहा है। खुदा के लिए 2 मिसरे संभाल लेना, इसी से अंदाजा लगा लेना कौन शायर तुम्हारे दरमियान आ रहा है। अगर आपने इस मिसरों की पजीराई कर दी तो वो शायर भी पूरे इन्हमाक के साथ शेर पढ़ेगा। लहू फिर हमसे मांगा जा रहा है, सरे मख्तल सजाया जा रहा है। गुरूरे हुर्मुला टूटेगा रन में, अली असगर को लाया जा रहा है। मिलकर गुरूरे हुर्मुला टूटे गरन में, अली असगर को लाया जा रहा है। गुरूरे हुर्मुला टूटे गरन में, अली असगर को लाया जा रहा है। मेरी मुराद साक़ी तरफदार सल्लल्लाहु, साक़ी तरफदार सल्लल्लाहु। इस बच्चे की सलामती के लिए बावाज़े बुलंद सलवात इरशाद। আমি মদিনায় গিয়ে কি করব মুক্তি, আমি মদিনায় গিয়ে কি করব মুক্তি। আমার রাসূলের পাককে খুল কারবালায় তো কারবালার সম্মান জিদ কার করে গেছে, তো কারবালার সম্মান জিদ কার করে গেছে। সেই দিন থেকে কারবালার জমিনে তোমার तो छाड़ो दुनियार चिंता, चलो আমরা কারবালায় যাই। তো ছাড়ো দুনিয়ার চিন্তা, চলো আমরা কারবালায় যাই। যেখানে আমাদের মতো গোলামের ভাগ্য গাজী আব্বাস বলে দেয়। এও সাইরি পিয়ালি রওজা তোমার দেখে, এও সাইরি পিয়ালি রওজা তোমার দেখে, এসেছে আমি জান্নাতের নকশা দেখে। আরে ওই জন্যই তো সবাই যায় তোমার কাছে সাহায্য চাইতে। আর আমি জানি তুমি কাউকে ফেরাও না খালি হাতে। আরে ওই জন্যই তো সব ধনীদের মাথায় ঘাম বসে আছে। আরে ওই জন্যই তো সব ধনীদের মাথায় ঘাম বসে আছে। আর আমাদের মতন গরিবরা বাচ্চা দেখে
কত বুদ্ধিমান ছিল। আরে এত দিলে কি আমার কবি এসে যেত যদি একটা চাচা বাপ বাপ বসে লাগিয়ে তলোয়ার দিয়ে দিত। तो कफन करवाला लाल सते सते ठाके से फाड़िए, तो कफन करवाला लाल सते सते ठाके से फाड़िए, अभी कब्र जब तक करवाला। अरे दिल वैसे गिया करते करते घूमिए, अरे दिल वैसे गिया करते करते घूमिए, अरे शब्द ऐसे जब तारू सीधे जाने में सही तारू। तो छड़ो दुनिया चिंता चलो আমরা কারবালা যাই, তো ছড়ো দুনিয়া চিন্তা চলো আমরা কারবালা যাই, সেখানে আমাদের বদল গোলামের গাজিয়া বাদ বলতে দেয়। তো জুলাইখা কি ইউসুফ আঙুল কাটিয়ে দেবে, তো জুলাইখা কি ইউসুফ আঙুল কাটিয়ে দেবে, শুধু একবার কাছে। तो बाबा तुम्हारा हैदर कर सकीना, तो बाबा तुम्हारा हैदर कर सकीना, दादा तुम्हारा जाते सरदार सकीना। अरे लोगों की ठीक, अरे लोगों की ठीक, भाई किसे बात तोय पर सकीना, तुम्हार बसत के चक्कर काटते बढ़िया तुम्हारा आज दुनिया तुम्हार बाबा हैदर सकीना। तो कखनो रजा तो कखनो सजाई থাকে, আমি সালাম জানাই যাদের যার বাদশা গাই থাকে, আমি মদিনায় গিয়ে কি করবে মুক্তি আমার রসুলে পাক পাক করবালাই থাকে। নারে হায়দারি হায়দারি। करबला की फतह के दो चार जीने और हैं, करबला की फतह के दो चार जीने और हैं, कुछ नगीने आ चुके हैं कुछ नगीने और हैं। करबला की फतह के दो चार जीने और हैं, कुछ नगीने आ चुके हैं कुछ नगीने और हैं। हजरत शबीर के आंगन में असगर आ गए, हुरमुला की मौत को बस 6 महीने हजरत शबीर के आंगन में असगर आ गए, हुरमुला की मौत को बस 6 महीने और है। आप देखिए अजीजान मोहतरम, ये नन्हा सा बच्चा था जो पूरी दिलजमई के साथ पूरे हौसले के साथ फजाइले अली बयान कर रहा था, अली का नारा लगा रहा था। इसीलिए मैं कहता हूँ बच्चों को कभी पीछे न करिएगा बल्कि जिक्र अली में आगे आगे करिएगा। वो बच्चा ही था जिसने अपने माँ के पाक दामन होने की गवाही दी थी, वो बच्चा ही था जिसने यूसुफ के पाक दामन होने की गवाही दी थी, वो बच्चा ही था जिसने गहवारे में लेटे लेटे कहा था इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब वजअलनी नबिया। वो बच्चा ही था जिसने करबला के मैदान में जंग का नक्शा ही बदल कर रख दिया था। लिहाजा बच्चों को कभी नजरअंदाज नहीं करना है। ये नन्हा सा बच्चा आया, आने के बाद हमें जिक्र अली और नारे हैदरी का वजीफा बता रहा था। ये बता रहा था कि फराजेदार हो या कोई भी मिंबर हो, हमें अली अली करना है, हमें अली अली करना है, हमें मशक़े अली करना है, हमें मोहब्बत अली का दम भरना है, हमें मोहब्बत अली में झूमना है। और यही तो वजह है ना फराजेदार पे भी जिक्र मौला ढूंढ लेते हैं, जिन्हें जन्नत बुलाती है वो रास्ता ढूंढ लेते हैं। फराजे हाँ मिलकर मिलकर
मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि आप कितना अच्छा सुन रहे हैं, खुदा की कसम भैया दुआ देगी बीबी ज़हरा और इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिसके जश्न में आप शिरकत कर रहे हैं, लेकिन ये यकीन के साथ जरूर कह सकता हूँ और पूरे चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, अगर पंडाल के बाहर भी लोग खड़े हैं और अगर ये शेर उन्होंने सुन लिया ना तो वहीं से हाथ उठाकर तायद करेंगे। फराज़ेदार पे भी जिक्र मौला ढूंढ लेते हैं। मुझे नहीं पता है कौन नौजवान घुटनों के बल खड़ा होगा इस शेर को सुनने के बाद। फराज़ेदार पे भी जिक्र मौला ढूंढ लेते हैं, जिन्हें जन्नत बुलाती है वो रास्ता ढूंढ लेते हैं। हमारे हाथ है मानूस, इतना दामने हक से अंधेरे में भी हम नहजुल बलागा ढूंढ लेते। नहीं, अभी तो मैंने महासल शेर पढ़ा भी नहीं। अभी जो शेर मैं सुनाना चाहता हूँ खुदा के लिए वो शेर सुन लो ना, अब वो शेर आने वाला है। अब देखता हूँ ढाली पहाड़ा के ये नौजवान कितना बेदार होते हैं। फराज़ेदार पे भी जिक्र मौला ढूंढ लेते हैं, जिन्हें जन्नत बुलाती है। चचा शेर की हिफाजत करिएगा, वीडियो कैमरे की मौजूदगी में ये शेर पढ़ रहा हूँ। खुदा के लिए ये शेर रहेगा न जाने पाए, यहाँ से लखनऊ तक दवा देता हुआ जाऊंगा। फराज़ेदार पे भी जिक्र मौला ढूंढ लेते हैं, जिन्हें जन्नत बुलाती है वो रास्ता ढूंढ लेते हैं। हमारे हाथ है मानूस, इतना दामने हक से अंधेरे में भी हम नहजुल बलागा ढूंढ लेते हैं। तो जमाना महवे हैरत है हमारी चश्मे बीना पर, बुखारी में भी हम मनकुल तमौला। अली अली अली, हाँ मिलकर बोले अली 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 या अली मुझको तेरा नाम भला लगता है, तेरी निस्बत से ये इल्जाम भला लगता है। लोग कहते हैं तेरे इश्क में काफिर मुझको और मेरे दिल को ये इल्जाम भला लगता है। मौलाई बैठे हैं, आइए हजरात मैं गुजारिश कर रहा हूँ। एक आलिम जब शायराना लिबास होता है और शायरी की दुनिया में कदम रखता है तो जाहिर है उसके अशार भी बड़े आलिमाना होते हैं। और चे जाए कि आपकी बस्ती के इमाम जुमा व जमात मौलाना असद रजा साहब से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाए और बारगाह मौला में नजरान अकीदत पेश करें। तशरीफ ला रहे हैं मौलाना असद रजा इमाम जुमा व जमात ढाली पाड़ा 24 परगना बंगाल। इस्तकबाल करे बावाज़े बुलंद सलावत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बाराकातुहू। सर्वप्रथम আপনাদের সকলকে জানাই আমাদের যুগের ইমাম ইমাম মেহদি আজলাল্লাহু তাআলা ফরজুল শরীফ তার এই পবিত্র শুভ জন্মদিবস উপলক্ষে আন্তরিক মোবারকবাদ ও শুভেচ্ছা। এক সালাওয়াত মুহাম্মদ ওয়া আলে মুহাম্মদ। উলামায়ে কেরাম, উদাবা, শুরা, খুতাবা, মুমিনিন, মুমিনাত আপনাদের সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই এবং বাস অল্প সময়ের জন্য আপনাদের সম্মুখে আমি হাজির হয়েছি। যে কবি বলছেন मदे इमाम असर में के इश्क़ खुदा, इश्क़ नबी, इश्क़ इमाम। सोहेल भाई, इश्क़ खुदा, इश्क़ नबी, इश्क़ इमाम सरकार, इश्क़ खुदा, इश्क़ नबी, इश्क़ इमाम है इबादत ही इबादत ला कलाम।
है इबादत ही इबादत ला कलाम। तो एक तकाजा इश्क का है इंतजार, एक तकाजा इश्क का है इंतजार। ये इबादत करते हैं हम सुबह शाम, ये इबादत सोहेल भाई, चंदन भाई, ये इबादत करते हैं हम सुबह शाम। तो कर रहे हैं हम उसी का इंतजार। गुलशने ज़हरा का है जो लाला फाम, गुलशने ज़हरा का है जो लाला फाम। तो 15वीं तारीख थी, तवज्जो चाहता हूं कि 15वीं तारीख थी और 14वीं का चांद था। 15वीं तारीख थी और 14वीं का चांद था। गोद में नरजिस के जिस दिन आया वो माए तमाम, वो माहे तमाम। 15वीं तारीख थी और 14वीं का चांद था। गोद में नरजिस के जिस दिन आया वो माहे तमाम। तो है मेरे आका इमाम अस्र इब्ने अस्करी, है मेरे आका इमाम अस्र इब्ने अस्करी, वो इमाम इब्ने इमाम इब्ने इमाम इब्ने इमाम, वो इब्ने इमाम इब्ने इमाम इब्ने इमाम। तो पुर करेंगे अपने आलम से जहाने जुल्म को, पुर करेंगे अपने आलम से जहाने जुल्म को। और बतलाएंगे क्या है दीने रहमत का पयाम, और बतलाएंगे क्या है दीने रहमत का पयाम। तो रोशनी ही रोशनी देखोगे तुम हद्दे नजर, रोशनी ही रोशनी, रोशनी ही रोशनी देखोगे तुम हद्दे नजर। गोया अहदे नूर होगा जुल्मतों की होगी शाम, गोया अहदे नूर होगा जुल्मतों की होगी शाम। तो जानशीने मुस्तफा भी, जानशीने मुस्तफा भी हुज्जते आखिर भी है, जानशीने मुस्तफा भी हुज्जते आखिर भी है। अरे जिनकी ज़ाते पाक से होगा अदालत का क़याम, जिनकी ज़ाते पाक से होगा अदालत का क़याम। तो अज़ अली ता महदी, अज़ अली ता महदी दौरा हमारे पेशवा, अज़ अली ता महदी दौरा हमारे पेशवा। बादे पैगंबर रही है सारी खिलकत के इमाम, बादे पैगंबर रही है सारी खिलकत के इमाम। तो कलमा गोयों से है मेरा आजिज़ाना एक सवाल, या अली, या अली जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। कलमा गोयो से है, कलमा गोयो से है, कलमा गोयो से है, कलमा गोयो से है मेरा आजिज़ाना एक सवाल। कलमा गोयो से है मेरा आजिज़ाना एक सवाल। मुश्किलों में दीन की बदलाव कौन आया था काम, मुश्किलों में दीन की बदलाव कौन आया था काम। अरे मर्दे मैदान कौन था गज़वात में गैर अज़ली, इजाज़ भाई, मर्दे मैदान कौन था गज़वात में गैर अज़ली। तुम खुद ही इंसाफ से बतलाओ, दो कोई और ना, तुम खुद ही बतलाओ, तुम खुद ही बतलाओ, तुम खुद ही इंसाफ से बतलाओ, दो कोई और नाम। तो बद्र हो या खंदक, वो खैबर या कोई मारेगा। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बद्र हो या खंदक हो खैबर या कोई मारेगा। सर हुआ जब हैदर सफदर ने खींची थी हुसैन, सर हुआ जब हैदर सफदर ने खींची थी हुसैन। बस বাংলায় কয়েকটি সেই সবাই চুপচাপ বসে আছে। আচ্ছা আপনাদের তরফ থেকে এখানে সবাই এসে তো পড়া সম্ভব না, আপনাদের তরফ থেকে আমি কি পড়বো? সকলের তরফ থেকে পড়বো, সকলের তরফ থেকে পড়বো কি আমি?
জোরে বলে পড়বো সকলের তরফ থেকে একবার সালাওয়াত মুহাম্মদ ওয়া আলে মুহাম্মদ। আসুন আসুন আমরা নিজেকে যাচাই করি যে আমাদের যে যুগের ইমাম তানাকে আমরা কতটুকু জানি। তাহলে প্রশ্ন এই যে আমি কি জানি ইমাম মেহেদী? অতএব আমরা সকলেই, কিন্তু আপনাদের তরফ থেকে আমি বলছি, আমার তরফ থেকে, সকলের তরফ থেকে আমি কি জানি যে ইমাম মেহেদী আলাইহিস সালাম কে এবং তার সম্পর্কে আল্লাহ ও তার রাসূল এবং পূর্ববর্তী ইমামগণ কি বলেছেন? আমি কি জানি ইমাম মেহেদী আলাইহিস সালাম কখন এবং কোথায় জন্মগ্রহণ করেছেন? আমি কি জানি যে ইমাম মেহেদী আলাইহিস সালাম কোন পরিবারের সদস্য এবং তার পিতামাতার নাম কি? আমি কি জানি ইমাম মেহেদী আলাইহিস সালামের পুরো নাম, উপনাম, উপাধি কি? আমি কি জানি ইমাম মেহেদী আলাইহিস সালাম কখন এবং কিভাবে ইমামতের পদে নিযুক্ত হন? আমি কি জানি যে ইমাম মেহেদী আলাইহিস সালাম কেন অন্তরালে অতএব গায়বাতে আছেন, কবে থেকে আছেন এবং কতদিন পর্যন্ত থাকবেন? আমি কি জানি যে ইমাম মেহেদী আলাইহিস সালাম কি ধরনের গায়বাতে আছেন এবং এই দিকে আমরা কিভাবে তার থেকে লাভবান হতে পারি? আমি কি জানি যে গায়বাতে সুগরা ও গায়বাতে কুবরা এর মেয়াদ কতদিনের এবং এই সময়ে তিনি ইমামতের দায়িত্ব কিভাবে পালন করছেন? আমি কি জানি? এটা আমাদের কর্তব্য দায়িত্ব। তো আমি কি জানি যে কোরআন ও হাদিসে আমাদেরকে ইমামের সংস্পর্শে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আমরা কিভাবে তার সাথে যোগাযোগ করব? আমি কি জানি যে গায়বাতে কুবরা এই অতএব এই যুগে ইমাম মেহেদী আলাইহিস সালামের সাথে দেখা করা কি সম্ভব? যদি হ্যাঁ, তবে কিভাবে? আমি কি জানি যে ইমাম মেহেদী আলাইহিস সালাম কখন এবং কোথায় আবির্ভূত হবেন? তার সেনাবাহিনীর সংখ্যা কতজন হবে? তাদের গুণাগুণ কি হবে এবং তারা কিভাবে ইমাম মেহেদী আলাইহিস সালামকে সাহায্য করবে এবং ইমাম আলাইহিস সালামের সঙ্গী হওয়ার জন্য কি করা উচিত? আমি কি জানি? আমার কি জানা আছে যে ইমাম মেহেদী আলাইহিস সালামের আবির্ভাবের পর এই পৃথিবীতে ঐশ্বরিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে। ওই সরকারের কর্মী কারা হবে? তার শ্রম সংবিধান কি হবে? তিনি ঐশী ব্যবস্থা কিভাবে বাস্তবায়িত করবেন? আমি কি জানি? আমার কি জানা আছে? আমি কি জানি যে ওই সময়ে অতএব ইমাম আলাইহিস সালাম যখন গায়বাতে আছেন, অন্তরালে আছেন এবং যখন যহুর করবেন, তো ওই সময় আমাদের দায়িত্ব কি? আর এই সময় অতএব যখন যহুর করবেন, তো আমাদের দায়িত্ব কি? আমাদের দায়িত্ব কি হবে? আমার কি জানা আছে? আমি কি জানি যে ইমাম মেহেদী আলাইহিস সালাম আমাদের কাছে কি চান? সালাওয়াত মুহাম্মদ ওয়া আলে মুহাম্মদ। জোরে পড়বেন না? গ্রাফ এজেন্সি রাহুল ভাই, আমরা কিন্তু বাংলায় আছি আর পুরো ওয়ার্ল্ডে আপনি এটা বলে দেবেন যে আমরা এখানে দেখতেও পাই এবং শুনিও। পুরো ওয়ার্ল্ডে জানিয়ে দেবেন যে বাংলায় কিন্তু আমরা হুসাইনি বসবাস করি। আপনি জানিয়ে দেবেন, আপনি এটা পৃথিবীর কোনায় কোনায় পৌঁছে দেবেন। আপনি পৌঁছে দেবেন যে আমরা এখানে আলী ইবনে আবি তালিব আলাইহিস সালামের ভক্ত। আপনি এটা পৌঁছে দেবেন, দুনিয়ার কোনায় কোনায় পৌঁছে দেবেন যে ইমাম মেহেদী আলাইহিস সালামের অপেক্ষায় এই বাংলার বুকে আমরা প্রস্তুত এবং উপস্থিত আছি। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप दुनिया के हर गोशे में ये बात पहुँचा दीजिएगा कि ये बंगाल है और हम बंगाल में हैं, और ये बात आप पहुँचा दीजिएगा कि बंगाल में भी हुसैनी मौजूद है, अली के चाहने वाले भी मौजूद है, इमाम मेहदी के मुंतजिर भी मौजूद है। তাহলে আসুন সেই ইমামকে আমরা ডাকি। বাস কয়েক মিনিট আপনাদের কাছ থেকে সময় নেব। সেই ইমামকে ডাকি যে ইমাম আলাইহিস সালামের শুভ বিলাদাতে আমরা শুভ জন্ম তারিখ আমরা উদযাপন করছি। সত্যি খুবই দুঃখ লাগে, আবার খুবই আনন্দ হয়। দুঃখ এই যেভাবে আমাদেরকে হওয়া উচিত সেইভাবে হয়তো হতে পারলাম না, যে এই যতটুকু আমরা করতে পেরেছি সে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন সেটা তার দরবারে গ্রহণ এবং কবুল করে নেয়। এই হচ্ছে দুঃখ, কিন্তু আনন্দ এই মাহফিল, এই জশ্ন, এই মিলাদ দেখে হয়। আজ শবে জুমা এবং সকালবেলা আবার দুআয়ে নজবা হবে, অবশ্যই উপস্থিত থাকবেন। একবার সকলেই সালাওয়াত মুহাম্মদ ওয়া আলে মুহাম্মদ। আসুন আমরা সেই ইমামকে ডাকি,
আমরা সেই ইমামকে ডাকি ইয়া সাহেবাজ জামান, ইয়া সাহেবাজ জামান। জোরে বলুন, সকলেই মিলে বলুন ইয়া, পিছন থেকে ইয়া সাহেবাজ জামান, ইয়া সাহেবাজ জামান। এসো সবাই মিলে ইমামকে ডাকি, এসো সবাই মিলে ইমামকে ডাকি, এসো সবাই মিলে ইমামকে ডাকি, দো জাহানের বাদশাহকে ডাকি, এসো সবাই মিলে ইমামকে ডাকি, দো জাহানের বাদশাহকে ডাকি। আপনি যে এই দুনিয়াতে আল্লাহর ওলি, আপনি যে এই দুনিয়াতে আল্লাহর ওলি, আল্লাহর কসম আপনিও যে মাওলা আলী, আল্লাহর কসম যে আপনিও যে মাওলা আলী। এসো দো জাহানের মুশকিল কুশাকে ডাকি, এসো দো জাহানের মুশকিল কুশাকে ডাকি, এসো সবাই মিলে ইমামকে ডাকি, দো জাহানের বাদশাহকে ডাকি, দো জাহানের বাদশাহকে ডাকি। আপনি খয়বার জয়ী, আপনিও যে মুর্তজা, আপনি খয়বার জয়ী, আপনিও যে মুর্তজা, আপনি ত্রাণকর্তা, আপনিও যে মুশকিল কুশা, আপনি ত্রাণকর্তা, আপনিও যে মুশকিল কুশা। তবে কেন অমুককে 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 ডাকি? এসো সবাই মিলে ইমামকে ডাকি, দো জাহানের বাদশাহকে ডাকি, এসো সবাই মিলে ইমামকে ডাকি। তবে কেন অমুককে 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 ডাকি? এসো সবাই মিলে ইমামকে ডাকি, দো জাহানের বাদশাহকে ডাকি, দো জাহানের বাদশাহকে ডাকি। তো এই সূর্য, এই তারা, এই চন্দ্র জ্যোতিময়, শুনছেন তো? শুনছেন তো? এই সূর্য, এই তারা, এই চন্দ্র জ্যোতিময় যদি না থাকে আপনার নূর, তবে না রবে জ্যোতিময়। সেই ইমামতের উজ্জ্বল নূরকে ডাকি, এসো সবাই মিলে ইমামকে ডাকি, দো জাহানের বাদশাহকে ডাকি, এসো সবাই মিলে ইমামকে ডাকি। বাস শেষ চারটি লাইন আপনাদের সম্মুখে, যে চতুর্দিকে মুসিবতের লাভা ফুটেছে, যে চতুর্দিকে মুসিবতের লাভা ফুটেছে, যে সত্য এটাই সাহায্যকারী আপনি, যে সত্য এটাই, সত্য এটাই সাহায্যকারী আপনি, যে সেই মেহেরবান ও দয়ালুকে ডাকি, এসো সবাই মিলে ইমামকে ডাকি, দো জাহানের বাদশাহকে ডাকি। जज़ाकल्लाह। हज़रत मौलाना असद रज़ा साहब बेहतरीन पैगामात आपके ज़हनों में मुंतकिल कर रहे थे। जाहिर है जुगर इमाम 12वें इमाम का जश्न है, एक नूरानी जश्न है। आप हज़रात के ये मुस्कुराते हुए चेहरे जब देखता हूँ तो मुझे नैयर जलालपुरी के दो मिसरे याद आ जाते हैं, जो वो बड़े तिस्को एहतशाम से महफिल में कोट किया करते हैं। चाय का सिलसिला चलेगा, जरूर चलेगा, हर एक को बारी बारी चाय भी मिलेगी, लेकिन अभी इश्क़ अली की शराब पिलाई जा रही है। कम अज कम इसका भी जायका ले ले। अभी मौलाना मौसूफ ने एक बड़ी प्यारी सी बात कही कि राहुल साहब गिराफ एजेंसी के मालिक, आप सारी दुनिया को ये बता दो कि बंगाल में भी हुसैन वाले पाए जाते हैं। ये हकीकत है कि सिर्फ बंगाल ही नहीं
बल्कि ये सोचना ही अबस है कहाँ कहाँ है हुसैन, खुदा का मुल्क जहाँ है वहाँ वहाँ। नहीं, इतनी आसानी से अगर मैंने हल्के से पढ़ दिया इसका मतलब ये नहीं है मेराज भाई की इतनी आसानी से चुस्कियों के दरमियान ये शेर उड़ा दिया जाएगा। ये सोचना ही अबस है कहाँ कहाँ है हुसैन, खुदा का मुल्क जहाँ है वहाँ वहाँ है हुसैन। अब देखता हूँ कौन ऐसा हुसैनी अज़ादार बंदा बैठा है जो इस शेर को सुनने के बाद खामोश रहेगा। ये सोचना ही अबस है कहाँ कहाँ है हुसैन, खुदा का मुल्क जहाँ है वहाँ वहाँ है हुसैन। हर एक जर्रे पे लिखा हुसैन जिंदाबाद, हर एक जर्रे पे लिखा हुसैन जिंदाबाद, हर एक जर्रे पे लिखा हुसैन जिंदाबाद। भाई जिक्र अली जमीन पर भी है, जिक्र अली आसमान पर भी है, जिक्र अली कहकशा में भी है, जिक्र अली सितारों में भी है, जिक्र अली मलाइक में भी है, जिक्र अली हूर और गलमान में भी है, जिक्र हुसैन गुजरो सलमान में भी है, जिक्र हुसैन जन्नत में भी है, जिक्र हुसैन कौसर पर भी है, जिक्र हुसैन सलसबील पर भी है, जिक्र हुसैन कलम में भी है, जिक्र हुसैन इल्ताश में भी है, जिक्र हुसैन लोहे महफूज की बुलंदी पर भी है, जिक्र हुसैन सिद्दतुल मुंतहा की बुलंदी पर भी है, जिक्र हुसैन काबा हुसैन में भी है। कंबर की ज़बां पर जिक्र हुसैन है, अम्मार की ज़बां पर जिक्र हुसैन है, अब्बास की ज़बां पर जिक्र हुसैन है, अकबर की ज़बां पर जिक्र हुसैन। मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बोलते रहना। अब्बास की ज़बां पर जिक्र हुसैन है, कासिम की ज़बां पर जिक्र हुसैन है, ज़ैनब की ज़बां पर जिक्र हुसैन है, सकीना की ज़बान पर जिक्र हुसैन है, सकीना की ज़बान पर जिक्र हुसैन है, सकीना की ज़बान पर जिक्र हुसैन है। हर एक जर्रे पे लिखा हुसैन जिंदाबाद, हर एक जर्रे पे लिखा हुसैन जिंदाबाद। अब इससे बढ़ के शिकस्त यजीद क्या होगी, कहे यजीद का बेटा हुसैन। जिंदाबाद जिंदाबाद। हुसैन के इंतजार में ये हुसैनी बैठे हुए पलके बिछाए हुए हैं। कब पर्दे गैबत से हुसैन आए, कब पर्दे गैबत से हुसैन आए, कब जुल्फ़िकार अली के जौहर दिखलाए। वही मंजर देखना चाहते हैं जो कभी खैबर में देखा था, वही मंजर देखना चाहते हैं जो खैबर में देखा था, जो खंदक में देखा था, जो उहद में देखा था। आखिरी हुसैन आएगा जब जुल्फ़िकार हैदरी लेकर आएगा तो अंजाम क्या होगा काफिरों का और मोमिनों का। शेर की शक्ल में आपके हवाले कर रहा हूँ। जब जहां में अदल का सूरज आया हो जाएगा, जब जहां में अदल का सूरज आया हो जाएगा, जुल्म इस्तिबदाद का खुद खात्मा हो जाएगा। जब जहां में अदल का सूरज आया हो जाएगा, चाचा मेरे साथ बोलिएगा, जब जहां में अदल का सूरज आया हो जाएगा, जुल्म इस्तिबदाद का खुद खात्मा हो जाएगा। कौन मोमिन कौन काफिर कुछ नहीं बस चुप रहो, जुल्फ़िकार हैदरी से फैसला हो जाए। कौन मोमिन कौन काफिर कुछ नहीं बस चुप रहो, जुल्फ़िकार हैदरी से फैसला हो जाएगा, जुल्फ़िकार हैदरी से फैसला हो जाएगा। आइए हज़रात थोड़ी देर के लिए हम शायरी की दुनिया से निकलकर नस्ल की दुनिया से निकलकर नस्ल की दुनिया में आते हैं। कभी कभी कुछ नस्ल ऐसी होती है जो नज्म के ऊपर गालिब आ जाया करती है। आपने खुद ही महसूस कर लिया होगा, अब मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ नामे नामी इसमें गिरामी इज्जत माब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन साहब प्रिंसिपल जामे अहलुल बैत हुगली गुजारिश गुजार हूँ कि वो तशरीफ लाए और अपने ज़र्री ख्यालात से मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाए। तशरीफ ला रहे हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन साहब प्रिंसिपल जामे अहलुल बैत हुगली। इस नूर में मजीद इजाफा करने के लिए तशरीफ ला चुके हैं। इस्तक़बाल करें बावाज़े बुलंद सलवात पढ़कर।
हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदना व नबियना व हादियना व मुक़्तदाना व इमामना व हकीमना व लबीबना व तबीबना व हकीमना व शफीना व मुशफ़्फ़िना व शाफ़िना सय्यदना अबुल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल गुर्रिल मयामीन ज़ाकिरीन अल क़ानितीन अल आदिलीन साजिदीन अल राकिईन शाहिदीन अल साइदीन अल क़ाइदीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला आदाइहिम व क़ातिलिहिम व गासिबी हुक़ूक़िहिम व मुनकिरे फ़ज़ाइलिहिम व मुनकिरे मक़ामिहिम व मुनकिरे दरजातिहिम व मुनकिरे मनाज़िलिहिम अजमईन आमीन या इलाहल आलमीन आमीन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बादो फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फिल क़ुरानिल मजीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला रब्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन सलावत पढ़ें पर मोहम्मद और आले मोहम्मद। हज़रात आप हज़रात ये न समझेंगे कि मैं आपका बहुत ज्यादा वक्त ले लूंगा। आलो समाए भीतरे आपनार काछे अमीन फजीलते मौलाए कायनात फजीलते अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान करब किन्तु आपनार काछे अनुरोध आछे कि ভালো করে শুনেন ইনশাআল্লাহ বাস বেশি नहीं तो मैं आरंभ করছি। ए हमारे नौजवानों मैं आयत मैंने पढ़ी है उसका तर्जुमा भी पेश करूंगा लेकिन उससे पहले सुन लीजिए मेरे नौजवानों मेरे शिष्यों अली के गुलामों जब जिक्र अली से इतना नूर है जब जिक्र अली से इतना नूर है तो ज़ियारत अली के कब्र में कितना नूर होगा। शर्त ये है कि कब्र में इमाम जाए खलीफा नहीं। सलावत माशाअल्लाह। तो हर तरफ
नूर ही नूर है। हर तरफ चहल पहल है, हर तरफ रौनक ही रौनक है। मेरे नौजवानों, जिक्र अली वो है कि घूम आसे नहीं, घूम नहीं है, सब जाग रहे हैं। तवज्जो फरमाएंगे, सब जाग रहे हैं, कोई सो नहीं रहा है। कहनो कहनो जनाब एजाज साहब के पढ़े हुए अशार का एक मिसरा मैं आपके सामने पेश करता हूं। उन्होंने कहा, कदम कदम पर इल्म की खैरात देते हैं अली, कदम कदम पे इल्म की खैरात देते हैं अली। सुनो, इसी शेर की रोशनी में कहूं मैं कि मेरा मौला, मेरा मौला, मेरा मौला अली, अली, अली सोया एक मर्तबा, एक मर्तबा सोया, एक मर्तबा सोया, एक मर्तबा सोया, और क़यामत तक पूरे शियों को, समस्त शियों को बेदार करके अली चला गया। जरा इससे बेहतर सवाल पढ़े पर मोहम्मद और आले मोहम्मद। माशाअल्लाह। तो क़यामत तक के लिए हर शिया बेदार हो गया, और हर शिया की आंख से घूम गायब, सब के सब तैयार हैं। ये पता बता रहा है, ये सबूत है कि जब इमाम जाहिर होंगे तो हम मैदान में नजर आएंगे। सलावत अलैहि माशाअल्लाह। तो अजीजों, रोशनी यहां भी है, नूर यहां भी है, और कुछ और जगहों पर भी रोशनी होती है, मगर वो उजाला नहीं जो यहां है। और फरमाया वो उजाला नहीं जो यहां है, इसलिए कि हमारे दिमागों में उजाला है, इसलिए वहां उजाला नहीं है। रोशनी के बाद भी वहां उजाला नहीं है, और यहां उजाला ही उजाला है। इसलिए कि दिल में उजाला, आंखों में उजाला, चेहरे पे उजाला, अक्ल में उजाला, फिक्र में उजाला, दिमाग में उजाला, सीने में उजाला, जिस्म पे रोशनी, रूह में रोशनी। कहां कहां मुकाबला करोगे? मैदान में डटने वाले और होते हैं, अंधेरे में भागने वाले और होते हैं। ज़बान बोले, चेहरा जरूर बोलेगा। माशाअल्लाह।
ज्यादा सवामी ले वो नहीं। और जब थोड़ा वक्त होता है, जो थोड़ी चीज होती है वो बड़ी मजेदार होती है, बड़ी मजेदार होती है अजीजों। नया चावल हर जगह मिलेगा, पुराना चावल फकत बिरयानी में मिलेगा। तवज्जो फरमाया आपने। हमने जनाब पहली मर्तबा जनाब मौलाना एजाज साहब के जरिए से उसकी निजामत सुनी और दीगर जनाब सागर साहब और जनाब सुहेल साहब और जनाब रजा साहब और फिर जनाब आखिर में भी आने वाले हैं आपके सामने। चंदन पट्टी नहीं, पट्टी तो मीठी होती है, ये चंदन है, इनसे खुशबू निकलती है, समझे आप। तो मेरे नौजवानों, कुरान क्या कह रहा है अब सुन लीजिए। कुरान कहता है ला रत्ब वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। कुरान में समस्त जिनिस मौजूद আছে। अच्छा, समस्त जिनिस की আছে পরে বলবো, আগে বলছি নবুয়ত আছে, নবুয়ত के साथ साथ इमामत আছে, नबूवत के साथ साथ इमामत আছে। किंतु कौन इमामत, कैसा इमाम, कौन इमामत, कैसा इमाम, कैसा होता, सुनो ये बता रहा हूं तुम्हें, कैसा इमाम, वो जो मेयारे खुदाबंदी के मुताबिक हो, जो खुदा के स्टैंडर्ड के बराबर हो, जो मेयारे खुदा के मुताबिक हो, वो इमाम। सुनो नौजवानों, जरा सा गुफ्तगू बात बंद कर रहे हैं आप। स्टैंडर्ड जो अल्लाह का बनाया हुआ स्टैंडर्ड है, उसके मुताबिक तो कुछ लोगों ने कहा हम खुदा के बनाए हुए स्टैंडर्ड को नहीं मानते, हम खुदा के दिए हुए मेयार को नहीं मानते। अल्लाह मियां ने कहा जाओ, न मानो, मगर याद रखो तुम्हारा इमाम कैसा होगा, तुम्हारा इमाम कैसा होगा, तुम्हारा इमाम अंधा होगा, तुम्हारा इमाम लंगड़ा होगा, तुम्हारा इमाम बहरा होगा, तुम्हारा इमाम लूला होगा, तुम्हारा इमाम मुनाफिक होगा, तुम्हारा इमाम जाहिल होगा, तुम्हारा इमाम बुद्धू होगा, तुम्हारा इमाम फरारी होगा, तुम्हारा इमाम बुज़दिल होगा, तुम्हारा इमाम गैर शरीफ होगा, तुम्हारा इमाम इधर उधर का होगा, तुम्हारा इमाम ठाकुर के पास से आया होगा, ठाकुर के पास से आया होगा, और मेरा इमाम काबे से निकल कर आएगा। और सुनो, हमारा दिया हुआ इमाम काबे से पहले पैदा होगा और काबे से जाहिर होगा। हमारा इमाम हर मैदान का फातेह होगा। हमारा इमाम ऐसा इल्म लेकर आएगा कि शियों को कोई मोहताजी नहीं रहेगी, बल्कि लोग शियों से आके इल्म मांगेंगे। एक मरतबा दुरूद पढ़िए बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो सुन लीजिए, अल्लाह मियां ने क्या कहा,
कहा कुरान में सब कुछ है। ये तो गाना समस्त जिनिस कुरान भीतरे आछे। अच्छा मैं बताऊं क्या क्या चीज है, सुन लीजिए आप। आसमान कुरान में, जमीन कुरान में, अफलाक कुरान में, अनहार कुरान में, अशजार कुरान में, सितारे कुरान में, चांद कुरान में, सूरज कुरान में, जन्नत कुरान में, जहन्नम कुरान में, इंसान कुरान में, जिन्नात कुरान में, जन्नत की हूरें कुरान में, गिलमान कुरान में, तस्लीम कुरान में, सलसबील कुरान में, कौसर कुरान में, हवाए कुरान में, अल्लाह की कुदरत कुरान में, कादिरियत कुरान में, खालिकियत कुरान में, फिलाए कुरान में, नहरे कुरान में, जंगल कुरान में, मेरे कुरान में, सब कुरान में है, मगर एक चीज कुरान में नहीं है। एक चीज कुरान में नहीं है। क्या चीज? सकीफा कुरान में नहीं है। सकीफा सकीफा कुरान में नहीं है। अब जब देखे आप शैतान भी कुरान में है। अरे कैसे बुरे हैं कि शैतान तो आ गया मगर तुम्हारा खलीफा ना आया। मिलजुल के सवाल करने पर मोहम्मद और आलम ढूंढ के बता दो हमें, ढूंढ के दिखा दो हमें कि कुरान में सकीफा है या नहीं। तो जब सकीफा कुरान में नहीं है मेरे अजीजों, तो इसके मानी ये है कि अल्लाह के इल्म में नहीं है। अल्लाह के इल्म में नहीं है। ठीक तो अच्छा है, अच्छी और सुन लीजिए। जब खलीफा सकीफा कुरान में नहीं है तो फिर ये अमीरुल मोमिनीन कहां से बने? अगर अमीरुल मोमिनीन बने हैं तो कुरान में दिखाओ। कहेंगे तुम्हारा मौला भी तो अमीरुल मोमिनीन है, कुरान में दिखाओ। हमने कहा कुरान में बाद में दिखाएंगे। कुरान तो वजूद अली के बाद आया है। सलावत जो मिलजुल करेगा और सलावत पढ़ने पर मोहम्मद और आलम। तो अजीजा ने मोहतरम, ये महीना दो इमामों की विलादत का महीना है। एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और एक इमाम आखिर अलैहिस्सलाम। तो मैं जनाब चंदन साहब का वक्त लेना नहीं चाहता हूं और अब लंबा, क्योंकि फिर वो दिल में सोच कर होंगे मौलाना कहां से आ गए। क्योंकि मौलाना से बहुत से लोगों को एलर्जी होती है ना। तो अजीजा ने मोहतरम बहुत ही छोटी बातें आपके सामने कहूंगा। देखिए हम अब दो बातें हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में आपको बता दूं मैं, और उसके बाद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम। दुनिया में ये इंसान का बनाया हुआ कानून कहिए
या शैतान का गुमराह किया हुआ कानून कहिए कि एक मजहब वाला दूसरे मजहब वालों को पसंद नहीं करता, बल्कि दुश्मनी रखता है, मेल नहीं रखता, दुश्मनी रखता है, कीना रखता है, नुकसान पहुंचाता है, कोशिश करता है ये जो है खत्म हो जाए, हमारा दीन बाकी रह जाए। इसलिए कोई किसी के लीडर को पसंद नहीं करता, लेकिन हुसैन वो है, हुसैन वो है जिसे हिंदू भी अपना मानता है, जिसे ईसाई भी अपना मानता है, जिसे यहूदी भी अपना मानता है, जिसे कायनात अपना मानती है। इसके मानी जो हुए हुसैन ने बता दिया, सिर्फ दीन इस्लाम दीन नहीं है, बल्कि हुसैन के नाम का नाम दीन इस्लाम है। सल्लल्लाहु अलैहि हुसैन ही दीन है, जैसा कि ख्वाजा बेरी ने फरमाया, दीन अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन। बस आखिरी बात शेष को था, शेष को था। सुनिए, एक हदीस है, इंतदारुल फरज अफजलुल इबादत। इमाम का इंतजार, इस पर गौर कीजिएगा, ये शेष होता है। इमाम का इंतजार तमाम इबादतों से अफजल है, एक अफजल इबादत है। तो हम इमाम का इंतजार करते हैं, लेकिन अब सुन लीजिए आप, बहुत ही गहरी बात कर रहा हूं मैं। इंतजार दो किस्म का होता है, इंतजार दो किस्म का होता है। एक इनाम पाने के लिए इंतजार, एक इनाम पाने के लिए इंतजार, और दूसरा सजा को लेने के लिए इंतजार। जो इनाम पाने का इंतजार करता है वो कहता है इमाम पर्दे गैब में है, और जो सजा का इंतजार करता है वो डरता है, वो कहता है इमाम अभी पैदा नहीं हुए हैं, जब वक्त आएगा तो पैदा हो जाएंगे। तो मालूम हुआ जो इंतजार इमाम का कर रहे हैं उन्हें अल्लाह की तरफ से इनाम मिलेगा, और जो इंतजार नहीं कर रहे हैं और इमाम के पैदा होने के इंतजार में बैठे हैं वो सजा के मुस्तहक है, और उन्हें अल्लाह ताला सजा अदा करेगा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मैं इसी के ऊपर रहमत तमाम करना चाहता हूँ। हमारा मजमा जो है, मैं शुक्रगुजार हूँ कि उसने हमारा साथ दिया है, और ये महफिल जो है बहुत ही पुरनूर बनाई है। इंशाअल्लाह मेरी दुआएं हैं कि जो जितने मोमिनीन यहाँ आए हुए हैं, परवरदिगार इनकी रोजियों में बरकत अता फरमा, और जन्नत में इन्हें अहले बैत के साथ जगह अता फरमा। परवरदिगार तमाम शोराए कराम ने जो ज़हमतें उठाई हैं और दूर से सफर तैयार किया है, उनके तौफीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा, और उनकी मुश्किलात को दूर फरमा, और उन्हें हर तरह हर जगह कामयाबी अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। नारे सलावत।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। हज़रात, जो मैंने आपको यकीन दिलाया था, आप मुझे इंसाफ से बताएं मेरा वो यकीन मोतबर था या नहीं था। मैंने कहा था कि कुछ नस्र ऐसी होती हैं जो अशआर के ऊपर गालिब हो जाया करती है। बहुत अच्छे पैगामात, बहुत अच्छी तकरीर आप समात फरमा रहे थे। हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन प्रिंसिपल, मोहसिन रजा साहब प्रिंसिपल जामे अहलुल बैत हुगली की ज़बानी। बहुत अच्छे पैगामात थे, बहुत अच्छा अंदाज था। मुझे पता है हमारी फहरिस्त का एक याकूत अभी बैठा हुआ है। आप इंतजार कर रहे हैं पर्देदार का, इधर भी पर्दा उठेगा इंशाअल्लाह। वो याकूत आपकी नजरों के सामने आएगा। लेकिन उससे पहले फिर मैं ये गुजारिश करूंगा, जो मेरे भाई उधर बैठे हैं वो थोड़ा सा आगे आ जाए। प्लीज सलवात पढ़ते हुए थोड़ा सा आगे आ जाइए, ताकि एक जश्न का माहौल बन जाए। बहुत दूरों दराज से ये शोराए किराम आए हैं। एक एक मिसरे कहने के लिए इतनी अर्क़रेज़ी करनी पड़ती है, इतनी शब्देदारी करनी पड़ती है। इसका अंदाज़ा सिर्फ शायर ही जानता है कि वो कितनी मेहनत से कलाम कहता है और कितनी मेहनत से कलाम पढ़ता है। मेराज साहब गर्दन हिला के इसका इकरार कर रहे हैं और इस बात की तायीद कर रहे हैं। ज़हूर इमाम के हवाले से बेहतरीन पैगामात आप समात फरमा रहे थे। मुझे शायर अहले बैत के 4 मिसरे याद आ गए। मेरे इमाम जहां में तेरे ज़हूर के बाद, मेरे इमाम जहां में तेरे ज़हूर के बाद एक इनकलाब भी आएगा इनकलाब के बाद। मेरे इमाम जहां में तेरे ज़हूर के बाद एक इनकलाब भी आएगा इनकलाब के बाद। बैठे रहो बेटा। मेरे इमाम जहां में तेरे ज़हूर के बाद, मेरे इमाम जहां में तेरे ज़हूर के बाद एक इनकलाब भी आएगा इनकलाब के बाद। एक इनकलाब भी आएगा इनकलाब के बाद। छुपे हुए हैं हजारों यजीद दुनिया में, उठेंगी सबकी नकाबें तेरी नकाब के बाद। मिलकर एक माहौल बना दे चंदन फैजाबादी के लिए। मेरे इमाम जहां में तेरे ज़हूर के बाद, मेरे इमाम जहां में तेरे ज़हूर के बाद। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अंजुमन मुंतज़राने ढाली पाड़ा का कि उन्होंने वाकई बहुत अच्छे अंदाज से बड़े आला पैमाने पर इस महफिल मुकाशदा का इनेकाद किया है। अल्हम्दुलिल्लाह उनके जज्बे ईमानी में परवरदिगार आलम रोज़ बरोज़ इजाफा करता हुआ न चला है और उनके कारोबार में खैर व बरकत इनायत फरमाए। उन्हें सेहत व सलामती के साथ तूल उम्र इनायत फरमाए। मेरे इमाम जहां में तेरे ज़हूर के बाद एक इनकलाब भी आएगा इनकलाब के बाद। छुपे हुए हैं हजारों यजीद दुनिया में, उठेंगी सबकी नकाबें तेरी नकाब के बाद। उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, इन्हीं के कलाम की तर्जमानी पेश करता हूँ। उठेंगी सबकी नकाबें तेरी नकाब के बाद। तो वक्त का जब इमाम बोलेगा जर्रा जर्रा सलाम बोलेगा। वक्त का जब इमाम बोलेगा, मेरे साथ आवाज से आवाज मिला देना। आखिरी फर्क तक जो भरे हुए हैं मेरे नौजवान, वहां से हाथ उठने की आवाज आनी चाहिए। अगर दिल में इश्क अली करवटें बदल रहा हो तो वक्त का जब इमाम बोलेगा जर्रा जर्रा सलाम बोलेगा। नौजवानों तुम्हारे लिए शेर पढ़ रहा हूँ। वक्त का जब इमाम बोलेगा जर्रा जर्रा सलाम बोलेगा। नाम अकबर तेरा अजानों में रात दिन सुबह शाम बोलेगा। भाई उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, मैं इनकी भी तारीफ चाहता हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा हौसला मिल जाए। अभी बेहतरीन पैगाम आपने समाअत फरमाया है जनाब की ज़बानी। वक्त का जब इमाम बोलेगा, वक्त का जब इमाम बोलेगा जर्रा जर्रा सलाम बोलेगा। अभी आपने क़िबला की ज़बानी पैगाम समाअत फरमाए हैं। एक जुमला अर्ज कर दूँ आपकी ज़ौक़ समाअत के लिए। जब ग़ुलाम के कलाम में इतनी तासीर थी तो इमाम के कलाम में कितना असर होगा।
वक्त का जब इमाम बोलेगा, वक्त का जब इमाम बोलेगा, जर्रा जर्रा सलाम बोलेगा। मेरे भाई मुतवज्जो रहना, वक्त का जब इमाम बोलेगा, जर्रा जर्रा सलाम बोलेगा। नाम अकबर तेरा अजानों में रात दिन सुबह शाम बोलेगा। तो बोले निशम ज़बान कट जाए, ये अली का गुलाम बोलेगा। आए धर मिलकर बोले ना भाई, बोले निशम जबान कट जाए, ये अली का गुलाम बोलेगा। अब मैं 4 मिसरे पढ़ूंगा और आपसे ये नहीं कहूंगा आप बोले या ना बोले, ये आपका काम है। आपने अभी तक जितना बोला है बहुत अच्छा बोला है, ऐसे ही बोलते रहे, क्योंकि आप होंगे, आपकी समातें होंगी। शायर अहले बैत जनाब चंदन सानेहाल फैजाबादी आपके रूबरू होंगे, उनके बेहतरीन अशार होंगे, बेहतरीन आवाज होगी। लेकिन मैं 4 मिसरे उनके इस्तकबाल के लिए जरूर पढ़ूंगा, चूंकि बड़ी मोहब्बतों से आपने बुलाया है। अब बड़ी दूर का सफर तय करके ये आपके दयार में हाजिर हुए हैं, लिहाजा मैं उनके इस्तकबाल के लिए 4 मिसरे पढ़ूं। देखिए फिर मैं एक बात कह रहा हूं, वो जो आमदो रफ्त है ना खुदा के लिए, उसको बंद करवाइए और थोड़ा सा और आगे सिमट आइए। मुझे बार बार बुलाना पड़ रहा है, लेकिन मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि यह ज़रूरी है। किराफ एजेंसी पूरी दुनिया में जो है वो इस महफिल को लाइव नश्र कर रही है, तो लिहाजा हिफ्ज़ मातक़द्दुम का मुकम्मल ख्याल होना चाहिए, आपकी दाद की टाइमिंग होनी चाहिए और इसी अंदाज से आपको समाअत करना है। चंदन सानेहाल फैजाबादी आपके रूबरू होने जा रहे हैं। जाहिर है कि ये एक ऐसा नाम है जो सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बैरून हिंद भी जाना और पहचाना जाता है, जिसके नाम की धमक ये है कि इसकी खुशबू हर मशाम को मुअत्तर करती हुई नजर आती है, हर मशाम को मुअत्तर करती हुई नजर आती है। चाहे कि वो बंगाल हो या फिर कश्मीर हो या कन्याकुमारी हो, मुंबई गुजरात सौराष्ट्र हो, कोई भी इलाका हो, इनके अशार से खाली नहीं रहा है। इनकी समातें और इनके अशार को पढ़ने और सुनने का जो अंदाज होता है वो खत्म खुदा की चश्म बदम हो जाता है। इंसान हैरत ज़दा हो जाता है, अंगुश्त बदंदा हो जाता है कि अल्लाह ने सीने में ताकत कितनी अता की है, अल्लाह ने अशार में गहराई और गिराई कितनी अता की है। चंदन सानेहाल फैजाबादी आपके रूबरू हो रहे हैं। मैं उनके इस्तकबाल के लिए सिर्फ इतना ही कहूँगा कि तुझसे बिछड़कर गैर के आगे रोए हो तो हम मुजरिम। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप वाह वाह करिए, पर मैंने कहा ना आप होंगे, आपकी समातें होंगी, लेकिन अगर आपने हौसला दे दिया तो यहाँ से लखनऊ तक दुआ देता हुआ जाऊंगा। चंदन फैजाबादी के इस्तकबाल में ये 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ। तुझसे बिछड़कर गैर के आगे रोए हो तो हम मुजरिम। दिल का क्या है, दिल पागल है, पागल रोने लगता है। तुझसे बिछड़कर गैर के आगे रोए हो तो हम मुजरिम। दिल का क्या है, दिल पागल है, पागल रोने लगता है। तो खुशबू खुशबू लिखते रहना सांपों की मजबूरी है, वरना अपनी बेकदरी पे चंदन रोने लगता है, वरना अपनी बेकदरी पर चंदन रोने लगता है। रूबरू हो रहे हैं आपके चंदन सानेहाल फैजाबादी। इस्तकबाल करें बावाज़े बुलंद सलवात। हज़रात सामीन अस्सलाम वालेकुम। तमामी हजरात को जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। सरकार आपने तो ऐसा रख दिया है, कुछ लोग जो है मौलाना से चलते हैं, हम बहुत परेशान हैं। तमामी हजरात को जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। कुछ शेर जल्दी जल्दी सुना रहा हूँ। देखिए ये कहने की ज़रूरत नहीं कि थके हैं, क्योंकि हर आदमी इतनी वक्त थका ही हुआ है, आप भी थके हुए हैं, ठीक है। लेकिन हमको ज़्यादा इस वजह से सरकार करबला से मुझे भी घर में, हाँ रास्ते ही में मुझे उठा लिया गया था, तो मैं कुछ शेर हवाले कर रहा हूँ। अरे नूर, अरे नूर, अरे नूर, अरे नूर, अरे नूर, अरे नूर, अरे नूर,
इस दर्जा जनाबे जौन के चेहरे में है। अरे नूर, अरे नूर, अरे नूर, इस दर्जा जनाबे जौन के चेहरे में है। अरे नूर, अरे नूर, इस दर्जा जनाबे जौन के चेहरे में है। अरे चांद का हो सूरज भी सन्नाटे में है। अरे नूर, अरे नूर, अरे नूर, इस दर्जा जनाबे जौन के चेहरे में है। चांद का क्या जिक्र हो सूरज भी सन्नाटे में है। और चांद, और चांद का क्या जिक्र हो सूरज भी सन्नाटे में है। और ये शेर जो है मैं अपने करम फरमा हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना मोहसिन रजा साहब से नजर कर रहा हूँ। देखें, अरे दाद, अरे दाद, अरे दाद अकबर दे रहे हैं देख कर जंगे हबीब। अरे दाद, अरे दाद, अरे दाद, अरे दाद अकबर दे रहे हैं देख कर जंगे हबीब। सारी दुनिया की जवानी आज एक बूढ़े अली 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 अरे दाद, अरे दाद, अरे दाद, अरे दाद, अरे दाद अकबर दे रहे देख कर जंगे हबीब। सारी दुनिया की जवानी आज एक बूढ़े के सारी 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 दुनिया की जवानी आज एक बूढ़े में है। अरे सारी सारी जवानी आज एक बूढ़े में है। और आप लोग खुशकिस्मत अपनी माँ को दुआ दीजिए। मैं शेर हवाले कर रहा हूँ बतौर खास कि इस मैं पढ़ दे रहा हूँ सागर साहब के नूर, अरे नूर, अरे नूर, इस दर्जा जनाबे जौन के चेहरे में है। चांद का क्या जिक्र हो सूरज भी सन्नाटे। अरे चांद, अरे चांद, अरे चांद
का, अरे चांद का क्या जिक्र हो, सूरज भी सन्नाटे में है। अगर शेर अच्छा लगे तो दाद नहीं दुआओं से नवाज दिए सरकार, देखे शेर देते बतौर खास। अरे इसको सुन्नत ही नहीं वाजिब समझ कर कीजिए, इसको सुन्नत ही नहीं वाजिब समझ कर कीजिए। साल भर आशूर के फाखे, अरे साल भर अरे इसको सुन्नत ही नहीं वाजिब समझ कर कीजिए। साल भर का रिज़्क़ आशूर के फाके है, अरे साल भर का रिज़्क़ आशूर के फाके में है। राहुल कैमरा घुमा दो जरा से, मैं शेर हवाले कर रहा हूँ हुसैन साहब आपकी पूरी कमेटी को, जो हजरात बैठे हैं, मैं शेर पेश कर रहा हूँ, पहुंच जाए तो दुआ दे दीजिएगा। शेर देखें कि अरे भीख ले सकते हैं सब या समंदर एक साथ। मौलाना शेर देखें। अरे भीख ले सकते हैं सब दरिया समंदर एक साथ। इतना पानी आज भी गाजी के मशक़ी से अरे नूर इस दर्जा जनाबे जौन के चेहरे में है। चांद का क्या जिक्र हो, सूरज भी सन्नाटे में है। और भी जिक्र हो, अरे भीख ले सकते हैं सब दरिया समंदर एक साथ। इतना पानी आज भी गाजी के मशक़ी दे, अरे इतना पानी आज भी गाजी के मशक़ी में है। सरकार शेर है कि मौला अब्बास टूटा हुआ नेज़ा लेकर के गए थे, शेर बनाने की कोशिश की। समाज फरमा ले कि चंद लम्हों में किया है, एक को दो को चार।
अरे चंद, अरे चंद, अरे चंद लम्हों में किया है एक को दो, दो को चार। तेग है की सिफत टूटे हुए नेज़े। अरे चंद लम्हों में किया है एक को दो, दो को चार। के चंद लम्हों में किया है एक को दो, दो को चार। तेग है की सिफत टूटे हुए नेज़े। कि तेग है दर की सिफत टूटे हुए नेज़े में है। अरे अंधा, अरे अंधा, अरे अंधा हो जाए अगर सूरज भी देखे गौर से। के अंधा, अंधा हो जाए अगर सूरज भी देखे गौर से। इतनी है परचम अब्बास के पंजे। अरे के अंधा, अंधा, अंधा हो जाए अगर सूरज भी देखे गौर से। इतनी है परचम अब्बास के पंजे। अरे चमे अब्बास के पंजे। हजरात एक नज़्म मैं बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता और वो ये बच्चे कुछ नारा लगा में दिया था कि चलो भाई ये पढ़ दिया जाए। और आप हजरात से गुजारिश है कि नारे सलवात का सहारा दें। अब ये जो है सरकार पहले एक और नारे सलवार का सहारा दे। चक्कर ये है कि इतने निशान लगे रहते हैं। पहले ये कुछ शेर मैंने अभी करबला में पढ़े थे कि मनाने जश्न अली का, अली के घर वाले बस। कि मनाने अली का, अली के घर वाले चले हैं जानिब काबा। अली के घर वाले चले हैं काबा। अली के घर वाले सरकार
शेर देखें, उसी खुदा को खुदा कहें ना अच्छा लगता है, उसी खुदा को खुदा कहना अच्छा लगता है, वो जिसको करते हैं सजदा अली के घर वाले, वो जिसको उसी खुदा को खुदा कहना अच्छा लगता है, वो जिसको करते हैं सजदा अली के घर वाले, वो जिसको करते हैं सजदा अली के घर वाले। अमीर शाम की अमीर शाम की नींदें उड़ी है ये सुनकर, अमीर शाम के अमीर शाम के नींदें उड़ी हैं ये सुनकर, उलट के आए हैं कूफा अली के घर वाले, उलट के आए हैं कूफा अली के घर वाले। शेर दे दो भैया सरकार, शेर दे दो। सफर में महमिल ज़ैनब नहीं है गौर से दे, के सफर में महमिल नहीं है गौर से दे, जे लेके निकले हैं काबा ये लेके निकले हैं काबा अली, ये लेके निकले हैं काबा बस उसको मश्क ही सौंपी थी जाने क्या होता, बस उसको मश्क ही सौंपी थे जाने क्या होता, जो से मांगते दरिया अली, जो से मांगते दरिया जो से मांगते दरिया कनीज बन के चलो छोड़ दो फिजा, कनीज बन के चलो छोड़ दो फिजा, कनीज बन के चलो छोड़ दो फिजा, तुम्हें बनाएंगे सोना के कनीज बन के चलो, कनीज बन के चलो छोड़ दो फिजा, तुम्हें बनाएंगे सोना
मनाने जश्न जरी का अली के घर वाले चले हैं जानिब दरिया। चले हैं जानिब दरिया। बगौर देख रहा है रिदाए ज़ैनब को कि बगौर देख रहा है रिदाए ज़ैनब को। किसे झुलाते हैं झूला अली, किसे झुलाते हैं झूला। हजरत एक हवाले का ये मैंने शेर सरकार का 3 शाबान का शेर सुन लो भैया कि जब तक नूर खाके शिफा का नहीं मिला, कि जब तक नूर खाके शिफा का नहीं मिला, सजदा कोई भी हमको चमकता नहीं मिला, कि सजदा कोई भी हमको। भैया जो खड़े हैं मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा आप बैठे, अगर शेर पहुंच जाए वहीं से दुआ दे दीजिएगा बतौर खास। पसंद है ये शेर। अरे हल्का सरकार, अरे हल्का के हल्का सरकार शेर देखे। अरे हल्का के हल्का की हल्का बना के चलते रहे इस तरह असीर, के हल्का बना के चलते रहे इस तरह असीर, कातिल को भागने का भी रास्ता नहीं। अरे हल्का बना के चलते रहे इस तरह असीर, कातिल को भागने कभी रास्ता नहीं मिला, कि कातिल को भागने कभी कि कातिल को भागने कभी रास्ता नहीं मिला। शेर देते बुग़्ज़े न जब है दिल में तवाफ़ हरम के साथ, के बुग़्ज़े न जब है दिल में तवाफ़ हरम के साथ, काबा तो मिल गया उन्हें क़िबला नहीं।
के बुग़्ज़े नजफ़ तवाफ़े हरम के साथ काबा तो मिल गया उन्हें, अरे क़िबला नहीं के काबा तो मिल गया उन्हें, क़िबला नहीं मिला। सरकार ये शेर बोलने की कोशिश की है, मैं सिर्फ आपकी दुआ चाहता हूँ शेर देखें और बनस्बत इस्तिलाह है, अगर शेर रखा होगा तो दुआ दीजिए तो अल्लाह इस्तिलाह कर दीजिएगा। भैया शेर देखो कि वो देख, भैया शेर कि वो देख हज़रत अबू तालिब की सिमत दे, कि वो देख, अरे वो देख हज़रत अबू तालिब की सिमत दे, किसने कहा रसूल को साया नहीं, कि किसने कहा रसूल को साया नहीं मिला। भाई ये आखिरी शेर इसका सुन लो। अब मुझे बेहद पसंद है सरकार अगर इस शेर बनाने की बतौर खास भैया हुसैन ये आखिरी शेर इस सिलसिले का। किसी के छालों ने कर दिया, किससे 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 इतना पाँव के छालों में कर दिया, कांटा कोई भी राह में प्यासा नहीं, कि कांटा कोई भी प्यासा नहीं मिला। अब भैया आदेश अनुसार चलते चलते, क्योंकि भैया काफी थके हैं, बेटा उसकी आवाज बैठी उसने मना किया, बस ये आखिरी में सरकार एक मतलब पीछे अपनी जगह के अपनी आँखों से ही देख लेना मुफ्तियों तुम जरा चलते चलते। भैया तुम्हें भूख लगी हमें भी लगी है, बस जल्दी जल्दी सुनो कि अपनी आँखों से ही देख लेना मुफ्तियों तुम जरा चलते चलते, के देख ले जरा चलते चलते, कि रौंद डाले कस्बे तुम्हारे ये जुलूस से आजाद चलते, के रौंद के रौंद डाले तुम्हारे ये जुलूस से आजाद चलते चलते, के कुछ कदम
कि कुछ और बड़ा शय की जान कुछ कदम शय बड़े के जाने बख्श दी चंद लम्हों बेशहने हुर की सारी खता चलते चलते के बख्श दी चंद लम्हों में शहने हुर की सारी खता चलते चलते कितों को जंजीर कितों को जंजीर रहे कह रहे आए तबाहे जिसको बीमार समझा था तूने शाम तक आ गया चलते चलते के जिसको बीमार था तूने शाम तक आ गया चलते चलते क्या लग रहा है क्या लग रहा है कि मेरे लहद में कोई सूरज तला हो रहा है कि दोस्तों ने कफन में रखी थी थोड़ी खाक शिफा चलते चलते कि बोले असगर कि बोले असगर हो मक्के ये रंगे बाबले साथ वरना मैं मदीने होगा तो आता घुटनियों करबला चलते चलते के सुन के अशआर चंदन तुम्हारे वक्त भी रुक गया चल वक्त भी रुक गया चलते चलते खुदा की कसम ऐसा कोई अपनी जगह से नहीं उठेगा प्लीज प्लीज बैठे रहिए बस 5 मिनट बैठे रहिए माहौल जो बना है इस माहौल को और इसकी शाइस्तगी को बरकरार रखिए बहुत प्यारा माहौल बन चुका है हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं बचा हुआ है सिर्फ 5 मिनट आपकी खिदमत में शायर जनाब सागर बनारसी साहब होंगे आप होंगे आपकी समातें होंगी बड़ी दूर से शायर आते हैं लिहाजा सागर बनारसी साहब आपके रूबरू हो रहे हैं लिहाजा आप आजाद उनको समात फरमा लें भाई इसके बाद इंशाअल्लाह महफिल इख्तिताम पजीर हो जाएगी आंसू से कोई दूर कोई मूंगा नहीं होता आंसू से कोई दूर कोई मूंगा नहीं होता 100 बार यही बात कहूंगा नहीं होता आंसू से कोई दूर कोई मूंगा नहीं होता 100 बार यही बात कहूंगा नहीं होता आए हो जो महफिल में तो खामोश न रहना शबीर का आशिक यहाँ गूंगा नहीं रहना सागर बनारसी आप बिल्कुल वक्त नहीं है और आप यकीन माने ये आपकी मोहब्बत है वरना इस मनकबत को मैं बचा कर ले जाना चाहता था मैं जल्दी जल्दी हाजिर कर रहा हूँ जिक्र असगर कह बेकार की बातें न करो जिक्र असगर कह बेकार की बातें न करो जिक्र असगर कह बेकार की बातें न करो फूल की बात करो हार की बातें न करो बात करो हार की बातें न करो गैर अरे गैर यार की बातें न करो गैर यार की बातें न करो तुम हो उस पार के इस पार की बातें न करो तुम हो इस पार के इस पार की बातें न करो एक मतला एक शेर
हाजिर करता हूँ मुलाज़िम फरमाए और एक पैगाम के हवाले से। जी हुसैन भाई, वो अगर उनको पढ़ना होगा तो वो पढ़ेंगे और नहीं पढ़ना होगा तो वो पढ़ेंगे नहीं। आप मुझसे जुड़े रहिए। हाजिर कर रहा हूँ। जिक्र असगर का है बेकार की बातें ना करो, फूल की बात कर। 5 मिनट 2 मिनट हो गया। हाजिर कर रहा हूँ मुलाज़िम। एक मतला एक शेर। कातिल ने खूब देखा खंजर चला चला के, कातिल ने खूब देखा कि कातिल ने खूब देखा खंजर चला चला के, शबीर ने न देखा सजदे से सर उठा के, सजदे से सर उठा। ये पैगाम है, इसे आप अपने जहन में दिल में उतारिएगा। अरे मेहमान जब भी आए ताज़ीम उसकी करना, मेहमान जब भी आए ताज़ीम उसकी करना, मेहमान जब भी आए ताज़ीम उसकी करना। मौला बता रहे हैं हुर को गले लगा के, मौला बता रहे हैं हुर को गले लगा के। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। यकीन के साथ ये मैं कह सकता हूँ कि इस वक्त 2 बज चुके हैं, लेकिन आपकी समातें ऐसी हैं जैसे अभी आप रात के 9 बजे शोरा को सुन रहे हैं। मोमिनीन टस से मस्त नहीं हो रहे हैं। जब मैं शुरू में आया था तो उस वक्त ये महफिल 12 बजे खत्म हो जाती थी। कमेटी के मेंबरान मुझसे ये कहते थे एजाज साहब 12 बजे महफिल जरूर खत्म हो जाए। फिर आया 12:30 हो गए, फिर आया 1 बज गए, फिर आया 1:30 बज गए, अभी तो 2 बज चुके हैं। अभी 2 बज चुके हैं। आप वैसे ही ताज़ा दम है, वैसे ही आपके चेहरे पर ताजगी है। खुदा की कसम, यही तो मोहब्बत अली का जायका होता है, यही तो मोहब्बत अली का कैफ होता है, यही तो मोहब्बत अली का सुरूर होता है जो सर चढ़ के बोलता है। और जब हम या अली मदद कहते हैं, ऐसे ही लोग हमसे नहीं जलते हैं, बल्कि जब अली का नाम सुनने के बाद हमारे चेहरों पर ताजगी आती है, हमारे चेहरों पर नूर आता है, हमारे चेहरों पर रोशनी आती है, तो वो उस नूर से जलते हैं, उस रोशनी से जलते हैं, उस ताजगी से जलते हैं, उस शगुफ्तगी से जलते हैं। यही वजह है कि हम नामे अली उठते बैठते सोते जागते हर वक्त लिया करते हैं, क्योंकि ये हमारा वजीफा भी है, हमारा तराना भी है, हमारी बख्शिश का सहारा भी है, हमारे नजात का परवाना भी है। इस वक्त ये चाहने वाले इसरार कर रहे हैं जनाब सुहेल बस्तरी साहब के लिए, उनकी आवाज़ गिरफ्तार है, मुसलसल सफ़र पे सफ़र कर रहे हैं। लेकिन मैं ये गुजारिश करूंगा सुहेल भाई की खिदमत में, इन आज़ादारों का और इन चाहने वालों का थोड़ा सा एहतराम करें और तशरीफ लाएं। 2-4 शेर ही जहाँ तक आपकी आवाज़ साथ दे सुना दे, बड़े मतमन्नी है आपको सुनने के लिए। देखिए, आपकी मोहब्बतों पर लब्बैक कहते हुए ये हाजिर तो होगा है, आपको मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देना है। लिहाजा मिलजुल कर सब नारा लगा दे मेरे साथ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरी, हैदरी, नारे सलावत।
तो दो या तीन शेर में आपकी मोहब्बतों को सलाम है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक हसीन इस कदर कोहरा बर्पा कर दिया, दुश्मनों की फौज में रोना रुलाना कर दी। सुन रहे जो भी चलने के भी काबिल न था, बाप के पैरों पर चल के रन में हमला कर दिया। तेरे गज़फ़र को सलाम, जिसने रन में तीरों खंजर को खिलौना कर दिया। अब किसी बच्चे से लड़ने की उसे हिम्मत नहीं, हुर्रा को इस कदर असगर ने छोटा कर दे। आखिर के दो शेर ज़हमत तमाम, एक अली की शेर दिल बेटे। क्या खुतबा था दरबार शाम में। अपने खुतबों से अली की लाडली ने शाम में खुद को लश्कर कर लिया, लाखों को तन्हा कर। आखिरी शेर दिल लगा के सुनिएगा और मैं जगह ले रहा हूँ और आप सबको सलामत रखे। खुद को लश्कर कर लिया, लाखों को तन्हा कर दिया। मार कर ठोकर अली ने कर दिया जिंदा, मगर मार कर ठोकर अली ने कर दिया जिंदा, मगर खुतबे ज़ैनब ने तो जिंदा को मुर्दा। नारा हैदरी जिंदाबाद पाइंदाबाद। जनाब सोहेल बलबली साहब बेहतरीन अशार पेश कर रहे थे, आप महसूस हो रहे थे। जब लिया नामे अली मौसम सुहाना हो गया, जब लिया नामे अली मौसम सुहाना हो गया, मुश्किलों से दूर होने का बहाना हो गया। जब लिया नामे अली मौसम सुहाना हो गया, मुश्किलों से दूर होने का बहाना हो गया। क्यों नहीं कहते रजा जंगे उहद के बाद से लाफता इल्ला अली कौमी तराना हो गया, लाफता इल्ला अली कौमी तराना हो गया। आइए हज़रात, मैं दुआया कलिमात के लिए गुजारिश हूँ। हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना असद रज़ा साहब इमाम जुमा ढाली पाड़ा के खिदमत में कि वो तशरीफ लाए और दुआए फरज पढ़कर इस महफिल को आइंदा साल के लिए मुलतवी करें। आप हज़रात खड़े हो जाएं अपनी अपनी नशिशों पर। इंशाअल्लाह मौलाना मौसूस दुआए फरज की तिलावत शुरू कर रहे हैं। आप हज़रात साथ साथ इस दुआ की तिलावत कर बारे आला परवरदिगार के जवास मुहम्मद व आले मुहम्मद। আমাদের অল্প সময়ের ইবাদত তুমি তোমার দরবারে গ্রহণ ও কবুল করে নিও। পরওয়ারদিগার এই মাহফিলে
এই জশ্নে এই মিলাদে যে যেভাবে হোক শারীরিকভাবে আর্থিকভাবে যে যেভাবে পেরেছে সহযোগিতা করেছেন পরওয়ারদিগার যে ব্যক্তি অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করেছে তাদের অর্থকে তুমি বৃদ্ধি করে দাও পরওয়ারদিগার যারা শারীরিকভাবে কষ্ট করেছে পরিশ্রম করেছে পরওয়ারদিগার তাদের বাজুতে শক্তি দান করো এর থেকে বেশি আগামী বছরে যেন সেই ইমাম মেহদি আল্লাহ তাআলা ফজল শরীফের জন্য আমরা এই মাহফিল মিলাদ করতে পারি সেই তৌফিক দান করো পরওয়ারদিগার আমাদেরকে এমন শক্তি দান করো যে শক্তি দ্বারা আমরা তোমার ইবাদত করতে পারি পরওয়ারদিগার ওয়াস্তা মুহাম্মদ ওয়া আলে মুহাম্মাদের কিয়ামতের দিনে হাশরের ময়দানে ইমামের শাফাত আমাদেরকে নসিব করো পরওয়ারদিগার যে ওয়াস্তা মুহাম্মদ ওয়া আলে মুহাম্মাদের যতদিন আমরা জীবিত আছি আমাদের জীবিত থাকাকালীন ইমামে হোসেন আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের জিয়ারত নসিব করো এবং আমাদের সকলকে হজ করার তৌফিক দান করো পরওয়ারদিগার যে ওয়াস্তা মুহাম্মদ ওয়া আলে মুহাম্মাদের এই জীবন ও ইমামে মেহদি আজ্জালাল্লাহু তাআলা ফরজ শরীফ তানার জিয়ারত নসিব করো পরওয়ারদিগার তানার গোলামদের গোলামের মধ্যে আমাদেরকে গণ্য করো পরওয়ারদিগার যে ওয়াস্তা মুহাম্মদ ওয়া আলে মুহাম্মাদের মুমিন মুমিনাত মুসলমান যে যেখানে আছে পৃথিবীর কোনায় কোনায় আহলে বায়তের ভক্ত আহলে বায়তের চাহনেওয়ালা যে যেখানে পরেশান আছে তাদের পরেশানিকে তুমি দূর করে দাও যারা অসহায় আছে তাদেরকে তুমি সাহায্য করো পরওয়ারদিগার যারা উধার কর্জা মাকরুজ আছে তাদের কর্জাকে তুমি আদায় করে দাও পরওয়ারদিগার যে ওয়াস্তা মুহাম্মদ ওয়া আলে মুহাম্মদ উলামায়ে কেরাম এবং মুজতাহিদিন কেরাম যে যেখানে আছেন জীবিত আছেন পরওয়ারদিগার তাদের ছায়া আমাদের মাথার উপরে তুমি বাকি কায়েম ও দায়েম রাখো পরওয়ারদিগার যে ওয়াস্তা মুহাম্মদ ওয়া আলে মুহাম্মদ আমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি যেন দুঃখের মধ্যে না থাকে কেবলমাত্র ইমামে হোসেন আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের দুঃখ ছড়া পরওয়ারদিগার যে ওয়াস্তা মুহাম্মদ ওয়া আলে মুহাম্মদ জান্নাতুল বাকি সেই রওজাগুলি তৈরি করার তৌফিক দান করো পরওয়ারদিগার যে ওয়াস্তা মুহাম্মদ ওয়া আলে পৃথিবীর কোনায় কোনায় দুশমনানে আহলে বাইত আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম যে যেখানে আছে তাকে নিস্ত নাবুদ করে দাও ইয়া আল্লাহ পাক পরওয়ারদিগার আলম তুঝে ওয়াস্তা মুহাম্মদ ওয়া আলে মুহাম্মদ কারবালার মুনতাকিম ইমামে মেহদি আজ্জালাল্লাহু তাআলা ফরজ শরীফের জহুরকে তাড়াতাড়ি করে দাও আমাদের সকলকে সেই ইমামের পতাকা তলে শামিল হওয়ার তৌফিক দান করো রব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম আমি জিয়ারত পড়ার পরে আমরা দোয়া পড়ব আসসালামু আলাইকা ইয়া আবা আব্দুল্লাহ ওয়া আলা আরওয়াহিল্লাতী হাল্লাত ফিনাইক عليكم من جميعا سلام الله أبدا ما بقيت بقي الليل والنهار ولا جعله الله الآخر الأهد من لزيارتكم السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين خصوصا سيدي مولاي أبا الفضل عباس يا ابن أمير المؤمنين السلام عليكم جميع شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس يا أنيس النفوس أيها المدفون من فتنة هذه الزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا مظهر الإيمان السلام عليك يا قاتل البرهان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا بقية الله في أرضه عجل الله تعالى فرجك واستحل الله تعالى مخرجك وظهورك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا
حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم